হয়েছে। এবং আমরা ত্রিপুরা রাজ্যের যারা প্রান্তিক, যে ত্রিপুরা রাজ্যের নাগরিকরা আমরা বলতাম দিল্লি বহুত দূর ভাই, সবাই একটাই কথা, দিল্লি বহুত দূর। কিন্তু আজকে আমরা দায়িত্ব নিয়ে বলছি 2018 পরে আমরা ত্রিপুরাবাসী আমরা বুঝি যে দিল্লি ফিজিক্যালি অনেক দূর হতে পারে, মনের দিক থেকে দিল্লি আমরা খুব কাছে। এটাই মোদিজি আমাদেরকে করে দিয়েছেন। আজকে আগরতলা থেকে আখাউড়া গঙ্গাসাগর হয়ে আমরা কলকাতাতে রেলের যোগাযোগ আমাদের সম্প্রসারণ হয়েছে। দুই দেশের প্রধানমন্ত্রী মোদিজি, আমাদের দেশের প্রধানমন্ত্রী মোদিজি এবং বাংলাদেশের মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা মহোদয়া যৌথভাবে এবং আমাদের রাজ্যের মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী, রেলমন্ত্রী সবাই মিলে সে ট্রায়াল রান করে দিয়েছেন। বাবা যায় সেটা এই রেল লাইন সম্প্রসারণ শুধু ত্রিপুরা রাজ্যে নয়, সমস্ত নর্থ ইস্টের জন্য একটা গেম চেঞ্জার হিসাবে আজকের দিনে কাজ করবে। সেই সুবিধা যেটা আমরা 32 ঘন্টা কলকাতাতে যাই, মাত্র 10 ঘন্টার মধ্যে আমরা বাংলাদেশের ভেতর দিয়ে আমরা কলকাতাতে যেতে পারবো, সেই ব্যবস্থা দেশের প্রধানমন্ত্রী করেছে। আমাদেরকে আন্দোলন করতে হয়নি, ধর্ণা দিতে হয়নি। সেই কাজগুলি আমাদের দেশের প্রধানমন্ত্রী আমাদের জন্য করে দিয়েছেন। আমরা কৃষক, অনেক প্রান্তিক কৃষক, আমাদের ধান বিক্রি করার মার্কেট ছিল না, বাজার ছিল না। বাজারে ধান 350 টাকা মন, 400 টাকা মন। এদিকে মানুষ 40 কেজি মন বিক্রি করে না, পুরা হিসাবে বিক্রি করে। কত 40 কেজি? কত কেজিতে মন? মন হিসাবে বিক্রি হয় তো কত কেজি? 40 কেজি ধানের দাম 350 টাকা অথবা 400 টাকা। জমি জমুয়া দাঁড়াইছিল কাছে, জমি করে না কেউ। জলের দাম, কারেন্টের দাম, বিভিন্ন ভাবে জমি জমুয়া দাঁড়াইছিল ত্রিপুরা রাজ্যের মানুষের কাছে। আমরা কমিটমেন্ট করেছিলাম 2018 সালে। 2018 সালের ডিসেম্বর মাস থেকে রাজ্য এবং কেন্দ্র সরকার মিলিতভাবে আমরা ধান বিক্রির বাজার আমাদেরকে কৃষকদের দিয়েছি। আমি কৃষক পরিবারের, আমরা জনজাত কৃষক। সেই জায়গায় আমরা লক্ষ্য করছি আজকের দিনে সরকার 2183 টাকা, আমার কিষাণ মোর্চার প্রেসিডেন্ট মাথা লাগতেছে, 2183 টাকা কুইন্টাল এই বছর। প্রত্যেক বছরে 2 বার ধানের দাম বাড়ে। আশখুন্দে ফোসখুন্দে, যারা গৃহস্থ আছে তারা বুঝবো খুন্দ কারে কয়, আশখুন্দ আর ফোসখুন্দ। সেই 2 বারে ধানের দাম বাড়ে। এবার যেমন 2183 টাকা, এইবার যখন জুন জুলাই মাসে ধান বিক্রি করব, ধানের দাম আবার একটা বাড়বো। আর বেসরকারি ভাবে বাজারে যখন ধান তারা বিক্রি কিনে, তাদেরকে যখন জিজ্ঞেস করি ধানের দাম কত, 24 টাকা দিয়েও আমরা ধান পাই না। ধান মানুষ সরকারের কাছে বিক্রি করে, পাবলিকের কাছে ধান বিক্রি করে না। এত আত্মবিশ্বাস, কারণ মোদি है तो मुमकिन है, मोदी जी का গ্যারান্টি है যে ধান বিক্রি করার বাজার মোদিজি আমাদেরকে দিয়ে দিয়েছেন। কালকের সংকল্প পত্রে কি মহিলা, গরিব, কৃষক, আমাদের যে যুবক, তাদের জন্য আলাদা আলাদা সিস্টেম করে দিয়েছেন। যারা শ্রমিক রয়েছেন মোদিজি খোলামেলা ভাবে বলে দিয়েছেন, অসংগঠিত যে শ্রমিক, আমাদের যে গাড়ির ড্রাইভার, ট্রাকের ড্রাইভার, সাধারণ গাড়ি ড্রাইভার, অটো ড্রাইভার এবং বিশেষ করে যারা মানুষের বাড়িতে পরিচারিকার কাজ করেন, গৃহ পরিচারিকার কাজ করেন, তাদের জন্য ব্যবস্থা রাখা হয়েছে এই সংকল্প পত্রের মধ্যে। মোদিজি বলেছেন আমরা যাতে প্রত্যেকে মানুষের সঙ্গে সে সুবিধার কথাগুলি আমরা বলে দিই। আমরা রোজগারের ব্যবস্থা, সবচেয়ে বেশি বড় যারা রয়েছে শিক্ষিত ছেলে মেয়ে, তাদের জন্য স্টার্টআপের ব্যবস্থা রেখেছেন। 2016 সালের আগে ভারতবর্ষের স্টার্টআপের নাম কেউ শুনেনি। 100-150 স্টার্টআপ আমাদের দেশে ছিল, আমাদের কেউ জানতো না। যারা উচ্চ শিক্ষিত ছেলে মেয়েরা, তাদের জন্য স্টার্টআপের ব্যবস্থা করা হয়েছে। আজকের দিনে 2016 সাল থেকে 2024 পর্যন্ত আমাদের দেশে আজকে 1,00,000 লক্ষ স্টার্টআপ তৈরি হয়েছে। প্রত্যেকটা 110টা ইউনিকর্ন তৈরি হয়েছে। পৃথিবীর বিভিন্ন জায়গায় যদি 10টা ইউনিকর্নকে গণা হয়, তার মধ্যে একটা ইউনিকর্ন ভারতবর্ষে, তার হচ্ছে বিলিয়নিয়ার। 10টার মধ্যে একটা ভারতবর্ষ। এই ব্যবস্থা, এবং যারা মধ্য কম লেখাপড়া জানেন, অন্য ব্যবসা করবেন, তাদের জন্য মুদ্রা লোনের ব্যবস্থা করা হয়েছে। আগে মুদ্রা লোন আমাদের 10 লাখ পর্যন্ত ছিল। গতকালকে মোদিজি ঘোষণা করেছেন আমাদের যারা যুবক ছেলেমেয়েরা রয়েছে, যারা ব্যবসা করতে চান, যারা বাজারি ব্যবসায়ী, যারা এখনো ব্যবসা করছেন, তাদের জন্য মুদ্রা লোনের সীমারেখা 20 লক্ষ টাকা পর্যন্ত করা হয়েছে। এবং আনন্দের বিষয় আপনাদেরকে বলি, দায়িত্ব নিয়ে বলছি, কমরেড বন্ধুরা, কংগ্রেসের বন্ধুরা বলছেন রোজগার নেই, রোজগার নেই। গত 6-7 বছরে ত্রিপুরা রাজ্যে শুধু মুদ্রা লোন নিয়ে নিজেরা পায়ে নিজে দাঁড়িয়েছেন। কতবার নিয়েছেন? 26 লক্ষ মানুষ ত্রিপুরা রাজ্যের মুদ্রা লোনের সুবিধা নিয়েছেন, যার মধ্যে সবচাইতে বড় সংখ্যা জনজাতি অংশ, যাদের সংখ্যা 5,48,000 জনজাতি ছেলে মেয়ে মোদিজির শাসনে মুদ্রা লোন নিয়ে নিজেদের জীবিকা উপার্জন করছেন। এবং টাকা কত? প্রায় 14,000 কোটি টাকা ত্রিপুরা রাজ্যকে ভারত সরকার শুধু মুদ্রা লোনের জন্য ত্রিপুরার ছেলে মেয়েদের জন্য দিয়েছেন। এবং যারা সবচাইতে নিচু স্তরের
যারা হাতের কাজ জানে তাদেরকে পিএম বিশ্বকর্মা, আমাদের যারা লোহার রয়েছে, সোনার রয়েছে, কর্মকার রয়েছে, মালা তৈরি করে, বাঁশের বাস্কেট তৈরি করছে, জুতা তৈরি করছে, জাল তৈরি করছে, এই ধরনের 18টা ট্রেডকে সম্বোধন করে তাদেরকে সমাজের জায়গা দিয়েছেন, তাদেরকে মোদিজি নাম দিয়েছেন বিশ্বকর্মা। ভাবা যায়? এই ধরনের লোকদেরকে নাম দেওয়া হচ্ছে বিশ্বকর্মা। তাদের জন্য, সমস্ত লোকদের জন্য 4 to 5% ইন্টারেস্টে লোনের ব্যবস্থা তাদের জন্য করা হয়েছে। আমরা যারা স্ট্রিট ভেন্ডার, আমাদের কুমারঘাটে রয়েছে, ধর্মনগরে রয়েছে 20টা, একটা পৌর পরিষদ এবং নগর পঞ্চায়েত, আমাদের পৌর নিগম একটা, পৌর পরিষদ, নগর পঞ্চায়েত আমাদের রাজ্যে 20টা। আমাদের রাজ্য থেকে গোটা দেশে 10,000 টাকা থেকে শুরু হয়েছে, তারপরে সেটাকে 20,000 করা হয়েছে, তারপরে 30,000, এখন 50,000 টাকা স্বনিধি যোজনা কন্টিনিউ থাকবে। আমরা যারা গরিব, আমাদেরকে প্রধানমন্ত্রী আবাস যোজনার ঘর, 3 কোটি আবাস যোজনার ঘর দেওয়া হবে। আমাদেরকে জলের ব্যবস্থা থেকে শুরু করে সমস্ত ব্যবস্থা মোদিজি আমাদের ঘোষণাপত্র দিয়েছেন। এবং ভারতবর্ষকে বিশ্বগুরু নয়, ভারতবর্ষ বিশ্ব বন্ধুত্ব হবে। বিশ্বের দরবারে বন্ধুর দরজা নিয়ে দাঁড়িয়ে সমস্ত পৃথিবীকে বন্ধু বলে আলিঙ্গন করবে, সেইভাবে দেশকে আমরা গড়ে তুলবো। সেই লক্ষ্যে দেশের প্রধানমন্ত্রী আমাদের জন্য কাজ করছেন। রাস্তাঘাট থেকে, এয়ারপোর্ট থেকে শুরু করে রেল কানেক্টিভিটি, কলেজ, ইউনিভার্সিটি, মেডিকেল কলেজ, প্রত্যেকটা জায়গায় যেমন করেছেন, গরিব মানুষের জন্য 5 কেজি চালের ব্যবস্থা করেছেন। সমস্ত ব্যবস্থা আমাদের মোদিজি আমাদের জন্য রেখেছেন। আমাদের দায়িত্ব মোদিজির জন্য 2টা পদ্মফুল দিল্লিতে পাঠানোর জন্য। আমরা প্রত্যেকে বাড়িতে যাব, প্রত্যেকে 10 জন মানুষের করে দায়িত্ব নেব এবং মোদিজিকে 2টা পদ্মফুল আমরা পাঠাবো। সবাই স্লোগান দিন, ভারত মাতা কি। অমিত ভাই শাহ তোমায় জানাই স্বাগতম। 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 রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী মানিক শাহ তোমায় জানাই স্বাগতম। রাজ্য সভাপতি রাজীব ভট্টাচার্য তোমায় জানাই স্বাগতম। প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী বিপ্লব কুমার দেব তোমায় জানাই স্বাগতম। অমিত ভাই শাহ 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 তোমায় জানাই স্বাগতম। भारत माता की, भारत माता की। फिर एक बार, फिर एक बार, आपकी बार, आपकी बार। अमित भाई शाह तुम्हारे জানাই স্বাগতম। মায়েরা উলুধ্বনি দিন। অমিত ভাই শাহ তোমায় জানাই স্বাগতম। 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 भारत माता की। फिर एक बार, फिर एक बार, आपकी बार, आपकी बार, आपकी बार। অমিত ভাই শাহকে আমরা এই কুমারঘাটে দ্বিতীয়বার স্বাগত জানাচ্ছি। উনি আবারও একবার এসেছিলেন। অমিত ভাই শাহ তোমায় জানাই স্বাগতম। অমিত ভাই শাহ তোমায় জানাই স্বাগতম। অমিত ভাই শাহ তোমায় জানাই স্বাগতম। বন্দে মাতরম। ভারত মাতা কি। নরেন্দ্র মোদি, নরেন্দ্র মোদি। অমিত ভাই শাহ, অমিত ভাই শাহ। নমস্কার। भारत माता की, भारत माता की। मैं झारखंड सिमडेगा की हूँ। मेरा नाम संगीता कुमारी है। मैं सिमडेगा झारखंड से आई हूँ। मेरा नाम निकी प्रधान है। मैं खूंटी झारखंड से। ভাষণ রাখবেন ত্রিপুরা প্রদেশ কমিটির সম্মানিত সভাপতি শ্রী রাজীব ভট্টাচার্য মহাশয়। আজ আমরা কুমারঘাটে আমরা মিলিত হয়েছি
আমাদের মধ্যে উপস্থিত হয়েছেন আমাদের ভারতবর্ষের গৃহমন্ত্রী, যিনি এই ত্রিপুরা রাজ্যের মুক্তির কাণ্ডারী মাননীয় অমিত ভাই শাহজি। উপস্থিত রয়েছেন আমাদের রাজ্যের মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী আমাদের প্রফেসর ডক্টর মানিক শাহ মহোদয়। উপস্থিত রয়েছেন আমাদের প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী শ্রী বিপ্লব কুমার দেব মহোদয়, আমাদের এই কেন্দ্রের যিনি প্রার্থী কৃতি দেবী দেববর্মা মহোদয়া, তিপ্রামাথার চেয়ারম্যান মাননীয় প্রদ্যোৎ কিশোর দেববর্মন মহোদয় এবং মঞ্চে উপস্থিত অন্যান্য অতিথিবৃন্দ এবং এই কুমারঘাটে আজকে এই জনসভায় যারা সমবেত হয়েছেন প্রত্যেককে আমি আন্তরিকভাবে অভিনন্দন এবং শুভেচ্ছা জানাচ্ছি। আমি স্বাগত জানাচ্ছি। আজ আমার একটা কথা মনে পড়ছে যে ত্রিপুরা রাজ্য থেকে এই সিপিএম কে হটানোর জন্য সেই ঐতিহাসিক র্যালি আমাদের অমিত ভাই শাহজির নেতৃত্বে 2017-তে এই কুমারঘাটের এই পিডব্লিউডি গ্রাউন্ড থেকে তার শুরুয়াত হয়েছিল। আজকেও সেই ইতিহাস তৈরি করার জন্য আমাদের অমিত ভাই শাহজি আমাদের মধ্যে উপস্থিত হয়েছেন। আমি বলবো একবার জোরে করে তাল দিয়ে আমাদের মাননীয় গৃহমন্ত্রীকে একবার অন্তত পক্ষে অভিনন্দন জানানোর জন্য। যেহেতু আমাদের এই ত্রিপুরা রাজ্যের মুক্তির জন্য সেদিন আমাদের ভারতবর্ষের যশস্বী প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীজি এবং আমাদের অমিত ভাই শাহজি আমাদেরকে যে উপহার এই ত্রিপুরা রাজ্যকে দিয়েছে, আমাদের নৈতিকতার প্রশ্নে আগামী লোকসভা নির্বাচনে আমরা এই ত্রিপুরা রাজ্য থেকে আমরা দুটি পদ্মফুল ফুটিয়ে নরেন্দ্র মোদীজির হাতকে শক্তিশালী করব, সেই সংকল্প নিয়ে আমরা কাজ করছি। কাজে আমি আমার আলোচনার দীর্ঘায়িত না করে আমি প্রত্যেককে আবারও আন্তরিক অভিনন্দন জানিয়ে আমার কথা বলা শেষ করছি। বলেন আমার সঙ্গে, ভারত মাতা কি, ভারত মাতা কি, আপকি বার ফির সে একবার। সবাইকে নমস্কার, ধন্যবাদ। এখন আপনাদের সামনে বক্তব্য রাখবেন এই রাজ্যের প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী তথা বর্তমান রাজ্যসভার সদস্য এবং পশ্চিম ত্রিপুরা লোকসভা আসনের মাননীয় প্রার্থী শ্রী বিপ্লব কুমার দেব মহাশয়। আজকে কুমারঘাটে আমি ভাষণ দেব না। আজকে কার ভাষণ শোনার জন্য এসেছেন আপনারা? কার ভাষণ? কার ভাষণ শোনা যায় না তো শুনি না তো আমি। কার 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 বন্ধুরা, মঞ্চে উপস্থিত দেশের যশস্বী গৃহ কি নাম আছে মঞ্চে, ওনাকে জিতাবেন, জিতাবেন। অমিত ভাই সামনে বলছেন জিতাবেন পাক্কা। আমি আবার ভাষণ দেব। আজকে আমি ভাষণ দেব না, আমি শুধু আপনাদের ভালোবাসা চাই, আমি আপনাদের যে জোশ এটা চাই। এটা রাখবে 26 তারিখ পর্যন্ত 90% ভোট করবে, মোদীকে সিট পাঠাবে। এখানে একটা কথা মহিত ভাইকে দেখাও, কে কে করোনার টিকাকরণ করেছো? হাত উঠাও তো, দেখাও, নিচে করো। মোদীজির 5 কিলো করে চাউল কে কে পাচ্ছে? হাত উঠাও তো। মোদীজির ঘর কে কে পেয়েছে? হাত উঠাও তো। অমিত ভাই সব মিলা হ্যায়। আমি এখন আর আমার ভাষণ দেব না, আমি পরে দিদিকে জিতানোর পর তারপরে আসবো কুমারঘাটে। 4 জন বিপ্লব দেব আসবে, সবার সঙ্গে জিতের খুশি মানাবে। সবাইকে আবারও একবার আমার সঙ্গে জোরসে মুষ্টিবন্ধ, হাত উপরে তোলা, হাত উপরে তোলা, মুষ্টিবন্ধ। সিপিএম কংগ্রেস যাতে শুনে, ঠিক আছে? ভারত মাতা কি, ভারত মাতা কি, नरेंद्र भाई मोदी की, अमित भाई शाहजी की, जेपी नड्डा की, कुमारघाट वासी की, उत्तर वासी की, धलाई वासी
kong di mo से मिला था। हमारे जो गुरु शरणार्थी थे जिनको कंचनपुर में कम्युनिस्ट की सरकार ने इतने सालों तक वंचित रखा, गरीब रखा, उनकी शिक्षा के लिए नहीं सोचा, उनके भविष्य के लिए नहीं सोचा, उनके बच्चे के लिए नहीं सोचा। उस समय मैंने गृह मंत्री जी से एक निवेदन किया था। इतिहास गवाह है कि 2 महीने के अंदर जो 20-25 साल का प्रॉब्लम था, 2 महीने के अंदर गृह मंत्री जी ने हमारे ब्रू को दिया। आज अगर त्रिपुरा में ब्रू एक सम्मान का जिंदगी जी रहा है, अगर आपके बच्चे का एक भविष्य आज है, तो उसमें एक बहुत बड़ा हाथ हमारे गृह मंत्री जी का है। इसमें हमें भूलना नहीं चाहिए, हमें भूलना नहीं चाहिए कि हमारे साथ हमारे खराब समय में कौन रहा। आज से 1 महीने पहले मैंने, हमारे प्रेसिडेंट विजय कुमार रांखल ने, हमारे मंत्री ने, हमारे एमएलए ने, हमने एक हिस्टोरिक त्रिपुरा अकॉर्ड साइन किया है। बहुत लोग स्पेशली कम्युनिस्ट इतिहास को नकारते हैं, इतिहास को बदलने की कोशिश करते हैं, लेकिन कुमारघाट में मैं बोलना चाहता हूं, मीडिया के थ्रू बोलना चाहता हूं, आज से 75 साल पहले महारानी कंचन प्रभा देवी ने देश के उस समय के होम मिनिस्टर हमारे सरदार पटेल के संग एक एग्रीमेंट साइन किया था। उसके बाद त्रिपुरा एक हिंदुस्तान का अटूट अंग बना। 75 साल बाद कंचन प्रभा देवी का नाती को वही सम्मान, उस परिवार को वही सम्मान देश का होम मिनिस्टर श्री अमित शाह जी ने दिया है। यह सम्मान मुझे व्यक्तिगत तौर से नहीं दिया गया है, यह हमारे त्रिपुरा के इंडिजिनियस लोग, हमारे जनजाति, हमारे ट्राइबल लोगों को, हमारे हानी बुसा को, हमारे बुकुंगवाला को आज हमारा होम मिनिस्टर ने दिया है। ये शांति से मिला है। आज से पूरे नॉर्थ ईस्ट में आप देखेंगे, जब भी किसी को कुछ प्राप्त हुआ, ये वायलेंस से हुआ, झगड़ के हुआ, बंदूक से हुआ। इस बार ना किसी का घर जला है, ना किसी की मृत्यु हुई है, ना कहीं में आतंकवाद हुआ है। आज शांति से हम त्रिपुरा के जनजाति, इंडिजिनियस, हानी बुसा को और स्थानीय लोगों को आगे ले जाना चाहते हैं। कम्युनिस्ट सरकार ने 25 साल तक यहां में राज किया, हमारा इतिहास को बदला, हमारे गरीब त्रिपुरा को कुछ नहीं दिया। आज अगर हमको अपना बच्चा का भविष्य बनाना होता है तो हमें कलकत्ता, दिल्ली, बेंगलोर, हैदराबाद, पूना जाना पड़ता है। मैं चाहता हूं कि अगर हमें अपना भविष्य को ठीक करना है तो हमें त्रिपुरा के बाहर नहीं देखना है। यह कैसे होगा अगर केंद्र सरकार हमारे साथ नहीं खड़ा होगा। मैं अपने त्रिपुरा को बोलना चाहता हूं, हमने 20 के 20 सीट बहुत बार कम्युनिस्ट को दिया, रिटर्न में क्या मिला? गरीबी, बेरोजगारी, भूख, शिक्षा कहीं नहीं, कहीं में पीने के लिए, पानी के लिए हमें 5-5 किलोमीटर चलना पड़ता था। आज समय आया है, आज समय आया है कि हम अपने दुश्मन को, जिसने हमें वंचित रखा, जिसने हमें नॉर्थ ईस्ट में सबसे गरीब अगर कोई जनजाति है तो वो त्रिपुरा का है। किसने रखा है? वो
को एक अच्छा कल देने के लिए बात करने के लिए आया। मैं अंत में गृह मंत्री जी को एक छोटे भाई के तरीके से एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूं। गृह मंत्री जी, आपने हमें बहुत दिया है, हम आभारी हैं और हम चाहते हैं कि आप भी आज हमारे लिए और दो शब्द बोलिए, क्योंकि कम्युनिस्ट ने एक अफवाह फैलाया हुआ है कुछ नहीं मिलेगा, और मैं बोलता हूं सब कुछ मिलेगा, सबको मिलेगा। मैं ये निवेदन करके अपने लोगों को बोलना चाहता हूं, 19 तारीख वेस्ट त्रिपुरा में, 26 तारीख ईस्ट त्रिपुरा में, यहां में एक मैसेज आप भेजिए कि त्रिपुरा अब कम्युनिस्ट के हाथों से निकल चुका है और एक नया कल बनाना चाहता है। यही मैं बोलकर अपने सबको धन्यवाद बोलना चाहता हूं। तीप्रासा दोफा आई क्लोथोंग, तीप्रासा जाति आई क्लोथोंग, भारत माता की जय, और त्रिपुरा के सब लोगों को मेरा बेलाई बेलाई नो हामबाई खोलूं का धन्यवाद। थैंक यू। আপনাদের সামনে এখন মূল্যবান বক্তব্য রাখবেন রাজ্যের যশস্বী মুখ্যমন্ত্রী প্রফেসর ডক্টর মানিক শাহ মহোদয়। ওনাকে অনুরোধ করব ওনার মূল্যবান বক্তব্য রাখার জন্য। যত না খুলুমখা সবাইকে নমস্কার। আজকে আসন্ন 18তম যে লোকসভার নির্বাচন, সেই নির্বাচনে আমাদের মাঝে উপস্থিত আছেন আমাদের যশস্বী ভারত সরকারের গৃহমন্ত্রী শ্রী অমিত শাহজি। আমাদের মাঝে উপস্থিত আছেন আমাদের ত্রিপুরা প্রদেশ বিজেপির মাননীয় সভাপতি শ্রী রাজীব ভট্টাচার্য মহোদয়। উপস্থিত আমাদের পশ্চিম আসন থেকে ভারতীয় জনতা পার্টির যাকে মনোনয়ন দেওয়া হয়েছে, আপনাদের সবার পরিচয় যিনি একটু আগে ওনার মূল্যবান বক্তব্য এখানে রেখেছেন, আমাদের প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী ও রাজ্যসভার সদস্য শ্রী বিপ্লব কুমার দেব মহোদয়। আমাদের মাঝে উপস্থিত আছেন পূর্ব আসনের ভারতীয় জনতা পার্টির পদ্ম চিহ্নের যাকে ভারতীয় জনতা পার্টির থেকে মনোনয়ন দেওয়া হয়েছে মহারানী কৃতি সিং দেববর্মা মহোদয়া, এবং আমাদের মাঝে যিনি একটু আগে ওনার ভাষণ আপনাদের সামনে রেখেছেন ত্রিপুরা মাতার ফাউন্ডার আমাদের, তাছাড়া আমাদের সাথে উপস্থিত আছেন আমাদের এই ত্রিপুরা মাতার চেয়ারম্যান এবং অন্যান্য নেতৃবৃন্দ এখানে উপস্থিত আছেন, ত্রিপুরা সরকারের মন্ত্রী এবং আমাদের নেতৃবৃন্দরা, এবং আমার এই 19 কোটি এবং সমস্ত এখানে যারা ত্রিপুরাবাসীরা আছেন সবাইকে আমি হার্দিক অভিনন্দন ও শুভেচ্ছা জানাচ্ছি। বন্ধুগণ, আপনারা সবাই দেখেছেন যে গত 28 মার্চে আমরা যখন এখানে নমিনেশন দাখিল করি, আমাদের কার্যকর্তা শুদ্ধ আমাদের ভারতীয় জনতা পার্টির কার্যকর্তা, ত্রিপুরা মাতার কার্যকর্তা এবং আইপিএফটির কার্যকর্তা এবং সাধারণ মানুষ প্রায় 40,000 লোক আমরা সেই যখন আমরা এই নমিনেশন সাবমিট করি তখনই বোঝা গিয়েছিল যে 4 জুন আমাদের অপেক্ষা করতে হবে না, রেজাল্ট কি আমরা সেদিনে আমরা বুঝে গিয়েছিলাম। বন্ধুগণ, শুধু তাই নয়, যখন 27 মার্চে আমরা পশ্চিম আসনে আমরা সেখানেও যখন নমিনেশন দাখিল করি, হাজারো হাজারো লোক 35-40 হাজার লোক আমাদের সাথে সেদিনও নমিনেশন দাখিলের সময় সেখানে উপস্থিত ছিল। বোঝা যাচ্ছে একটা বাদ চিপ দিলে বোঝা যায় কোন দিকে যাচ্ছে। বন্ধুগণ, আমাদের এবারের যে মোদিজির যে গ্যারান্টি, সেই গ্যারান্টিকে সামনে রেখে এবারে নির্বাচন খুব ইম্পর্টেন্ট নির্বাচন। আগামী 2047 সনে এই যে বিকশিত ভারত তার যে সুফল তার পাওয়ার জন্য যে নির্বাচন, সেই নির্বাচন ভারতীয় জনতা পার্টি পঞ্চায়েত থেকে আরম্ভ করে পার্লামেন্টের ইলেকশন পর্যন্ত খুব সিরিয়াসলি আমরা দেখি। আমরা চাই যে মোদিজি যেভাবে কাজ করছেন, মোদিজির হাত শক্তিশালী করার জন্য এবারের নির্বাচনে আমি নিশ্চিত যে আমরা তো জয়যুক্ত করব। অনেকে জিজ্ঞেস করে আপনাদের চ্যালেঞ্জ কি? আমাদের চ্যালেঞ্জ হচ্ছে কত পার্সেন্টেজ আমরা বেশি পাবো, সেই তার হচ্ছে চ্যালেঞ্জ। আমি আর বেশি কিছু বলছি না। বন্ধুগণ, আগামী আমি এখানে দুটো সিটের জন্য এখানে যারাই আছেন সবার কাছে একটাই আপনাদের কাছে নিবেদন করব যে সঠিক টাইমে সকাল সকাল গিয়ে আপনারা ভারতীয় জনতা পার্টির পদ্ম চিহ্নে ভোট দিয়ে আমাদের এই পশ্চিম আসনের এবং পূর্ব আসনের যিনি আমাদের ভারতীয় জনতা পার্টির থেকে দাঁড়িয়েছেন এই পূর্ব আসনের মহারানী কৃতি সিং দেববর্মা মহোদয়কে 26 এপ্রিল বিপুল ভোটে জয়যুক্ত করবেন। সবাইকে ধন্যবাদ। নমস্কার। বন্দে মাতরম। ভারত মাতা কি জয়।
ধন্যবাদ মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী মহোদয়কে। এখন আপনাদের সামনে বক্তব্য রাখবেন, যার বক্তব্য শোনার জন্য আপনারা দীর্ঘক্ষণ ধরে প্রচন্ড রোদের মধ্যে বসে আছেন, ভারতবর্ষের যশস্বী গৃহমন্ত্রী শ্রদ্ধেয় আমাদের সকলের প্রিয় নেতা শ্রী অমিত ভাই শাহজি আপনাদের সামনে বক্তব্য রাখবেন। একবার সবাই করতালি দিয়ে আমরা ওনাকে স্বাগত জানাবো। ভারত মাতা কি। मेरे साथ बोलिए भारत माता की। क्यों भाई, कुमार घाट वालों की आवाज को क्या हो गया है? 400 पार करना है या नहीं करना है? मोदी जी को फिर से प्रधानमंत्री बनाना है या नहीं बनाना है? तो ऐसी आवाज नहीं चलेगी। दोनों हाथ उठाइए, उठाइए दोनों हाथ, विजय के संकल्प का मुट्ठी बींचिए और प्रचंड आवाज से बोलिए भारत माता की, भारत माता की। मंच पर उपस्थित त्रिपुरा के लोकप्रिय मुख्यमंत्री डॉक्टर माणिक शाह जी, हमारे राजा साहब और मेरे मित्र त्रिपुरा मोथा के अध्यक्ष महोदय, मेरे साथ आए हुए हमारे दोनों प्रत्याशी पश्चिम त्रिपुरा से विप्लव कुमार देव जी, विप्लव जी खड़े हो जाइए जरा, और पूर्वी त्रिपुरा से महारानी कृति सिंह जी, हमारे प्रदेश अध्यक्ष महोदय श्री टिंकू रॉय, श्री सुधांशु दास, हमारी ट्राइबल मंत्री आगे आओ, चकमा आगे आओ, जोर से ताली बजाओ सेंटर चकमा के लिए सभी लोग। हमारे त्रिपुरा मोथा के साथी अनिमेश देववर्मा जी, अनिमेश जी खड़े हो जाइए आप, शुक्लचरण नोतिया जी, हमारी नेत्री भारत सरकार में मंत्री बहन प्रतिमा भौमिक जी, और आज कुमार घाट की इस भूमि पर आए हुए प्यारे भाइयों, बहनों, माताओं और मेरे जिगर के टुकड़े जैसे युवा मित्रों, आप सभी को नमस्कार। मुझे बरोबर याद है 2017 का दिसंबर माह होगा और मैं यहां पर त्रिपुरा मुक्ति के लिए पहली रैली करने आया था और यहीं से त्रिपुरा को कम्युनिस्टों से मुक्त करने की शुरुआत की थी। और आज इस महान त्रिपुरा की जनता ने इतने सालों के कम्युनिस्ट शासन को समाप्त कर त्रिपुरा में मोदी जी पर भरोसा कर विकास का एक नया रास्ता चुनने का काम किया है। मित्रों, मैं जब यहां आया हूं तब सबसे पहले मां त्रिपुरा सुंदरी को, बाबा गड़िया मंदिर को और सभी देवी देवताओं को प्रणाम कर मेरी बात की शुरुआत करना चाहता हूं। मैं यहां आया हूं तब विनम्र शासक और जिनके मन में देश और जनता के अलावे कुछ नहीं था, ऐसे महाराजा वीर विक्रम माणिक्य किशोर जी को भी मनपूर्वक प्रणाम करना चाहता हूं। इतने सालों से कम्युनिस्टों ने महाराजा वीर विक्रम माणिक्य किशोर जी को केवल और केवल बुलाने का काम किया। नरेंद्र मोदी जी ने इनके नाम पर त्रिपुरा के एयरपोर्ट देकर बड़ी मूर्ति प्रस्थापित कर उनको चिर स्मरण करने का काम नरेंद्र मोदी जी ने किया है। और मित्रों, अभी अभी आपने पद्म पुरस्कारों का सूची देखा होगा। सतराम रियान और बेनी चंद्र जमातिया, हमारे 2 ट्राइबल भाइयों को पद्म पुरस्कार देकर मोदी जी ने ट्राइबलों का सम्मान बढ़ाने का काम किया है। भाई और बहनों, नरेंद्र मोदी सरकार ने आदिवासियों के सम्मान के लिए, सुरक्षा के लिए और समावेशी विकास के लिए देश भर में न केवल विकास के काम चलाए हैं, उनको साथ में रखने का भी काम किया है। कांग्रेस और कम्युनिस्ट
शासन करते रहे, एक भी आदिवासी बेटा बेटी को देश का राष्ट्रपति नहीं बनाया। आजादी के 75 साल बाद पहली बार नरेंद्र मोदी जी ने ओडिशा के गरीब आदिवासी की बेटी द्रौपदी जी मुर्मू को महामहिम द्रौपदी मुर्मू बनाकर आदिवासियों का सम्मान करने का काम किया है। सैकड़ों करोड़ों रुपया खर्च कर सैकड़ों करोड़ों रुपया खर्च कर आदिवासी पूर्वज हमारे जो देश के लिए काम करे उनके म्यूजियम बन रहे हैं। और मैं आज बताना चाहता हूं, हर म्यूजियम में हमारे राजा साहब का प्रतिमा भी है। ये हम सब के लिए गौरव का विषय है। भाई और बहनों, जनजातीय मंत्रालय में, ट्राइबल मंत्रालय में पहले 24,000 करोड़ रुपए का बजट था। मेरी बात ध्यान से सुनना, इतने बड़े देश के ट्राइबल आबादी के लिए सिर्फ 24,000 करोड़ था। नरेंद्र मोदी जी ने 1,25,000 करोड़ का बजट ट्राइबल मंत्रालय का किया है। और एकलव्य मॉडल स्कूल 70 साल में सिर्फ 90 बने थे। मोदी जी के 5 साल में 740 एकलव्य स्कूल बनाने का काम हमने किया है। भाई और बहनों, त्रिपुरा पहले विप्लव देव जी और अब डॉक्टर माणिक शाह के नेतृत्व में विकास के रास्ते पर आगे बढ़ पड़े। आज सुबह ही राजा साहब भी बैठे थे। टूरिज्म, कनेक्टिविटी, एयर कनेक्टिविटी, स्वास्थ्य, नौकरियां और इंफ्रास्ट्रक्चर, हर क्षेत्र में नरेंद्र मोदी सरकार की प्रायोरिटी हमारा त्रिपुरा है। और मैं आज बताने जा रहा हूं, त्रिपुरा में भी हमारी प्रायोरिटी हमारा ट्राइबल एरिया भारत सरकार का प्रायोरिटी है। भाई और बहनों, अभी अभी हमने एक एग्रीमेंट किया है भारत सरकार, त्रिपुरा सरकार और राजा साहब के साथ, तिपरा मोथा के साथ। एग्रीमेंट के लिए ढेर सारी चीजें बोली जा रही है, मगर मैं आज आपको बताकर जाता हूं, आपकी सभी समस्याओं का समाधान उस एग्रीमेंट में है। मुझ पर भरोसा करिएगा, एक कम्युनिस्ट जहर घोलने का काम। त्रिपुरा की जाति और जनजाति दोनों के बीच में शांति रहे, दोनों का विकास हो और संघर्ष की जगह विकास के रास्ते पर त्रिपुरा आगे बढ़ पड़े, इसका एग्रीमेंट में पूरा ध्यान रखा गया है। ये राजा साहब है तो राजा, मगर बनने से भी ज्यादा चतुर है भाई। छोटी छोटी चीज पर आपकी सभी हितों का ध्यान उन्होंने रखा है और मोदी जी ने इसको आशीर्वाद देने का काम किया है। भाई और बहनों, मोदी जी ने देश भर में 2,94,00,000 गरीबों के घर बनाए। इसका सबसे बड़ा फायदा एसटी लाभार्थियों को हुआ है। 21% घर एसटी को मिले, 14 करोड़ टॉयलेट बनाए, 70 करोड़ लोगों को 5 किलो चावल प्रति माह प्रति व्यक्ति मुफ्त में दिया जाता है। त्रिपुरा वालों, आपको मिलता है या नहीं मिलता है, जरा बताओ तो। भाई चावल आता है ना? हर एक के घर में गैस का सिलेंडर भेजने वाले हैं और नए 3 करोड़ घर मोदी जी ने वादा किया है। बाद में कोई भी ट्राइबल हमारा घर बगैर का नहीं रहेगा। ये मोदी का गारंटी है भाइयों, मोदी का गारंटी। सबरूम रेलवे स्टेशन को एक्सटेंड किया गया, 23 ट्रेनें अब चल रही है। अगरतला अखौरा रेलवे लाइन को आगे बढ़ाने का काम किया और एक हाईवे ही था कम्युनिस्टों के 30 साल के शासन में। अब त्रिपुरा में 9 हाईवे बनाने का काम नरेंद्र मोदी सरकार ने किया है। विद्या ज्योति स्कूल को सीबीएसई में लिया,
बमुतिया में सेंट्रल संस्कृत यूनिवर्सिटी बन रही है। नरसिंहगढ़ में अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम बन रहा है, जिससे आईपीएल और राष्ट्रीय मैच भी यहां आएगी। सब रूम के अंदर 1550 करोड़ के खर्चे से जलेफा में स्पेशल इकोनॉमिक जोन बन रहा है, जहां इंडस्ट्री भी आएगी, रोजगारी भी आएगी। और अपने अकेले त्रिपुरा में 87,000 लखपति दीदी है मोदी जी ने, और 3 करोड़ लखपति दीदी बनाने का लक्ष्य रखा है। अकेले त्रिपुरा में 3.5 लाख लखपति दीदी बनेगा। और आज 140 करोड़ से एक अनूठा यूनिटी मॉल भी बनाने का काम त्रिपुरा के अंदर हुआ है। भाई और बहनों, कम्युनिस्ट जहां जहां गए वहां क्या छोड़ा? गरीबी, भूखमरी, स्वास्थ्य का अभाव, शिक्षा का अभाव, और युवाओं के हाथ में बंदूक थमाने का काम एक कम्युनिस्ट पार्टी ने किया। और भारतीय जनता पार्टी के नेता नरेंद्र मोदी जी ने युवाओं के हाथ में लैपटॉप पकड़ाने का काम किया है। पूरे नॉर्थ ईस्ट के अंदर 10 से ज्यादा समझौते कर सभी ट्राइब को 10,000 युवाओं के हाथ में से हथियार छुड़ाकर उनको मेन स्ट्रीम में लाने का काम भारतीय जनता पार्टी और नरेंद्र मोदी सरकार ने किया है। भाई और बहनों, मैं आज त्रिपुरा में कहना चाहता हूं, हमारे ब्रू और रियांग भाई, इनके परिवार 40,000 लोग नर्क की जिंदगी जी रहे थे। नरेंद्र मोदी सरकार ने सभी ब्रू रियांग को अच्छे गांव बसा कर दिए और उनके जीवन के अंदर उजियारा लाने का काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया। भाई और बहनों, ये कम्युनिस्ट यहां आते हैं, कांग्रेस वाले आते हैं। मैं आज त्रिपुरा के कांग्रेस और कम्युनिस्ट नेताओं को पूछने आया हूं। 10 साल आपकी सरकार थी, सोनिया मनमोहन की सरकार थी, आपने त्रिपुरा को क्या दिया? हर 10 साल में आपने 40,183 करोड़ रुपया, सिर्फ 40,000 करोड़। और मोदी जी ने एक 10 साल में 40,000 करोड़ के सामने 98,000 करोड़ रुपया देने का काम मोदी जी ने किया है। इसके साथ साथ 20,000 करोड़ के इंफ्रास्ट्रक्चर, 17,000 करोड़ सड़क के, 2,000 करोड़ रेलवे के और 1,000 करोड़ एयरपोर्ट का किया है। और भाई और बहनों, मोदी गारंटी की बात मैं करना चाहता हूं। कोई भी व्यक्ति हो, गरीब हो, धनवान हो, 70 साल की ऊपर के सभी नागरिकों को 5 लाख तक का सभी स्वास्थ्य का खर्चा अब भारतीय जनता पार्टी उठाएगी। नए 3 करोड़ घर बनाए जाएंगे। गरीबों के घर में नल से जल आया है, ऐसे ही पाइप से गैस पहुंचाने का काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार करेगी। गरीब के घर पर सूर्य बिजली का उपकरण लगाकर उसका बिजली बिल माफ करने का काम करेंगे। 3 करोड़ लखपति दीदियां भी हम बनाएंगे। भाई और बहनों, हम आपका आशीर्वाद मांगने आए हैं। ये लाल भाइयों ने सालों तक जाति और जनजाति को झगड़ा करा है। आपकी 20 की 20 सीटें लेकर विकास के नाम पर भी जीरो किया है। मैं आपको कहता हूं, मोदी जी पर भरोसा कर कमल के निशान पर वोट दीजिए। आने वाले दिनों में संपूर्ण त्रिपुरा वेस्ट हो या ईस्ट हो, हम उसको विकसित राज्य बनाने का कमिटमेंट करते हैं मित्रों, कमिटमेंट करते हैं। और ट्राइबल भाइयों को इस सम्मान की बात करते हैं, ट्राइबल संस्कृति की बात करते हैं। घुसपैठ अब तक किसने होने दी? कम्युनिस्टों ने होने दी, कांग्रेस ने होने दी। नरेंद्र मोदी सरकार ने बाढ़ को पूरी करने का काम कर घुसपैठ को रोकने का 90% काम किया है। मोदी जी को तीसरा मौका दीजिए, 100% घुसपैठ वहां
वहां से रुक जाएगी। ये मोदी का गारंटी है मित्रों, मोदी का गारंटी। भाइयों बहनों, महाराजा विक्रमदेव का हमारे त्रिपुरा पर बहुत बड़ा उपकार है। आज भारतीय जनता पार्टी ने, आगे आइए जरा, इनके ही परिवार से कृतिदेव सिंह जी को टिकट दिया है। मैं आपको अपील करने आया हूं, कृतिदेव सिंह जी को समर्थन कर नरेंद्र मोदी को समर्थन करिए। कृतिदेव सिंह जी के सामने दबाया हुआ हर बटन सीधा आपका वोट नरेंद्र मोदी को मिलने वाला है, मोदी को प्रधानमंत्री बनाने वाला है। मुझे बताओ, 26 तारीख को कमल के निशान पर बटन दबाएंगे क्या? जरा जोर से बोले, दबाएंगे? भाजपा को जिताएंगे, कृतिदेव सिंह जी को जिताएंगे, मोदी जी को तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाएंगे। तो मेरे साथ दोनों हाथ उठाइए, उठाइए दोनों हाथ, विजय के संकल्प की मुट्ठी पीछे और प्रचंड आवाज से बोलिए, भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की, वंदे वंदे वंदे। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। ধন্যবাদ মাননীয় গৃহমন্ত্রী অমিত ভাই শাহজিকে। আমরা ওনার মূল্যবান বক্তব্য শুনলাম। 2017 সালে উনি এসেছিলেন এবং ত্রিপুরা থেকে
তুমি কোথায় রেখা হামসা মানে আমাদের কেন্দ্রীয় প্রতিমন্ত্রী সুশ্রী প্রতিমা ভৌমিক মহোদয়া, ওনার জন্য সবাই একটা হাততালি আমরা দেব। এবং আমার সামনে মোর্চার সভাপতিরা রয়েছে, দিছে কিচ্ছু করতে পারছে না। টাকা পেয়ে সে ব্রিজ, প্রধানমন্ত্রী আবাস যোজনার অমিত ভাষা তোমার জানায় স্বাগতম, অমিত ভাষা তোমার জানায় স্বাগতম, অমিত ভাষা তোমার জানায় স্বাগতম, অমিত ভাষা তোমার জানায় স্বাগতম। भारत माता की, फिर एक बार, फिर एक बार, आपकी बार, आपकी बार, आपकी बार। অমিত ভাষাকে আমরা এই কুমারঘাটে দ্বিতীয়বার স্বাগত জানাচ্ছি। উনি আবার একবার ছিলেন। অমিত ভাষা তোমার জানায় স্বাগতম, অমিত ভাষা তোমার জানায় স্বাগতম, অমিত ভাষা তোমার জানায় স্বাগতম। বন্দে মাতরম, ভারত মাতা কি, নরেন্দ্র মোদী, নরেন্দ্র মোদী, অমিত ভাষা, অমিত ভাষা। নমস্কার। भारत माता की, भारत माता की। ভারত মাতা কি। আমাদের মধ্যে উপস্থিত হয়ে গিয়েছেন দেশের যশস্বী গৃহমন্ত্রী শ্রী অমিত ভাই শাহজি। এখন অমিত ভাই শাহজিকে রিসা দিয়ে এবং ফুলের তোড়া দিয়ে বরণ করে নেবেন ভারতীয় জনতা পার্টি ত্রিপুরা প্রদেশ কমিটির মাননীয় সভাপতি শ্রী রাজীব ভট্টাচার্য মহাশয়। এখন আপনাদের সামনে ভাষণ রাখবেন ত্রিপুরা প্রদেশ কমিটির সম্মানিত সভাপতি শ্রী রাজীব ভট্টাচার্য মহাশয়। আজ আমরা কুমারঘাটে আমরা মিলিত হয়েছি। আমাদের মধ্যে উপস্থিত হয়েছেন আমাদের ভারতবর্ষের গৃহমন্ত্রী, যিনি এই ত্রিপুরা রাজ্যের মুক্তির কাণ্ডারী মাননীয় অমিত ভাই শাহজি। উপস্থিত রয়েছেন আমাদের রাজ্যের মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী আমাদের প্রফেসর ডক্টর মানিক শাহ মহোদয়। উপস্থিত রয়েছেন আমাদের প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী শ্রী বিপ্লব কুমার দেব মহোদয়, আমাদের এই কেন্দ্রের যিনি প্রার্থী কৃতি দেবী দেববর্মা মহোদয়া, তিপ্রামাতার চেয়ারম্যান মাননীয় প্রদ্যোৎ কিশোর দেববর্মন মহোদয় এবং মঞ্চে উপস্থিত অন্যান্য অতিথিবৃন্দ এবং এই কুমারঘাটে আজকে এই জনসভায় যারা সমবেত হয়েছেন প্রত্যেককে আমি আন্তরিকভাবে অভিনন্দন এবং শুভেচ্ছা জানাচ্ছি, আমি স্বাগত জানাচ্ছি। আজ আমার একটা কথা মনে পড়ছে যে ত্রিপুরা রাজ্য থেকে এই সিপিএম কে হটানোর জন্য সেই ঐতিহাসিক র্যালি। এখন আপনাদের সামনে বক্তব্য রাখবেন এই রাজ্যের প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী তথা বর্তমান রাজ্যসভার সদস্য এবং পশ্চিম ত্রিপুরা লোকসভা আসনের মাননীয় প্রার্থী শ্রী বিপ্লব কুমার দেব মহাশয়। আজকে কুমারঘাটে আমি ভাষণ দেব না। আজকে কার ভাষণ শোনার জন্য এসেছেন আপনারা? কার ভাষণ? কার ভাই শোনা যায় না তো, শুনি না তো আমি। কার 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 বন্ধুরা, মঞ্চে উপস্থিত দেশের যশস্বী গৃহমন্ত্রী এবং ত্রিপুরা রাজ্যের আসলি মুক্তিদাতা আদরণীয় অমিত ভাই শাহ মহোদয়, আর এখানে ত্রিপুরা রাজ্যের আদরণীয় মুখ্যমন্ত্রী মানিক শাহ মহোদয়, মঞ্চে উপস্থিত মহারাজা প্রদ্যোৎ কিশোর মানিক্য এবং মঞ্চে উপস্থিত অন্যান্য নেতৃত্ব और বড় মাত্রায় উপস্থিত আমার উত্তর উন্নকটি ধলাইবাসীরা, একবার বড় জোরে একবার অমিত ভাই শাহর জন্য তালি লাগানো।
আমি যে পশ্চিমে প্রার্থী হয়েছে কে কে জানে হাত তুলো তো দেখি। আর পূর্বে প্রার্থী কে কে? পূর্বে প্রার্থীর নাম কি? কি নাম? এখানে আছে মঞ্চে, ওনাকে জিতাবেন, জিতাবেন। অমিত ভাই সামনে বলছেন জিতাবেন পাক্কা। আমি আবার ভাষণ দেব, আজকে আমি ভাষণ দেব না, আমি শুধু আপনাদের ভালোবাসা চাই, আমি আপনাদের যে জোশ এটা চাই। এটার আগে 26 তারিখ পর্যন্ত 90% ভোট করবে, মোদীকে সিট পাঠাবে। এখানে একটা কথা মঞ্জু ভাইকে দেখাও, কে কে করোনা টিকাকরণ করেছো? হাত উঠাও তো দেখাও, নিচে করো। মোদীজির 5 কিলো করে চাউল কে কে পাচ্ছে? হাত উঠাও তো। মোদীজির ঘর কে কে পেয়েছে? हाथ उठाओ तो। অমিত ভাই সব মিলা হ্যায়। আমি এখন আর আমার ভাষণ দেব না, আমি পরে দিদিকে জিতানোর পর তারপরে আসবো। কুমারঘাটের 4 জন বিপ্লব দেব আসবে, সবার সঙ্গে জিতের খুশি মানাবে। সবাইকে আবারও একবার আমার সঙ্গে জোরসে মুষ্টিবন্ধ, হাত উপরে তোলা, হাত উপরে তোলা, মুষ্টিবন্ধ। সিপিএম কংগ্রেস যাতে শুনে, ঠিক আছে? भारत माता की, भारत माता की, नरेंद्र भाई मोदी की, अमित शाह जी की, जेपी नड्डा की, कुमारघाटवासी की, उत्तरवासी की, धलाईवासी की, সবাইকে অনেক অনেক ধন্যবাদ। এখন আপনাদের সামনে বক্তব্য রাখবেন তিপ্রামাতা দলের যিনি ফাউন্ডার রয়েছেন মহারাজা প্রদ্যোৎ কিশোর দেব মানিক্য মহোদয়। माननीय गृह मंत्री जी, माननीय मुख्यमंत्री जी, यहां में मंच में सब बैठे हैं, मंत्री, हमारे बीजेपी के अध्यक्ष, हमारे कैंडिडेट वेस्ट त्रिपुरा से पूर्व मुख्यमंत्री जी बिप्लब देव जी। मैं ज्यादा समय नहीं लूंगा। कुमारघाट से आज पहली बार, जिंदगी में पहली बार मैं उसी मंच में खड़ा हूं जहां में हमारे गृह मंत्री जी खड़े हैं, और मैं गृह मंत्री जी को तोहफे में त्रिपुरा से दोनों सीट वर्ल्ड रिकॉर्ड मार्जिन से आपको और मोदी जी को देना चाहता हूं। यहां में मैं ज्यादा नहीं बोलूंगा क्योंकि हम सब देश के होम मिनिस्टर को सुनने आए हैं। सिर्फ 2 बात रखना चाहता हूं। मैं तिपरा मोथा का फाउंडर और मैं एक समय चेयरमैन रह चुका हूं। मेरे साथ यहां में विजय कुमार रांखोल जी हैं, हमारे एमएलए हैं, हमारे ब्रू शरणार्थी लीडर्स हैं। मैंने देखा है जब 2018 में मैं पहली बार गृह मंत्री जी से मिला था, हमारे जो ब्रू शरणार्थी थे जिनको कंचनपुर में कम्युनिस्ट की सरकार ने इतने सालों तक वंचित रखा, गरीब रखा, उनके शिक्षा के लिए नहीं सोचा, उनके भविष्य के लिए नहीं सोचा, उनके बच्चे के लिए नहीं सोचा। उस समय मैंने गृह मंत्री जी से एक निवेदन किया था। इतिहास गवाह है कि 2 महीने के अंदर जो 20-25 साल का प्रॉब्लम था, 2 महीने के अंदर गृह मंत्री जी ने हमारे ब्रू को दिया। आज अगर त्रिपुरा में ब्रू एक सम्मान का जिंदगी जी रहा है, अगर आपके बच्चे का एक भविष्य आज है, तो उसमें एक बहुत बड़ा हाथ हमारे गृह मंत्री जी का है। इसमें हमें भूलना नहीं चाहिए, हमें भूलना नहीं चाहिए कि हमारे साथ हमारे खराब समय में कौन रहा। आज से 1 महीने पहले मैंने, हमारे प्रेसिडेंट विजय कुमार रांखोल ने, हमारे मंत्री ने, हमारे एमएलए ने, हमने एक हिस्टोरिक तिपरासा अकॉर्ड साइन किया है। बहुत लोग स्पेशली कम्युनिस्ट इतिहास को नकारते हैं, इतिहास को बदलने की कोशिश करते हैं, लेकिन कुमारघाट में मैं बोलना चाहता हूं और मीडिया के थ्रू बोलना चाहता हूं। आज से 75 साल पहले महारानी कंचन प्रभा देवी ने देश के उस समय के होम मिनिस्टर हमारे
सरदार पटेल के संग एक एग्रीमेंट साइन किया था, उसके बाद त्रिपुरा एक हिंदुस्तान का अटूट अंग बना। 75 साल बाद कंचन प्रभा देवी का नाती को वही सम्मान, उस परिवार को वही सम्मान देश का होम मिनिस्टर श्री अमित शाह जी ने दिया है। यह सम्मान मुझे व्यक्तिगत तौर से नहीं दिया गया है, यह हमारे त्रिपुरा के इंडिजिनस लोग, हमारे जनजातीय, हमारे ट्राइबल लोगों को, हमारे हानी बुसा को, हमारे बुकुंबारा को आज हमारा होम मिनिस्टर ने दिया है। ये शांति से मिला है। आज से पूरे नॉर्थ ईस्ट में आप देखेंगे, जब भी किसी को कुछ प्राप्त हुआ, ये वायलेंस से हुआ, झगड़ के हुआ, बंदूक से हुआ। इस बार ना किसी का घर जला है, ना किसी की मृत्यु हुई है, ना कहीं में आतंकवाद हुआ है। आज शांति से हम त्रिपुरा के जनजाति, इंडिजिनस, हानी बुसा को और स्थानीय लोगों को आगे ले जाना चाहते हैं। कम्युनिस्ट सरकार ने 25 साल तक यहां में राज किया, हमारा इतिहास को बदला, हमारे गरीब तिपरासा को कुछ नहीं दिया। आज अगर हमको अपना बच्चा का भविष्य बनाना होता है तो हमें कलकत्ता, दिल्ली, बेंगलोर, हैदराबाद, पूना जाना पड़ता है। मैं चाहता हूं कि अगर हमें अपना भविष्य को ठीक करना है तो हमें त्रिपुरा के बाहर नहीं देखना है। यह कैसे होगा अगर केंद्र सरकार हमारे साथ नहीं खड़ा होगा। मैं अपने तिपरासा को बोलना चाहता हूं, हमने 20 के 20 सीट बहुत बार कम्युनिस्ट को दिया, रिटर्न में क्या मिला? गरीबी, बेरोजगारी, भूख, शिक्षा कहीं नहीं, कहीं में पीने के लिए, पानी के लिए हमें 5-5 किलोमीटर चलना पड़ता था। आज समय आया है, आज समय आया है कि हम अपने दुश्मन को, जिसने हमें वंचित रखा, जिसने हमें नॉर्थ ईस्ट में सबसे गरीब अगर कोई जनजाति है तो वो त्रिपुरा का है, किसने रखा है? वो समझिए, किसने आज हमें इस स्थिति में रखा है और उसका जवाब इस इलेक्शन में आप दीजिए। मैं यहां में अपनी बहन के लिए वोट मांगने नहीं आया हूं, मैं यहां में अपने लोगों को एक अच्छा भविष्य देने के लिए, अपने नेक्स्ट जनरेशन को एक अच्छा कल देने के लिए बात करने के लिए आया हूं। मैं अंत में गृह मंत्री जी को एक छोटे भाई के तरीके से एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूं। गृह मंत्री जी, आपने हमें बहुत दिया है, हम आभारी हैं और हम चाहते हैं कि आप भी आज हमारे लिए और 2 शब्द बोलिए, क्योंकि कम्युनिस्ट ने एक अफवाह फैलाया हुआ है, कुछ नहीं मिलेगा, और मैं बोलता हूं सब कुछ मिलेगा, सबको मिलेगा। मैं ये निवेदन करके अपने लोगों को बोलना चाहता हूं, 19 तारीख वेस्ट त्रिपुरा में, 26 तारीख ईस्ट त्रिपुरा में, यहां में एक मैसेज आप भेजिए कि त्रिपुरा अब कम्युनिस्ट के हाथों से निकल चुका है और एक नया कल बनाना चाहता है। यही मैं बोलकर अपने सबको धन्यवाद बोलना चाहता हूं। तिपरासा दफा आयुक लोकथोंग, तिपरासा जाति आयुक लोकथोंग, भारत माता की जय, और त्रिपुरा के सब लोगों को मेरा बेराय बेलाइनो हामबाय खुलूंगा। धन्यवाद, थैंक यू। আপনাদের সামনে এখন মূল্যবান বক্তব্য রাখবেন রাজ্যের যশস্বী মুখ্যমন্ত্রী প্রফেসর ডক্টর মানিক শাহ মহোদয়। ওনাকে অনুরোধ করব ওনার মূল্যবান বক্তব্য রাখার জন্য। যতনা খুলুঙ্খা সবাইকে নমস্কার। আজকে আসন্ন 18তম যে লোকসভার নির্বাচন, সেই নির্বাচনে আমাদের মাঝে উপস্থিত আছেন আমাদের যশস্বী ভারত সরকারের গৃহমন্ত্রী শ্রী অমিত শাহজি। আমাদের মাঝে উপস্থিত আছেন আমাদের ত্রিপুরা প্রদেশ বিজেপির মাননীয় সভাপতি শ্রী রাজীব ভট্টাচার্য মহোদয়। উপস্থিত আমাদের পশ্চিম আসন থেকে ভারতীয় জনতা পার্টির যাকে মনোনয়ন দেওয়া হয়েছে, আপনাদের সবার পরিচয়, যিনি একটু আগে ওনার মূল্যবান বক্তব্য এখানে রেখেছেন, আমাদের প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী ও রাজ্যসভার সদস্য শ্রী বিপ্লব কুমার দেব মহোদয়। আমাদের মাঝে উপস্থিত আছেন পূর্ব আসনের
ভারতীয় জনতা পার্টির পদ্ম চিহ্নের, যাকে ভারতীয় জনতা পার্টির থেকে মনোনয়ন দেওয়া হয়েছে, মহারানী কৃতি সিং দেববর্মা মহোদয়া, এবং আমাদের মাঝে যিনি একটু আগে ওনার ভাষণ আপনাদের সামনে রেখেছেন, তীব্রামতার ফাউন্ডার আমাদের, তাছাড়া আমাদের সাথে উপস্থিত আছেন আমাদের এই তীব্রামতার চেয়ারম্যান এবং অন্যান্য নেতৃবৃন্দ এখানে উপস্থিত আছেন, ত্রিপুরা সরকারের মন্ত্রী এবং আমাদের নেতৃবৃন্দরা, এবং আমার এই ঊনকোটি এবং সমস্ত এখানে যারা ত্রিপুরাবাসীরা আছেন, সবাইকে আমি হার্দিক অভিনন্দন ও শুভেচ্ছা জানাচ্ছি। বন্ধুগণ, আপনারা সবাই দেখেছেন যে গত 28 মার্চে আমরা যখন এখানে নমিনেশন দাখিল করি, আমাদের কার্যকর্তা শুদ্ধ আমাদের ভারতীয় জনতা পার্টির কার্যকর্তা, তীব্রামতার কার্যকর্তা এবং আইপিএফটির কার্যকর্তা এবং সাধারণ মানুষ প্রায় 40,000 লোক আমরা সেই যখন আমরা এই নমিনেশন সাবমিট করি তখনই বোঝা গিয়েছিল যে 4 জুন আমাদের অপেক্ষা করতে হবে না, রেজাল্ট কি আমরা সেদিনে আমরা বুঝে গিয়েছিলাম। বন্ধুগণ, শুধু তাই নয়, যখন 27 মার্চে আমরা পশ্চিম আসনে আমরা সেখানেও যখন নমিনেশন দাখিল করি, হাজারো হাজারো লোক, 35-40 হাজার লোক আমাদের সাথে সেদিনও নমিনেশন দাখিলের সময় সেখানে উপস্থিত ছিল। বোঝা যাচ্ছে, একটা বার টিপ দিলে বোঝা যায় কোন দিক সাই যাচ্ছে। বন্ধুগণ, আমাদের এইবারের যে মোদিজির যে গ্যারান্টি, সেই গ্যারান্টিকে সামনে রেখে এবারে নির্বাচন খুব ইম্পর্টেন্ট নির্বাচন। আগামী 2047 সনে এই যে বিকশিত ভারত, তার যে সুফল তার পাওয়ার জন্য যে নির্বাচন, সেই নির্বাচন ভারতীয় জনতা পার্টি পঞ্চায়েত থেকে আরম্ভ করে পার্লামেন্টের ইলেকশন পর্যন্ত খুব সিরিয়াসলি আমরা দেখি। আমরা চাই যে মোদিজি যেভাবে কাজ করছেন, মোদিজির হাত শক্তিশালী করার জন্য এবারের নির্বাচনে আমি নিশ্চিত যে আমরা তো জয়যুক্ত করব। অনেকে জিজ্ঞেস করে আপনাদের চ্যালেঞ্জ কি? আমাদের চ্যালেঞ্জ হচ্ছে কত পার্সেন্টেজ আমরা বেশি পাবো, সেই তার হচ্ছে চ্যালেঞ্জ। আমি আর বেশি কিছু বলছি না। বন্ধুগণ, আগামী আমি এখানে 2টো সিটের জন্য এখানে যারাই আছেন সবার কাছে একটাই আপনাদের কাছে নিবেদন করব যে সঠিক টাইমে সকাল সকাল গিয়ে আপনারা ভারতীয় জনতা পার্টির পদ্মচিহ্নে ভোট দিয়ে আমাদের এই পশ্চিম আসনের এবং পূর্ব আসনের যিনি আমাদের ভারতীয় জনতা পার্টির থেকে দাঁড়িয়েছেন, এই পূর্ব আসনের মহারানী কৃতি সিং দেববর্মা মহোদয়াকে 26শে এপ্রিল বিপুল ভোটে জয়যুক্ত করবেন। সবাইকে ধন্যবাদ। নমস্কার। বন্দে মাতরম। ভারত মাতা কি জয়। ধন্যবাদ মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী মহোদয়কে। এখন আপনাদের সামনে বক্তব্য রাখবেন, যার বক্তব্য শোনার জন্য আপনারা দীর্ঘক্ষণ ধরে এই প্রচন্ড রৌদ্রের মধ্যে বসে আছেন, ভারতবর্ষের যশস্বী গৃহমন্ত্রী, শ্রদ্ধেয় আমাদের সকলের প্রিয় নেতা শ্রী অমিত ভাই শাহজি আপনাদের সামনে বক্তব্য রাখবেন। একবার সবাই করতালি দিয়ে আমরা ওনাকে স্বাগত জানাবো। ভারত মাতা কি। मेरे साथ बोलिए, भारत माता की। क्यों भाई, कुमार घाट वालों की आवाज को क्या हो गया है? 400 पार करना है या नहीं करना है? मोदी जी को फिर से प्रधानमंत्री बनाना है या नहीं बनाना है? तो ऐसी आवाज नहीं चलेगी। दोनों हाथ उठाइए, उठाइए दोनों हाथ, विजय के संकल्प का मुट्ठी पींचिए और प्रचंड आवाज से बोलिए, भारत माता की, भारत माता की। मंच पर उपस्थित त्रिपुरा के लोकप्रिय मुख्यमंत्री डॉक्टर माणिक शाह जी, हमारे राजा साहब और मेरे मित्र त्रिपुरा मोथा के अध्यक्ष महोदय, मेरे साथ आए हुए हमारे दोनों प्रत्याशी पश्चिम त्रिपुरा से विप्लव कुमार देव जी, विप्लव जी खड़े हो जाइए जरा, और पूर्वी त्रिपुरा से महारानी कृति सिंह जी, हमारे प्रदेश अध्यक्ष महोदय श्री टिंकू रॉय, श्री सुधांशु दास, हमारी ट्राइबल मंत्री आगे आओ, चकमा आगे आओ, जोर से ताली बजाओ सेंटरना चकमा के लिए सभी लोग। हमारे त्रिपुरा मोथा के साथी अनिमेश देववर्मा जी, अनिमेश जी खड़े हो जाइए आप।
शुक्लचरण नोतिया जी, हमारी नेत्री, भारत सरकार में मंत्री बहन प्रतिमा भौमिक जी, और आज कुमार घाट की इस भूमि पर आए हुए प्यारे भाइयों बहनों माताओं और मेरे जिगर के टुकड़े जैसे युवा मित्रों, आप सभी को नमस्कार। मुझे बरोबर याद है 2017 का दिसंबर माह होगा और मैं यहां पर त्रिपुरा मुक्ति के लिए पहली रैली करने आया था और यहीं से त्रिपुरा को कम्युनिस्टों से मुक्त करने की शुरुआत की थी। और आज इस महान त्रिपुरा की जनता ने इतने सालों के कम्युनिस्ट शासन को समाप्त कर त्रिपुरा में मोदी जी पर भरोसा कर विकास का एक नया रास्ता चुनने का काम किया है। मित्रों, मैं जब यहां आया हूं तब सबसे पहले मां त्रिपुरा सुंदरी को, बाबा गरिया मंदिर को और सभी देवी देवताओं को प्रणाम कर मेरी बात की शुरुआत करना चाहता हूं। मैं यहां आया हूं तब विनम्र शासक और जिनके मन में देश और जनता के अलावे कुछ नहीं था, ऐसे महाराजा वीर विक्रम माणिक्य किशोर जी को भी मनपूर्वक प्रणाम करना चाहता हूं। इतने सालों से कम्युनिस्टों ने महाराजा वीर विक्रम माणिक्य किशोर जी को केवल और केवल बुलाने का काम किया। नरेंद्र मोदी जी ने इनके नाम पर त्रिपुरा के एयरपोर्ट देकर बड़ी मूर्ति प्रस्थापित कर उनको चिर स्मरण करने का काम नरेंद्र मोदी जी ने किया है। और मित्रों, अभी अभी आपने पद्म पुरस्कारों का सूची देखा होगा। सतराम रियांग और बेनी चंद्र जमातिया, हमारे 2 ट्राइबल भाइयों को पद्म पुरस्कार देकर मोदी जी ने ट्राइबलों का सम्मान बढ़ाने का काम किया है। भाई और बहनों, नरेंद्र मोदी सरकार ने आदिवासियों के सम्मान के लिए, सुरक्षा के लिए और समावेशी विकास के लिए देश भर में न केवल विकास के काम चलाए हैं, उनको साथ में रखने का भी काम किया है। कांग्रेस और कम्युनिस्ट सालों तक शासन करते रहे, एक भी आदिवासी बेटा बेटी को देश का राष्ट्रपति नहीं बनाया। आजादी के 75 साल बाद पहली बार नरेंद्र मोदी जी ने ओडिशा के गरीब आदिवासी की बेटी द्रौपदी जी मुर्मू को महामहिम द्रौपदी मुर्मू बनाकर आदिवासियों का सम्मान करने का काम किया है। सैकड़ों करोड़ों रुपया खर्च कर सैकड़ों करोड़ों रुपया खर्च कर आदिवासी पूर्वज हमारे जो देश के लिए काम करे, उनके म्यूजियम बन रहे हैं। और मैं आज बताना चाहता हूं, हर म्यूजियम में हमारे राजा साहब का प्रतिमा भी है। ये हम सब के लिए गौरव का विषय है। भाई और बहनों, जनजातीय मंत्रालय में, ट्राइबल मंत्रालय में पहले 24,000 करोड़ रुपए का बजट था। मेरी बात ध्यान से सुनना, इतने बड़े देश के ट्राइबल आबादी के लिए सिर्फ 24,000 करोड़ था। नरेंद्र मोदी जी ने 1,25,000 करोड़ का बजट ट्राइबल मंत्रालय का किया है। और एकलव्य मॉडल स्कूल 75 साल में, 70 साल में सिर्फ 90 बने थे। मोदी जी के 5 साल में 740 एकलव्य स्कूल बढ़ाने का काम हमने किया है। भाई और बहनों, त्रिपुरा पहले विप्लव देव जी और अब डॉक्टर माणिक शाह के नेतृत्व में विकास के रास्ते पर आगे बढ़ पड़े। आज सुबह ही राजा साहब भी बैठे थे। टूरिज्म, कनेक्टिविटी, एयर कनेक्टिविटी, स्वास्थ्य, नौकरियां और इंफ्रास्ट्रक्चर, हर क्षेत्र में
नरेंद्र मोदी सरकार की प्रायोरिटी हमारा त्रिपुरा है। और मैं आज बताने जा रहा हूं, त्रिपुरा में भी हमारी प्रायोरिटी हमारा ट्राइबल एरिया भारत सरकार का प्रायोरिटी है। भाई और बहनों, अभी अभी हमने एक एग्रीमेंट किया है भारत सरकार, त्रिपुरा सरकार और राजा साहब के साथ, त्रिपुरा मोथा के साथ। एग्रीमेंट के लिए ढेर सारी चीजें बोली जा रही है, मगर मैं आज आपको बताकर जाता हूं, आपकी सभी समस्याओं का समाधान उस एग्रीमेंट में है। मुझ पर भरोसा करिएगा, एक कम्युनिस्ट जहर घोलने का काम। त्रिपुरा की जाति और जनजाति दोनों के बीच में शांति रहे, दोनों का विकास हो और संघर्ष की जगह विकास के रास्ते पर त्रिपुरा आगे बढ़ पड़े, इसका एग्रीमेंट में पूरा ध्यान रखा गया है। ये राजा साहब है तो राजा, मगर बनने से भी ज्यादा चतुर है भाई। छोटी छोटी चीज पर आपकी सभी हितों का ध्यान उन्होंने रखा है और मोदी जी ने इसको आशीर्वाद देने का काम किया है। भाई और बहनों, मोदी जी ने देश भर में 2,94,00,000 गरीबों के घर बनाए। इसका सबसे बड़ा फायदा एसटी लाभार्थियों को हुआ है। 21% घर एसटी को मिले, 14 करोड़ टॉयलेट बनाए, 70 करोड़ लोगों को 5 किलो चावल प्रति माह प्रति व्यक्ति मुफ्त में दिया जाता है। त्रिपुरा वालों, आपको मिलता है या नहीं मिलता है, जरा बताओ तो। भाई चावल आता है ना? हर एक के घर में गैस का सिलेंडर भेजने वाले हैं और नए 3 करोड़ घर मोदी जी ने वादा किया है। बाद में कोई भी ट्राइबल हमारा घर बगैर का नहीं रहेगा। ये मोदी का गारंटी है भाइयों, मोदी का गारंटी। सबरूम रेलवे स्टेशन को एक्सटेंड किया गया, 23 ट्रेनें अब चल रही है। अगरतला अखौरा रेलवे लाइन को आगे बढ़ाने का काम किया और एक हाईवे ही था कम्युनिस्टों के 30 साल के शासन में। अब त्रिपुरा में 9 हाईवे बनाने का काम नरेंद्र मोदी सरकार ने किया है। विद्या ज्योति स्कूल को सीबीएसई में लिया। बमुतिया में सेंट्रल संस्कृत यूनिवर्सिटी बन रही है। नरसिंहगढ़ में अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम बन रहा है, जिससे आईपीएल और राष्ट्रीय मैच भी यहां आएगी। सब रूम के अंदर 1550 करोड़ के खर्चे से जलेपा में स्पेशल इकोनॉमिक जोन बन रहा है, जहां इंडस्ट्री भी आएगी, रोजगारी भी आएगी। और अपने अकेले त्रिपुरा में 87,000 लखपति दीदी है मोदी जी ने, और 3 करोड़ लखपति दीदी बनाने का लक्ष्य रखा है। अकेले त्रिपुरा में 3.5 लाख लखपति दीदी बनेगा। और आज 140 करोड़ से एक अनूठा यूनिटी मॉल भी बनाने का काम त्रिपुरा के अंदर हुआ है। भाई और बहनों, कम्युनिस्ट जहां जहां गए वहां क्या छोड़ा? गरीबी, भूखमरी, स्वास्थ्य का अभाव, शिक्षा का अभाव और युवाओं के हाथ में बंदूक थमाने का काम एक कम्युनिस्ट पार्टी ने किया। और भारतीय जनता पार्टी के नेता नरेंद्र मोदी जी ने युवाओं के हाथ में लैपटॉप पकड़ाने का काम किया है। पूरे नॉर्थ ईस्ट के अंदर 10 से ज्यादा समझौते कर सभी ट्राइब को 10,000 युवाओं के हाथ में से हथियार छुड़ाकर उनको मेन स्ट्रीम में लाने का काम भारतीय जनता पार्टी और नरेंद्र मोदी सरकार ने किया है। भाइयों और बहनों, मैं आज त्रिपुरा में कहना चाहता हूं, हमारे ब्रू और रियांग भाई, इनके परिवार 40,000 लोग नर्क की जिंदगी जी रहे थे,
नरेंद्र मोदी सरकार ने सभी ब्रू रियांग को अच्छे गांव बसा कर दिए और उनके जीवन के अंदर उजियारा लाने का काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया। भाई और बहनों, ये कम्युनिस्ट यहां आते हैं, कांग्रेस वाले आते हैं। मैं आज त्रिपुरा के कांग्रेस और कम्युनिस्ट नेताओं को पूछने आया हूं। 10 साल आपकी सरकार थी, सोनिया मनमोहन की सरकार थी, आपने त्रिपुरा को क्या दिया? हर 10 साल में आपने 40,183 करोड़ रुपया दिया, सिर्फ 40,000 करोड़। और मोदी जी ने ये 10 साल में 40,000 करोड़ के सामने 98,000 करोड़ रुपया देने का काम मोदी जी ने किया है। इसके साथ साथ 20,000 करोड़ के इंफ्रास्ट्रक्चर, 17,000 करोड़ सड़क के, 2,000 करोड़ रेलवे के और 1,000 करोड़ एयरपोर्ट का किया है। और भाई और बहनों, मोदी गारंटी की बात मैं करना चाहता हूं। कोई भी व्यक्ति हो, गरीब हो, धनवान हो, 70 साल की ऊपर के सभी नागरिकों को 5 लाख तक का सभी स्वास्थ्य का खर्चा अब भारतीय जनता पार्टी उठाएगी। नए 3 करोड़ घर बनाए जाएंगे। गरीबों के घर में नल से जल आया है, ऐसे ही पाइप से गैस पहुंचाने का काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार करेगी। गरीब के घर पर सूर्य बिजली का उपकरण लगाकर उसका बिजली बिल माफ करने का काम करेंगे। 3 करोड़ लखपति दीदियां भी हम बनाएंगे। भाई और बहनों, हम आपका आशीर्वाद मांगने आए हैं। ये लाल भाइयों ने सालों तक जाति और जनजाति को झगड़ा कराया। आपकी 20 की 20 सीटें लेकर विकास के नाम पर बिग जीरो किया है। मैं आपको कहता हूं, मोदी जी पर भरोसा कर कमल के निशान पर वोट दीजिए। आने वाले दिनों में संपूर्ण त्रिपुरा, वेस्ट हो या ईस्ट हो, हम उसको विकसित राज्य बनाने का कमिटमेंट करते हैं मित्रों, कमिटमेंट करते हैं। और ट्राइबल भाइयों को इस सम्मान की बात करते हैं, ट्राइबल संस्कृति की बात करते हैं। घुसपैठ अब तक किसने होने दी? कम्युनिस्टों ने होने दी, कांग्रेस ने होने दी। नरेंद्र मोदी सरकार ने बाढ़ को पूरी करने का काम कर घुसपैठ को रोकने का 90% काम किया है। मोदी जी को तीसरा मौका दीजिए, 100% घुसपैठ वहां से रुक जाएगी। ये मोदी का गारंटी है मित्रों, मोदी का गारंटी। भाइयों बहनों, महाराजा विक्रमदेव का हमारे त्रिपुरा पर बहुत बड़ा उपकार है। आज भारतीय जनता पार्टी ने, आगे आइए जरा, इनके ही परिवार से कृतिदेव सिंह जी को टिकट दिया है। मैं आपको अपील करने आया हूं, कृतिदेव सिंह जी को समर्थन कर नरेंद्र मोदी को समर्थन करिए। कृतिदेव सिंह जी के सामने दबाया हुआ हर बटन सीधा आपका वोट नरेंद्र मोदी को मिलने वाला है, मोदी को प्रधानमंत्री बनाने वाला है। मुझे बताओ, 26 तारीख को कमल के निशान पर बटन दबाएंगे क्या? जरा जोर से बोले, दबाएंगे? भाजपा को जिताएंगे? कृतिदेव जी को जिताए, मोदी जी को तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाएंगे? तो मेरे साथ दोनों हाथ उठाइए, उठाइए दोनों हाथ, विजय के संकल्प की मुट्ठी पीछे प्रचंड बात बोलिए, भारत मां की, भारत माता की, भारत माता की, वंदे वंदे वंदे। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। ধন্যবাদ মাননীয় গৃহমন্ত্রী অমিত ভাই শাহজিকে। আমরা ওনার মূল্যবান বক্তব্য শুনলাম। 2017 সালে উনি এসেছিলেন এবং ত্রিপুরা থেকে সিপিএম এখান থেকে মুক্ত হয়েছিল এবং ত্রিপুরাবাসী মুক্তি পেয়েছিলেন। আজ আমাদের
অমিত ভাষা তোমায় জানাই স্বাগতম। মায়েরা উলুধ্বনি দিন। অমিত ভাষা তোমায় জানাই স্বাগতম। 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 भारत माता की फिर एक बार आपकी बार অমিত ভাষাকে আমরা এই কুমারঘাটে দ্বিতীয়বার স্বাগত জানাচ্ছি। উনি সামনে বক্তব্য রাখবেন ত্রিপুরা মাতা দলের যিনি ফাউন্ডার রয়েছেন মহারাজা প্রদ্যোৎ কিশোর দেব মাণিক্য মহোদয়। माननीय गृह मंत्री जी, माननीय मुख्यमंत्री जी, यहां में मंच में सब बैठे हैं मंत्री, हमारे बीजेपी के अध्यक्ष, हमारे कैंडिडेट वेस्ट त्रिपुरा से पूर्व मुख्यमंत्री जी बिप्लब देव जी। मैं ज्यादा समय नहीं लूंगा। कुमारघाट से आज पहली बार जिंदगी में पहली बार मैं उसी मंच में खड़ा हूं जहां में हमारे गृह मंत्री जी खड़े हैं, और मैं गृह मंत्री जी को तोहफे में त्रिपुरा से दोनों सीट वर्ल्ड रिकॉर्ड मार्जिन से आपको और मोदी जी को देना चाहता हूं। यहां में मैं ज्यादा नहीं बोलूंगा क्योंकि हम सब देश के होम मिनिस्टर को सुनने आए हैं। सिर्फ दो बात रखना चाहता हूं। मैं त्रिपुरा मोथा का फाउंडर और मैं एक समय चेयरमैन रह चुका हूं। मेरे साथ यहां में विजय कुमार रांखल जी हैं, हमारे एमएलएज हैं, हमारे ब्रू शरणार्थी लीडर्स हैं। मैंने देखा है जब 2018 में मैं पहली बार गृह मंत्री जी से मिला था, हमारे जो ब्रू शरणार्थी थे जिनको कंचनपुर में कम्युनिस्ट की सरकार ने इतने सालों तक वंचित रखा, गरीब रखा, उनके शिक्षा के लिए नहीं सोचा, उनके भविष्य के लिए नहीं सोचा, उनके बच्चे के लिए नहीं सोचा। उस समय मैंने गृह मंत्री जी से एक निवेदन किया था। इतिहास गवाह है कि 2 महीने के अंदर जो 20-25 साल का प्रॉब्लम था, 2 महीने के अंदर गृह मंत्री जी ने हमारे ब्रू को दिया। आज अगर त्रिपुरा में ब्रू एक सम्मान का जिंदगी जी रहा है, अगर आपके बच्चे का एक भविष्य आज है, तो उसमें एक बहुत बड़ा हाथ हमारे गृह मंत्री जी का है। इसमें हमें भूलना नहीं चाहिए, हमें भूलना नहीं चाहिए कि हमारे साथ हमारे खराब समय में कौन रहा। आज से 1 महीने पहले मैंने, हमारे प्रेसिडेंट विजय कुमार रांखल ने, हमारे मंत्री ने, हमारे एमएलए ने, हमने एक हिस्टोरिक त्रिपुरा अकॉर्ड साइन किया है। बहुत लोग स्पेशली कम्युनिस्ट इतिहास को नकारते हैं, इतिहास को बदलने की कोशिश करते हैं, लेकिन कुमारघाट में मैं बोलना चाहता हूं और मीडिया के थ्रू बोलना चाहता हूं। आज से 75 साल पहले महारानी कंचन प्रभा देवी ने देश के उस समय के होम मिनिस्टर हमारे सरदार पटेल के संग एक एग्रीमेंट साइन किया था। उसके बाद त्रिपुरा एक हिंदुस्तान का अटूट अंग बना। 75 साल बाद कंचन प्रभा देवी का नाती को वही सम्मान, उस परिवार को वही सम्मान देश का होम मिनिस्टर श्री अमित शाह जी ने दिया है। यह सम्मान मुझे व्यक्तिगत तौर से नहीं दिया गया है, यह हमारे त्रिपुरा के इंडिजिनस लोग, हमारे जनजाति, हमारे ट्राइबल लोगों को, हमारे हानी बुसा को, हमारे बुकुंगबारा को आज हमारा होम मिनिस्टर ने दिया है। ये शांति से मिला है। आज से पूरे नॉर्थ ईस्ट में आप देखेंगे जब भी किसी को कुछ प्राप्त हुआ
ये वायलेंस से हुआ, झगड़ के हुआ, बंदूक से हुआ। इस बार ना किसी का घर जला है, ना किसी की मृत्यु हुई है, ना कहीं में आतंकवाद हुआ है। आज शांति से हम त्रिपुरा के जनजाति इंडिजिनस हानी बुसा को और स्थानीय लोगों को आगे ले जाना चाहते हैं। कम्युनिस्ट सरकार ने 25 साल तक यहां में राज किया, हमारा इतिहास को बदला, हमारे गरीब तिपरासा को कुछ नहीं दिया। आज अगर हमको अपना बच्चा का भविष्य बनाना होता है तो हमें कलकत्ता, दिल्ली, बेंगलोर, हैदराबाद, पूना जाना पड़ता है। मैं चाहता हूं कि अगर हमें अपना भविष्य को ठीक करना है तो हमें त्रिपुरा के बाहर नहीं देखना है। यह कैसे होगा अगर केंद्र सरकार हमारे साथ नहीं खड़ा होगा। मैं अपने तिपरासा को बोलना चाहता हूं, हमने 20 के 20 सीट बहुत बार कम्युनिस्ट को दिया, रिटर्न में क्या मिला? गरीबी, बेरोजगारी, भूख, शिक्षा कहीं नहीं, कहीं में पीने के लिए, पानी के लिए हमें 5-5 किलोमीटर चलना पड़ता था। आज समय आया है कि हम अपने दुश्मन को, जिसने हमें वंचित रखा, जिसने हमें नॉर्थ ईस्ट में सबसे गरीब अगर कोई जनजाति है तो वो त्रिपुरा का है, किसने रखा है वो समझिए, किसने आज हमें इस स्थिति में रखा है और उसका जवाब इस इलेक्शन में आप दीजिए। मैं यहां में अपनी बहन के लिए वोट मांगने नहीं आया हूं, मैं यहां में अपने लोगों को एक अच्छा भविष्य देने के लिए, अपने नेक्स्ट जनरेशन को एक अच्छा कल देने के लिए बात करने के लिए आया हूं। मैं अंत में गृह मंत्री जी को एक छोटे भाई के तरीके से एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूं। गृह मंत्री जी, आपने हमें बहुत दिया है, हम आभारी हैं और हम चाहते हैं कि आप भी आज हमारे लिए और 2 शब्द बोलिए, क्योंकि कम्युनिस्ट ने एक अफवाह फैलाया हुआ है कुछ नहीं मिलेगा, और मैं बोलता हूं सब कुछ मिलेगा, सबको मिलेगा। मैं ये निवेदन करके अपने लोगों को बोलना चाहता हूं, 19 तारीख वेस्ट त्रिपुरा में, 26 तारीख ईस्ट त्रिपुरा में, यहां में एक मैसेज आप भेजिए कि त्रिपुरा अब कम्युनिस्ट के हाथों से निकल चुका है और एक नया कल बनाना चाहता है। यही मैं बोलकर अपने सबको धन्यवाद बोलना चाहता हूं। तिपरासा दोफा आयुक लोकथोंग, तिपरासा जाति आयुक लोकथोंग, भारत माता की जय, और त्रिपुरा के सब लोगों को मेरा बेलाई बेलाई नो हमबाई खुलुंग का धन्यवाद। थैंक यू। भारत माता की। मेरे साथ बोलिए, भारत माता की। क्यों भाई, कुमार घाट वालों की आवाज को क्या हो गया है? 400 पार करना है या नहीं करना है? मोदी जी को फिर से प्रधानमंत्री बनाना है या नहीं बनाना है? तो ऐसी आवाज नहीं चलेगी। दोनों हाथ उठाइए, उठाइए दोनों हाथ, विजय के संकल्प का मुट्ठी भींचिए और प्रचंड आवाज से बोलिए, भारत माता की, भारत माता की। मंच पर उपस्थित त्रिपुरा के लोकप्रिय मुख्यमंत्री डॉक्टर माणिक शाह जी, हमारे राजा साहब और मेरे मित्र त्रिपुरा मोथा के अध्यक्ष महोदय, मेरे साथ आए हुए हमारे दोनों प्रत्याशी, पश्चिम त्रिपुरा से विप्लव कुमार देव जी, विप्लव जी खड़े हो जाइए जरा, और पूर्वी त्रिपुरा से महारानी कृति सिंह जी, हमारे प्रदेश अध्यक्ष महोदय श्री टिंकू रॉय, श्री सुधांशु दास, हमारी ट्राइबल मंत्री आगे आओ, चकमा आगे आओ, जोर से ताली बजाओ सेंटर ना चकमा के लिए सभी लोग।
हमारे त्रिपुरा मोथा के साथी अनिमेश देववर्मा जी, अनिमेश जी खड़े हो जाइए आप। शुक्ल चरण नोतिया जी, हमारी नेत्री, भारत सरकार में मंत्री बहन प्रतिमा भौमिक जी, और आज कुमार घाट की इस भूमि पर आए हुए प्यारे भाइयों बहनों माताओं और मेरे जिगर के टुकड़े जैसे युवा मित्रों, आप सभी को नमस्कार। मुझे बरोबर याद है 2017 का दिसंबर माह होगा और मैं यहां पर त्रिपुरा मुक्ति के लिए पहली रैली करने आया था और यहीं से त्रिपुरा को कम्युनिस्टों से मुक्त करने की शुरुआत की थी। और आज इस महान त्रिपुरा की जनता ने इतने सालों के कम्युनिस्ट शासन को समाप्त कर त्रिपुरा में मोदी जी पर भरोसा कर विकास का एक नया रास्ता चुनने का काम किया है। मित्रों, मैं जब यहां आया हूं तब सबसे पहले मां त्रिपुरा सुंदरी को, बाबा गरिया मंदिर को और सभी देवी देवताओं को प्रणाम कर मेरी बात की शुरुआत करना चाहता हूं। मैं यहां आया हूं तब विनम्र शासक और जिनके मन में देश और जनता के अलावे कुछ नहीं था, ऐसे महाराजा वीर विक्रम माणिक्य किशोर जी को भी मनपूर्वक प्रणाम करना चाहता हूं। इतने सालों से कम्युनिस्टों ने महाराजा वीर विक्रम माणिक्य किशोर जी को केवल और केवल बुलाने का काम किया। नरेंद्र मोदी जी ने इनके नाम पर त्रिपुरा के एयरपोर्ट देकर बड़ी मूर्ति प्रस्थापित कर उनको चिर स्मरण करने का काम नरेंद्र मोदी जी ने किया है। और मित्रों, अभी अभी आपने पद्म पुरस्कारों का सूची देखा होगा। सतराम रियांग और बेनी चंद्र जमातिया, हमारे 2 ट्राइबल भाइयों को पद्म पुरस्कार देकर मोदी जी ने ट्राइबलों का सम्मान बढ़ाने का काम किया है। भाइयों और बहनों, नरेंद्र मोदी सरकार ने आदिवासियों के सम्मान के लिए, सुरक्षा के लिए और समावेशी विकास के लिए देश भर में न केवल विकास के काम चलाए हैं, उनको साथ में रखने का भी काम किया है। ये कांग्रेस और कम्युनिस्ट सालों तक शासन करते रहे, एक भी आदिवासी बेटा बेटी को देश का राष्ट्रपति नहीं बनाया। आजादी के 75 साल बाद पहली बार नरेंद्र मोदी जी ने ओडिशा के गरीब आदिवासी की बेटी द्रौपदी जी मुर्मू को महामहिम द्रौपदी मुर्मू बनाकर आदिवासियों का सम्मान करने का काम किया है। सैकड़ों करोड़ों रुपया खर्च कर आदिवासी पूर्वज हमारे जो देश के लिए काम करे, उनके म्यूजियम बन रहे हैं। और मैं आज बताना चाहता हूं, हर म्यूजियम में हमारे राजा साहब का प्रतिमा भी है। ये हम सब के लिए गौरव का विषय है। भाइयों और बहनों, जनजातीय मंत्रालय में, ट्राइबल मंत्रालय में पहले 24,000 करोड़ रुपए का बजट था। मेरी बात ध्यान से सुनना, इतने बड़े देश के ट्राइबल आबादी के लिए सिर्फ 24,000 करोड़ था। नरेंद्र मोदी जी ने 1,25,000 करोड़ का बजट ट्राइबल मंत्रालय का किया है। और एकलव्य मॉडल स्कूल 70 साल में सिर्फ 90 बने थे। मोदी जी के 5 साल में
740 एकलव्य स्कूल बनाने का काम हमने किया है। भाई और बहनों, त्रिपुरा पहले विप्लव देव जी और अब डॉक्टर माणिक शाह के नेतृत्व में विकास के रास्ते पर आगे बढ़ पड़े। आज सुबह ही राजा साहब भी बैठे थे। टूरिज्म, कनेक्टिविटी, एयर कनेक्टिविटी, स्वास्थ्य, नौकरियां और इंफ्रास्ट्रक्चर, हर क्षेत्र में नरेंद्र मोदी सरकार की प्रायोरिटी हमारा त्रिपुरा है। और मैं आज बताने जा रहा हूं, त्रिपुरा में भी हमारी प्रायोरिटी हमारा ट्राइबल एरिया भारत सरकार का प्रायोरिटी है। भाई और बहनों, अभी अभी हमने एक एग्रीमेंट किया है भारत सरकार, त्रिपुरा सरकार और राजा साहब के साथ, तिपरा मोथा के साथ। एग्रीमेंट के लिए ढेर सारी चीजें बोली जा रही है, मगर मैं आज आपको बताकर जाता हूं, आपकी सभी समस्याओं का समाधान उस एग्रीमेंट में है। मुझ पर भरोसा करिएगा, एक कम्युनिस्ट जहर घोलने का काम। त्रिपुरा की जाति और जनजाति दोनों के बीच में शांति रहे, दोनों का विकास हो और संघर्ष की जगह विकास के रास्ते पर त्रिपुरा आगे बढ़ पड़े, इसका एग्रीमेंट में पूरा ध्यान रखा गया है। ये राजा साहब है तो राजा, मगर बनने से भी ज्यादा चतुर है भाई। छोटी छोटी चीज पर आपकी सभी हितों का ध्यान उन्होंने रखा है और मोदी जी ने इसको आशीर्वाद देने का काम किया है। भाई और बहनों, मोदी जी ने देश भर में 2,94,00,000 गरीबों के घर बनाए। इसका सबसे बड़ा फायदा एसटी लाभार्थियों को हुआ है। 21% घर एसटी को मिले, 14 करोड़ टॉयलेट बनाए, 70 करोड़ लोगों को 5 किलो चावल प्रति माह प्रति व्यक्ति मुफ्त में दिया जाता है। त्रिपुरा वालों, आपको मिलता है या नहीं मिलता है, जरा बताओ तो। भाई चावल आता है ना? हर एक के घर में गैस का सिलेंडर भेजने वाले हैं और नए 3 करोड़ घर मोदी जी ने वादा किया है, बाद में कोई भी ट्राइबल हमारा घर बगैर का नहीं रहेगा। ये मोदी का गारंटी है भाइयों, मोदी का गारंटी। सबरूम रेलवे स्टेशन को एक्सटेंड किया गया, 23 ट्रेनें अब चल रही है। अगरतला अखौरा रेलवे लाइन को आगे बढ़ाने का काम किया और एक हाईवे ही था कम्युनिस्टों के 30 साल के शासन में, अब त्रिपुरा में 9 हाईवे बनाने का काम नरेंद्र मोदी सरकार ने किया है। विद्या ज्योति स्कूल को सीबीएसई में लिया, बमुतिया में सेंट्रल संस्कृत यूनिवर्सिटी बन रही है, नरसिंहगढ़ में अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम बन रहा है, जिससे आईपीएल और राष्ट्रीय मैच भी यहां आएगी। सब रूम के अंदर 1550 करोड़ के खर्चे से जलेफा में स्पेशल इकोनॉमिक जोन बन रहा है, जहां इंडस्ट्री भी आएगी, रोजगारी भी आएगी और अपने अकेले त्रिपुरा में 87,000 लखपति दीदी है मोदी जी ने, और 3 करोड़ लखपति दीदी बनाने का लक्ष्य रखा है। अकेले त्रिपुरा में 3.5 लाख लखपति दीदी बनेगा। और आज 140 करोड़ से एक अनूठा यूनिटी मॉल भी बनाने का काम त्रिपुरा के अंदर हुआ है। भाई और बहनों, कम्युनिस्ट जहां जहां गए वहां क्या छोड़ा? गरीबी, भूखमरी, स्वास्थ्य का अभाव, शिक्षा का अभाव,
और युवाओं के हाथ में बंदूक थमाने का काम एक कम्युनिस्ट पार्टी ने किया और भारतीय जनता पार्टी के नेता नरेंद्र मोदी जी ने युवाओं के हाथ में लैपटॉप पकड़ाने का काम किया है। पूरे नॉर्थ ईस्ट के अंदर 10 से ज्यादा समझौते कर सभी ट्राइब को 10,000 युवाओं के हाथ में से हथियार छुड़ाकर उनको मेन स्ट्रीम में लाने का काम भारतीय जनता पार्टी और नरेंद्र मोदी सरकार ने किया है। भाइयों और बहनों, मैं आज त्रिपुरा में कहना चाहता हूं, हमारे ब्रू और रियांग भाई, इनके परिवार 40,000 लोग नर्क की जिंदगी जी रहे थे। नरेंद्र मोदी सरकार ने सभी ब्रू रियांग को अच्छे गांव बसा कर दिए और उनके जीवन के अंदर उजियारा लाने का काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया। भाइयों और बहनों, ये कम्युनिस्ट यहां आते हैं, कांग्रेस वाले आते हैं। मैं आज त्रिपुरा के कांग्रेस और कम्युनिस्ट नेताओं को पूछने आया हूं, 10 साल आपकी सरकार थी, सोनिया मनमोहन की सरकार थी, आपने त्रिपुरा को क्या दिया? हर 10 साल में आपने 40,183 करोड़ रुपया दिया, सिर्फ 40,000 करोड़। और मोदी जी ने ये 10 साल में 40,000 करोड़ के सामने 98,000 करोड़ रुपया देने का काम मोदी जी ने किया है। इसके साथ साथ 20,000 करोड़ के इंफ्रास्ट्रक्चर, 17,000 करोड़ सड़क के, 2,000 करोड़ रेलवे के और 1,000 करोड़ एयरपोर्ट का किया है। और भाइयों और बहनों, मोदी गारंटी की बात मैं करना चाहता हूं। कोई भी व्यक्ति हो, गरीब हो, धनवान हो, 70 साल की ऊपर के सभी नागरिकों को 5 लाख तक का सभी स्वास्थ्य का खर्चा अब भारतीय जनता पार्टी उठाएगी। नए 3 करोड़ घर बनाए जाएंगे। गरीबों के घर में नल से जल आया है, ऐसे ही पाइप से गैस पहुंचाने का काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार करेगी। गरीब के घर पर सूर्य बिजली का उपकरण लगाकर उसका बिजली बिल माफ करने का काम करेंगे। 3 करोड़ लखपति दीदियां भी हम बनाएंगे। भाइयों और बहनों, हम आपका आशीर्वाद मांगने आए हैं। ये लाल भाइयों ने सालों तक जाति और जनजाति को झगड़ा कराया। आपकी 20 की 20 सीटें लेकर विकास के नाम पर बिग जीरो किया है। मैं आपको कहता हूं, मोदी जी पर भरोसा कर कमल के निशान पर वोट दीजिए। आने वाले दिनों में संपूर्ण त्रिपुरा, वेस्ट हो या ईस्ट हो, हम उसको विकसित राज्य बनाने का कमिटमेंट करते हैं मित्रों, कमिटमेंट करते हैं। और ट्राइबल भाइयों को इस सम्मान की बात करते हैं, ट्राइबल संस्कृति की बात करते हैं। घुसपैठ अब तक किसने होने दी? कम्युनिस्टों ने होने दी, कांग्रेस ने होने दी। नरेंद्र मोदी सरकार ने बाढ़ को पूरी करने का काम कर घुसपैठ को रोकने का 90% काम किया है। मोदी जी को तीसरा मौका दीजिए, 100% घुसपैठ वहां से रुक जाएगी। ये मोदी का गारंटी है मित्रों, मोदी का गारंटी। भाइयों बहनों, महाराजा विक्रमदेव का हमारे त्रिपुरा पर बहुत बड़ा उपकार है। आज भारतीय जनता पार्टी ने, आगे आइए जरा, इनके ही परिवार से कृतिदेव सिंह जी को टिकट दिया है। मैं आपको अपील करने आया हूं, कृतिदेव सिंह जी को समर्थन कर नरेंद्र मोदी को समर्थन करिए। कृतिदेव सिंह जी के सामने दबाया हुआ हर बटन सीधा आपका वोट
नरेंद्र मोदी को मिलने वाला है, मोदी को प्रधानमंत्री बनाने वाला है। मुझे बताओ, 26 तारीख को कमल के निशान पर बटन दबाएंगे क्या? जरा जोर से बोलिए, दबाएंगे? भाजपा को जिताएंगे? कृतिदेव सिंह जी को जिताएंगे? मोदी जी को तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाएंगे? तो मेरे साथ दोनों हाथ उठाइए, उठाइए दोनों हाथ, विजय के संकल्प की मुट्ठी बीचिए और प्रचंड आवाज से बोलिए, भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की, वंदे वंदे वंदे। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। ধন্যবাদ মাননীয় গৃহমন্ত্রী অমিত ভাই শাহজিকে। আমরা ওনার মূল্যবান বক্তব্য শুনলাম। 2017 সালে উনি এসেছিলেন এবং ত্রিপুরা থেকে সিপিএম এখান থেকে মুক্ত হয়েছিল। वीर विक्रम
প্রচারে তারা প্রচার করতে শুরু করেছে। তারা জানে যে বামেরা হারবে, তারপরও তারা যাই করছে ইউটিউব সোশ্যাল মিডিয়ার মাধ্যমে তাদের প্রচারটা মানুষের কাছে নিয়ে যাওয়ার চেষ্টা করছে। ময়দানে এসে তাদের প্রচার করার কোনো ক্ষমতা নেই। পূর্বতন মুখ্যমন্ত্রী মানিক সরকার মহোদয়, যার ধর্ম হচ্ছে অ্যাথেইস্ট, নাস্তিক, ভারতীয় জনতা পার্টি, ত্রিপুরা মথা এবং আইপিএফটি এই সম্মিলিত শক্তিকে ভয় পেয়ে ত্রিপুরার পূর্বতন মুখ্যমন্ত্রী উনি ধর্মে বিশ্বাস করতে শুরু করেছেন। আমি বলি, কয়েকদিন আগে উনি বক্তব্য করছিলেন, উনি বলেছেন যে আমি যেদিন স্বর্গে যাব সেই দিন আমার মুখ্যমন্ত্রিত্ব থাকাকালীন আমি কি কি কাজ করেছি ভগবানের কাছে বলতে পারবো। আপনারা বলুন, নাস্তিক লোক, যার কাছে স্বর্গ নেই, নরক নেই, ধর্মে বিশ্বাস রাখেন না, সেই ব্যক্তি আজকে আমাদের ভয়ে ওনাকে ভগবানের আশ্রয় নিতে হচ্ছে। এবং তাতেই প্রমাণ হয় আমাদের প্রার্থী লক্ষ লক্ষ ভোটের ব্যবধানে বাম প্রার্থীকে পরাস্ত করবে। এবং মানিকবাবু বলেছেন স্বর্গে যাবেন, মেনেই নিলাম। মোদিজির বয়ে উনি স্বর্গে যাবেন, ভগবানের আশ্রয় নেবেন। আপনি যা যা করে গেছেন 20 বছরে এই ত্রিপুরা রাজ্যের পিছিয়ে পড়া মানুষদের এত বঞ্চনা, এত শোষণ আপনারা করেছেন, স্বয়ং ভগবানও স্বর্গের দরজা বন্ধ করে দিব, মানিক বাবুরে ঢুকতে দিত না। আর এই মানিক বাবু উনি বলেন যে ত্রিপুরা মথার গ্রেটার ত্রিপুরা ল্যান্ড দাবি কোথায়, এই দাবি কোন দিন আসবে। মানিক বাবু একজন কমিউনিস্ট, ওনাকে শিক্ষা দেওয়ার ক্ষমতা আমার নেই। সারা পৃথিবীতে কমিউনিজমের জন্ম হয়েছে কখন? 176 বছর আগে কার্ল মার্কস এবং ফ্রেডরিক এঙ্গেল 1848 এই কমিউনিজমের প্রচার শুরু করেন। এবং আমাদের ভারতবর্ষে 99 বছর হয়ে গেছে কমিউনিস্টদের আন্দোলন। এবং আমাদের এই ত্রিপুরায় 79 বছর ধরে বামেরা বলছে আমরা সাম্যবাদ আনবো। আমি কমিউনিস্টদের জিজ্ঞেস করতে চাই, গ্রেটার ত্রিপুরা ল্যান্ডের কথা বাদ দিয়ে দিন, আপনাদের সাম্যবাদ কবে আসছে সেটার জবাব দিন। আপনারা বলতে পারবেন? সাম্যবাদের নাম দিয়ে ত্রিপ্রাসাদের ধোঁকাবাজি দিয়ে 35 বছর ক্ষমতায় ছিল। আর আমরা কি পাইছি? বামেদের থেকে কি পাইছি? বামেদের থেকে একটাই পাইছি, ত্রিপুরা আলাদা হয়ে যাও, বাঙালের আলাদা হয়ে যাও। পাহাড়ি বাঙালি ভাই পাই না, সুযোগ পাইলে যে যেখানে পাই তোমরা সব কাইটা দাও, মেয়েরা দাও। এটাই তো আমরা দেখলাম। যদিও ইলেকশন কমিশন বলবে কাইটা দাও, মেয়েরা দাও, কেন বলছেন উনি? I have all respect for Election Commission of India and its guideline. কিন্তু এটা ইতিহাস। বামেরা যতবার ক্ষমতায় এসছে তারা 1980 সালের দাঙ্গা আমাদের উপহার দিয়েছে। আবার 97 সালের কথা আমরা ভুলবো না। ত্রিপুরায় উগ্রপন্থা সমস্যার এই কথা আমরা ভুলবো না। এই মঞ্চে দাঁড়িয়ে ত্রিপুরা মথা বিজেপি, আইপিএফটি আমরা বলতে পারি, সারা রাজ্যের মানুষকে আমরা বলতে পারি, আমরা যদি ক্ষমতায় বসে থাকি ত্রিপুরায় দাঙ্গা হতে দেব না। বামেদের মতো আমরা দাঙ্গা হতে দেব না। তারা ত্রিপুরাদের কি বলে? আপনারা ত্রিপুরাদের তারা বলে এই বাঙালিরা বাংলাদেশ থেকে আসছে, আর উপজাতিরা ত্রিপুরা ছাড়া আপনাদের অস্তিত্ব সংকটে। তো নিশ্চয়ই ত্রিপুরারা ভয় পাবে। আর বাঙালিদের এসে বলছে বাঙালিদের আমরা চাকরি দিতে পারছি না,
ওই সব চাকরি পিঁপড়ারা খায়া ফলাইতেছে। এডিসি পাইছে, রিজার্ভেশন পাইছে, সব চাকরি ওরা খেয়ে নিয়েছে, আমরা পারবো না। দণ্ড এসসি এসটিদের বলছে জেনারেলদের সমস্ত সুযোগ সুবিধা এসসি এসটিরা খায়া ফালাইতে, জেনারেল আর পাইতো না। বেকারদের বলে আমরা বেকারদের চাকরি দিতে চাই, কিন্তু আমরা পারি না, কারণ ওই যে কর্মচারীদের বয়সের সীমা 58 থেকে 60 বছর করলাম, মানে প্রত্যেকটা অংশের মানুষে মিথ্যা বলে এরা 35 বছর ত্রিপুরাজ্যে শাসন করছে। আমি কনফিডেন্ট এইটুকু বলতে পারি, পাহাড়ের মানুষ জেগে গেছে, বুঝে গেছে, এই বামেদের আর আসতে দেওয়া হবে না ত্রিপুরায়। আপনারা জেনে নিন এই কথা। এবং 2018 সালে যারা ভোট দিয়ে ভারতীয় জনতা পার্টি এবং আইপিএফটিদের ক্ষমতায় এনেছেন, ওই জনগণ দেবতাদের আমি প্রণাম জানাচ্ছি মঞ্চ থেকে। নতুবা আজকেও বামেদের মুখ্যমন্ত্রী মানিক সরকার মহোদয়ের কেন্দ্রীয় বঞ্চনার কথা শুনতাম। উনার এটা ওই আগে তুফা সিনেমার গান আমরা টেপ রেকর্ডে শুনতাম। এইরকম একটা রেকর্ড কইরা আস্থা বলে ত্রিপুরার সমস্ত মানুষ নিয়ে গিয়ে উনি বক্তৃতা করতেন, কেন্দ্রীয় সরকার আমাদের টাকা দিচ্ছে না, আমরা কিছুই করতে পারছি না। আর ওইদিকে দিল্লিতে মনমোহন সিং, সীতারাম ইয়েচুরি এরা বয়া বয়া চা খায়, আর এখানে ওই সিপিএমরা কংগ্রেস সরকারের বিরুদ্ধে এখানে বক্তৃতা করে। আর 2018 সালে ত্রিপুরার গণতন্ত্র প্রিয় শ্রমিক, বুদ্ধিজীবী, ওয়াংসা, তিপ্রাসা, মুগলি সমস্ত অংশের মানুষ ভোট দিয়ে মানিক বাবুর ওই টেপটাকে এমন ভাবে আসার দিতে, এই টেপ রেকর্ড আর বাঁচত না, কেন্দ্রীয় বঞ্চনার গল্প আর হবে না। নতুবা আজকেও কইতো মোদীজির সরকার টাকা দিচ্ছে না, আমরা করতে পারতাছি না। কি না দিছে এদের, দিতে 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 মনমোহন সিংকে হাত পায়ে গেছিলেন, গোটা টাকা দিতে দিতে। আর এখানে কমরেডরা শিকাবিনি খাইতো, এই কমরেডরা চারমিনার, ফ্ল্যাট, গোল্ড, আমিও তো জানি না, এদের সিগারেট থেকে আরম্ভ করে যাদের বাইসাইকেল ছিল এরা গাড়ি নিয়ে আসা যাওয়া করতো। আমরা কি ভুলা দামু? এইটা আমরা কখনোই ভুলবো না। এই কারণে এইবার এরা একটা জিনিস সরাইতে সাংঘাতিক, এরা হচ্ছে ক্রিমিনাল বুদ্ধি, কি কইরা মানুষের মগজে দেওয়া যায়, এটা হচ্ছে তাদের বুদ্ধি। বলছে ত্রিপুরা মোথা এত স্ট্রং একটা আঞ্চলিক দল, এই দলটা কেন আপনারা বিজেপিকে ভোট দেবেন? আমি মানিক বাবুকে জিজ্ঞেস করছি, মানিক বাবু, আপনার সিপিএম দল কংগ্রেসের সাথে আঘাত করেছে, ত্রিপুরার পিছিয়ে পড়া, ত্রিপ্রাসা সহ অন্যান্য অংশের যারা পিছিয়ে পড়া মানুষের সাথে আপনাদের কি চুক্তি আছে? কোন চুক্তি নাই। কিন্তু ত্রিপুরা মোথা, বিজেপি, আইপিএফটি, 3 দলীয় আমরা কেন্দ্রীয় সরকারের সাথে দ্বিপাক্ষিক চুক্তি করেছি। এই রাজ্যে এক ভারত শ্রেষ্ঠ ভারতের লক্ষ্যে আমরা সমস্ত অংশের মানুষের উন্নয়ন করব, এই চুক্তিতে আজকে আমরা একসাথে কাজ করব। আর ওনারা বলছেন যে আনারস, এই আনারস বুইলে গিয়া আপনারা আজকে পদ্ম ফুলে ভোট দেবেন। এই প্রাসাদের যদি কেউ উন্নয়ন করে, পদ্ম ফুলে আমরা কেন ভোট দেব না? আর আমাদের প্রার্থীর বিরুদ্ধে তারা বলছে উনি তো বহিরাগত, বাইরের থেকে আইছেন। আপনারা বলেন তো, এখানে যারা মহিলারা আছেন, কেউ যদি ওনার মতো ছত্তিশগড়ে বিয়ে করে যান, ওইখানে কিন্তু সংসারটা করবেন। আর স্বভাবত আমরা দেখেছি এইখানের মানুষ যখন সেখানে যায় আর দেশে ফিরে না, পাঞ্জাবে বিয়ে করলে পাঞ্জাব থেকে আর ফিরে না। কিন্তু এই মহিলার এত শক্তি, উনার সামনে বলছি যে উনার মহারাজা হাজবেন্ডকে বুঝিয়ে উনি আবার উনার পৈতৃক ভূমিতে ত্রিপুরায় আমি সর্ব অংশের মানুষের কাজ করব, এমপি ইলেকশনে আমি লড়তে যাচ্ছি। এত বড় একটা শক্তিশালী মহিলাকে আমরা কেন ভোট দেব না?
আমরা অবশ্যই ওনাকে ভোট দিয়ে জয়লাভ করাবো। তাদের মিথ্যা প্রচারের অভাব আর নেই। একের পর এক অভিযোগ তারা বলে এরা নাকি এইবার, আমি অনেক জায়গায় বলি 350 সিট নিয়ে আমরা ক্ষমতায় বইব। বামেদের আমি জিগাইলাম, এক নেতা মোদীর জিগাইলাম, আপনারা ত্রিপুরাতে আপনারা যে 350 সিট নিয়ে আইবেন, ত্রিপুরার পূর্ব ত্রিপুরার পশ্চিম ত্রিপুরার মধ্যে কোন সিটটা আপনারা জিতবেন? বলছে এখানে আমরা জিতবো না। তো কেমনে আইব? কেমনে আইব? কিন্তু আমরা এইটুকু বলতে পারি, মোদীজির যে স্লোগান আপকি বার 400 বার, আর ওই 400 সিটের মধ্যে যে 2টা সিট হবে এটা ত্রিপুরার 2টা সিট, এইটাই দিয়ে গণনা শুরু হবে। ভয় কিসে? কোনো ভয় নেই। উন্নয়ন হবে, মানুষের কাজ হবে, ত্রিপ্রাসা অঞ্চলের সমস্ত অংশের মানুষের কাজ হবে। এই কাজ করার লক্ষ্যে আমাদের প্রার্থী বয়ানী প্রীতি দেবী যে আমার সাথে কথা বলছিলেন ওনার হোটেল রুমে, উনি প্রতিশ্রুতিবদ্ধ, আরে সংকল্প নিয়ে ত্রিপুরায় এসছেন, উনি কাজ করবেন। উনি বলছেন যে আমি অন্যান্য এমপিদের মতো বসে থাকবো না, আমি সবখানেই চেষ্টা করব কি কি কাজ করে মানুষের কর্মসংস্থান করা যায়, আরো বেশি সরকারের কাজকে ত্বরান্বিত করা যায়, সেই কাজ উনি করবেন। উনি এমনিতেই আসেননি এখানে। অনেক ভালো লেগেছে। এক ভারত শ্রেষ্ঠ ভারত এটা হবে। এবং আর বিশেষ বক্তব্য রাখছি না, আমি শিওর ওইখান থেকে ওনারা বেরিয়ে গেছেন। আরো মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়গণ, বিধায়কগণ বক্তব্য করবেন। এই যে একটা সুযোগ, এই সুযোগে আমরা মোদীজিকে এইবার ককবরক একটা স্লোগান বলবো, যারা ককবরক ভাষাভাষী আমাদের লোক, কিন্তু সিম্বল মাত্র নাই বুটি দিন থাকে আরো সবর কংগ্রেস তেলি হাইতে বুট নাই পড়ব পদ্মকুমার হয় তীব্রামথাই তীব্রি বিজেপি নি সিম্বল থাকলে পদ্মকুমার অ্যাবসলিউট মাস্ট। এটাকে আমাদের ঘরে ঘরে নিয়ে যেতে হবে, প্রচার করতে হবে এবং আমাদের মহারানী প্রীতি দেবীজিকে এবং পশ্চিম ত্রিপুরা আসনে বিপ্লব কুমার দেব মহোদয়কে যেন আমরা লক্ষ লক্ষ ভোটের ব্যবধানে জয়লাভ করিয়ে মোদীজিকে আপকি বার 400 বার, এই 400-র মধ্যে আমরা যেন উপহার দিতে পারি। অমিত ভাষা তোমার জানা স্বাগতম, মায়েরা উলুদ্দানি দিন। অমিত ভাষা তোমার জানা স্বাগতম, 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 অমিত ভাষা তোমার জানা স্বাগতম। भारत माता की फिर एक बार, फिर एक बार, आपकी बार, आपकी बार, आपकी बार। অমিত ভাষাকে আমরা এই কুমারঘাটে দ্বিতীয়বার স্বাগত জানাচ্ছি। উনি সামনে বক্তব্য রাখবেন ত্রিপুরামাতা দলের যিনি ফাউন্ডার রয়েছেন মহারাজা প্রদ্যোৎ কিশোর দেব মাণিক্য মহোদয়। माननीय गृह मंत्री जी, माननीय मुख्यमंत्री जी, यहां में मंच में सब बैठे हैं, मंत्री, हमारे बीजेपी के अध्यक्ष, हमारे कैंडिडेट वेस्ट त्रिपुरा से पूर्व मुख्यमंत्री जी बिप्लब देव जी। मैं ज्यादा समय नहीं लूंगा। कुमारघाट से आज पहली बार, जिंदगी में पहली बार मैं उसी मंच में खड़ा हूं जहां में हमारे गृह मंत्री जी खड़े हैं, और मैं गृह मंत्री जी को तोहफे में त्रिपुरा से दोनों सीट वर्ल्ड रिकॉर्ड मार्जिन से आपको और मोदी जी को देना चाहता हूं। यहां में
मैं ज्यादा नहीं बोलूंगा क्योंकि हम सब देश के होम मिनिस्टर को सुनने आए हैं। सिर्फ 2 बात रखना चाहता हूं। मैं तिपरा मोथा का फाउंडर और मैं एक समय चेयरमैन रह चुका हूं। मेरे साथ यहां में विजय कुमार रांखोल जी हैं, हमारे एमएलएज हैं, हमारे ब्रू शरणार्थी लीडर्स हैं। मैंने देखा है जब 2018 में मैं पहली बार गृह मंत्री जी से मिला था, हमारे जो ब्रू शरणार्थी थे जिनको कंचनपुर में कम्युनिस्ट की सरकार ने इतने सालों तक वंचित रखा, गरीब रखा, उनके शिक्षा के लिए नहीं सोचा, उनके भविष्य के लिए नहीं सोचा, उनके बच्चे के लिए नहीं सोचा। उस समय मैंने गृह मंत्री जी से एक निवेदन किया था। इतिहास गवाह है कि 2 महीने के अंदर जो 20-25 साल का प्रॉब्लम था, 2 महीने के अंदर गृह मंत्री जी ने हमारे ब्रू को दिया। आज अगर त्रिपुरा में ब्रू एक सम्मान का जिंदगी जी रहा है, अगर आपके बच्चे का एक भविष्य आज है, तो उसमें एक बहुत बड़ा हाथ हमारे गृह मंत्री जी का है। इसमें हमें भूलना नहीं चाहिए, हमें भूलना नहीं चाहिए कि हमारे साथ हमारे खराब कौन रहा। आज से 1 महीने पहले मैंने, हमारे प्रेसिडेंट विजय कुमार रांखोल ने, हमारे मंत्री ने, हमारे एमएलए ने, हमने एक हिस्टोरिक तिपरासा अकॉर्ड साइन किया है। बहुत लोग स्पेशली कम्युनिस्ट इतिहास को नकारते हैं, इतिहास को बदलने की कोशिश करते हैं, लेकिन कुमार घाट में मैं बोलना चाहता हूं और मीडिया के थ्रू बोलना चाहता हूं। आज से 75 साल पहले महारानी कंचन प्रभा देवी ने देश के उस समय के होम मिनिस्टर हमारे सरदार पटेल के संग एक एग्रीमेंट साइन किया था। उसके बाद त्रिपुरा एक हिंदुस्तान का अटूट अंग बना। 75 साल बाद कंचन प्रभा देवी का नाती को वही सम्मान, उस परिवार को वही सम्मान देश का होम मिनिस्टर श्री अमित शाह जी ने दिया है। यह सम्मान मुझे व्यक्तिगत तौर से नहीं दिया गया है, यह हमारे त्रिपुरा के इंडिजिनस लोग, हमारे जनजाति, हमारे ट्राइबल लोगों को, हमारे हानी बुसा को, हमारे बुकुंबारा को आज हमारा होम मिनिस्टर ने दिया है। ये शांति से मिला है। आज से पूरे नॉर्थ ईस्ट में आप देखेंगे जब भी किसी को कुछ प्राप्त हुआ, ये वायलेंस से हुआ, झगड़ के हुआ, बंदूक से हुआ। इस बार ना किसी का घर जला है, ना किसी की मृत्यु हुई है, ना कहीं में आतंकवाद हुआ है। आज शांति से हम त्रिपुरा के जनजाति, इंडिजिनस, हानी बुसा को और स्थानीय लोगों को आगे ले जाना चाहते हैं। कम्युनिस्ट सरकार ने 25 साल तक यहां में राज किया, हमारा इतिहास को बदला, हमारे गरीब तिपरासा को कुछ नहीं दिया। आज अगर हमको अपना बच्चा का भविष्य बनाना होता है तो हमें कलकत्ता, दिल्ली, बेंगलोर, हैदराबाद, पूना जाना पड़ता है। मैं चाहता हूं कि अगर हमें अपना भविष्य को ठीक करना है तो हमें त्रिपुरा के बाहर नहीं देखना है। यह कैसे होगा अगर केंद्र सरकार हमारे साथ नहीं खड़ा होगा। मैं अपने तिपरासा को बोलना चाहता हूं, हमने 20 के 20 सीट बहुत बार कम्युनिस्ट को दिया, रिटर्न में क्या मिला? गरीबी, बेरोजगारी, भूख, शिक्षा कहीं नहीं, कहीं में पीने के लिए, पानी के लिए हमें 5-5 किलोमीटर चलना पड़ता था। आज समय आया है, आज समय आया है कि हम अपने दुश्मन को, जिसने हमें वंचित रखा, जिसने हमें नॉर्थ ईस्ट में सबसे गरीब अगर कोई जनजाति है तो वो त्रिपुरा का है। किसने रखा है? वो समझिए, किसने आज हमें इस स्थिति में रखा है और उसका जवाब इस इलेक्शन में आप दीजिए। मैं यहां में
अपनी बहन के लिए वोट मांगने नहीं आया हूं। मैं यहां में अपने लोगों को एक अच्छा भविष्य देने के लिए, अपने नेक्स्ट जनरेशन को एक अच्छा कल देने के लिए बात करने के लिए आया हूं। मैं अंत में गृह मंत्री जी को एक छोटे भाई के तरीके से एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूं। गृह मंत्री जी, आपने हमें बहुत दिया है, हम आभारी हैं और हम चाहते हैं कि आप भी आज हमारे लिए और 2 शब्द बोलिए, क्योंकि कम्युनिस्ट ने एक अफवाह फैलाया हुआ है कुछ नहीं मिलेगा, और मैं बोलता हूं सब कुछ मिलेगा, सबको मिलेगा। मैं ये निवेदन करके अपने लोगों को बोलना चाहता हूं, 19 तारीख वेस्ट त्रिपुरा में, 26 तारीख ईस्ट त्रिपुरा में, यहां में एक मैसेज आप भेजिए कि त्रिपुरा अब कम्युनिस्ट के हाथों से निकल चुका है और एक नया कल बनाना चाहता है। यही मैं बोलकर अपने सबको धन्यवाद बोलना चाहता हूं। तीपरासा दोफा आयुक लोकथोंग, तीपरासा जाति आयुक लोकथोंग, भारत माता की जय, और त्रिपुरा के सब लोगों को मेरा बेलाई बेलाई नो हमबाई खुलुंग का धन्यवाद। थैंक यू। भारत माता की। मेरे साथ बोलिए, भारत माता की। क्यों भाई, कुमार घाट वालों की आवाज को क्या हो गया है? 400 पार करना है या नहीं करना है? मोदी जी को फिर से प्रधानमंत्री बनाना है या नहीं बनाना है? तो ऐसी आवाज नहीं चलेगी। दोनों हाथ उठाइए, उठाइए दोनों हाथ, विजय के संकल्प का मुट्ठी भींचिए और प्रचंड आवाज से बोलिए, भारत माता की, भारत माता की। मंच पर उपस्थित त्रिपुरा के लोकप्रिय मुख्यमंत्री डॉक्टर माणिक शाह जी, हमारे राजा साहब और मेरे मित्र त्रिपुरा मोथा के अध्यक्ष महोदय, मेरे साथ आए हुए हमारे दोनों प्रत्याशी, पश्चिम त्रिपुरा से विप्लव कुमार देव जी, विप्लव जी खड़े हो जाइए जरा, और पूर्वी त्रिपुरा से महारानी कृति सिंह जी, हमारे प्रदेश अध्यक्ष महोदय श्री टिंकू रॉय, श्री सुधांशु दास, हमारी ट्राइबल मंत्री आगे आओ, चकमा आगे आओ, जोर से ताली बजाओ सेंटाना चकमा के लिए सभी लोग। हमारे त्रिपुरा मोथा के साथी अनिमेश देववर्मा जी, अनिमेश जी खड़े हो जाइए आप, शुक्ल चरण नोतिया जी, हमारी नेत्री भारत सरकार में मंत्री बहन प्रतिमा भौमिक जी, और आज कुमार घाट की इस भूमि पर आए हुए प्यारे भाइयों, बहनों, माताओं और मेरे जिगर के टुकड़े जैसे युवा मित्रों, आप सभी को नमस्कार। मुझे बरोबर याद है 2017 का दिसंबर माह होगा और मैं यहां पर त्रिपुरा मुक्ति के लिए पहली रैली करने आया था और यहीं से त्रिपुरा को कम्युनिस्टों से मुक्त करने की शुरुआत की थी। और आज इस महान त्रिपुरा की जनता ने इतने सालों के कम्युनिस्ट शासन को समाप्त कर त्रिपुरा में मोदी जी पर भरोसा कर विकास का एक नया रास्ता चुनने का काम किया है। मित्रों, मैं जब यहां आया हूं तब सबसे पहले मां त्रिपुरा सुंदरी को, बाबा गरिया मंदिर को और सभी देवी देवताओं को प्रणाम कर मेरी बात की शुरुआत करना चाहता हूं। मैं यहां आया हूं तब विनम्र शासक और जिनके मन में देश और जनता के अलावे कुछ नहीं था, ऐसे महाराजा
वीर विक्रम माणिक्य किशोर जी को भी मनपूर्वक प्रणाम करना चाहता हूं। इतने सालों से कम्युनिस्टों ने महाराजा वीर विक्रम माणिक्य किशोर जी को केवल और केवल बुलाने का काम किया। नरेंद्र मोदी जी ने इनके नाम पर त्रिपुरा के एयरपोर्ट देकर बड़ी मूर्ति प्रस्थापित कर उनको चिर स्मरण करने का काम नरेंद्र मोदी जी ने किया है। और मित्रों, अभी अभी आपने पद्म पुरस्कारों का सूची देखा होगा। सतराम रियांग और बेनी चंद्र जमातिया, हमारे 2 ट्राइबल भाइयों को पद्म पुरस्कार देकर मोदी जी ने ट्राइबलों का सम्मान बढ़ाने का काम किया है। भाइयों और बहनों, नरेंद्र मोदी सरकार ने आदिवासियों के सम्मान के लिए, सुरक्षा के लिए और समावेशी विकास के लिए देश भर में न केवल विकास के काम चलाए हैं, उनको साथ में रखने का भी काम किया है। ये कांग्रेस और कम्युनिस्ट सालों तक शासन करते रहे, एक भी आदिवासी बेटा बेटी को देश का राष्ट्रपति नहीं बनाया। आजादी के 75 साल बाद पहली बार नरेंद्र मोदी जी ने ओडिशा के गरीब आदिवासी की बेटी द्रौपदी जी मुर्मू को महामहिम द्रौपदी मुर्मू बनाकर आदिवासियों का सम्मान करने का काम किया है। सैकड़ों करोड़ों रुपया खर्च कर आदिवासी पूर्वज हमारे जो देश के लिए काम करे, उनके म्यूजियम बन रहे हैं। और मैं आज बताना चाहता हूं, हर म्यूजियम में हमारे राजा साहब का प्रतिमा भी है। ये हम सब के लिए गौरव का विषय है। भाइयों और बहनों, जनजातीय मंत्रालय में, ट्राइबल मंत्रालय में पहले 24,000 करोड़ रुपए का बजट था। मेरी बात ध्यान से सुनना, इतने बड़े देश के ट्राइबल आबादी के लिए सिर्फ 24,000 करोड़ था। नरेंद्र मोदी जी ने 1,25,000 करोड़ का बजट ट्राइबल मंत्रालय का किया है। और एकलव्य मॉडल स्कूल 70 साल में सिर्फ 90 बने थे। मोदी जी के 5 साल में 740 एकलव्य स्कूल बनाने का काम हमने किया है। भाइयों और बहनों, त्रिपुरा पहले विप्लव देव जी और अब डॉक्टर माणिक शाह के नेतृत्व में विकास के रास्ते पर आगे बढ़ पड़े। आज सुबह ही राजा साहब भी बैठे थे। टूरिज्म, कनेक्टिविटी, एयर कनेक्टिविटी, स्वास्थ्य, नौकरियां और इंफ्रास्ट्रक्चर, हर क्षेत्र में नरेंद्र मोदी सरकार की प्रायोरिटी हमारा त्रिपुरा है। और मैं आज बताने जा रहा हूं, त्रिपुरा में भी हमारी प्रायोरिटी हमारा ट्राइबल एरिया भारत सरकार का प्रायोरिटी है। भाइयों और बहनों, अभी अभी हमने एक एग्रीमेंट किया है भारत सरकार, त्रिपुरा सरकार और राजा साहब के साथ, तिपरा मोथा के साथ। एग्रीमेंट के लिए ढेर सारी चीजें बोली जा रही है, मगर मैं आज आपको बताकर जाता हूं, आपकी सभी समस्याओं का समाधान उस एग्रीमेंट में है। मुझ पर भरोसा करिएगा, एक कम्युनिस्ट जहर घोलने का काम। त्रिपुरा की जाति और जनजाति दोनों के बीच में शांति रहे, दोनों का विकास हो और संघर्ष की जगह विकास के रास्ते पर त्रिपुरा आगे बढ़ पड़े, इसका एग्रीमेंट में पूरा ध्यान रखा गया है। ये राजा साहब है तो राजा,
मगर बनने से भी ज्यादा चतुर है भाई। छोटी छोटी चीज पर आपकी सभी हितों का ध्यान उन्होंने रखा है और मोदी जी ने इसको आशीर्वाद देने का काम किया है। भाई और बहनों, मोदी जी ने देश भर में 2,94,00,000 गरीबों के घर बनाए। इसका सबसे बड़ा फायदा एसटी लाभार्थियों को हुआ है। 21% घर एसटी को मिले, 14 करोड़ टॉयलेट बनाए, 70 करोड़ लोगों को 5 किलो चावल प्रति माह प्रति व्यक्ति मुफ्त में दिया जाता है। त्रिपुरा वालों, आपको मिलता है या नहीं मिलता है, जरा बताओ तो। भाई चावल आता है ना? हर एक के घर में गैस का सिलेंडर भेजने वाले हैं और नए 3 करोड़ घर मोदी जी ने वादा किया है। बाद में कोई भी ट्राइबल हमारा घर बगैर का नहीं रहेगा। ये मोदी का गारंटी है भाइयों, मोदी का गारंटी। सबरूम रेलवे स्टेशन को एक्सटेंड किया गया। 23 ट्रेनें अब चल रही है। अगरतला अखौरा रेलवे लाइन को आगे बढ़ाने का काम किया और एक हाईवे ही था कम्युनिस्टों के 30 साल के शासन में। अब त्रिपुरा में 9 हाईवे बनाने का काम नरेंद्र मोदी सरकार ने किया है। विद्या ज्योति स्कूल को सीबीएसई में लिया। बमुतिया में सेंट्रल संस्कृत यूनिवर्सिटी बन रही है। नरसिंहगढ़ में अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम बन रहा है, जिससे आईपीएल और राष्ट्रीय मैच भी यहां आएगी। सब रूम के अंदर 1550 करोड़ के खर्चे से जलेफा में स्पेशल इकोनॉमिक जोन बन रहा है, जहां इंडस्ट्री भी आएगी, रोजगारी भी आएगी और अपने अकेले त्रिपुरा में 87,000 लखपति दीदी है मोदी जी ने, और 3 करोड़ लखपति दीदी बनाने का लक्ष्य रखा है। अकेले त्रिपुरा में 3.5 लाख लखपति दीदी बनेगा। और आज 140 करोड़ से एक अनूठा यूनिटी मॉल भी बनाने का काम त्रिपुरा के अंदर हुआ है। भाई और बहनों, कम्युनिस्ट जहां जहां गए वहां क्या छोड़ा? गरीबी, भूखमरी, स्वास्थ्य का अभाव, शिक्षा का अभाव और युवाओं के हाथ में बंदूक थमाने का काम एक कम्युनिस्ट पार्टी ने किया। और भारतीय जनता पार्टी के नेता नरेंद्र मोदी जी ने युवाओं के हाथ में लैपटॉप पकड़ाने का काम किया है। पूरे नॉर्थ ईस्ट के अंदर 10 से ज्यादा समझौते कर सभी ट्राइब को 10,000 युवाओं के हाथ में से हथियार छुड़ाकर उनको मेन स्ट्रीम में लाने का काम भारतीय जनता पार्टी और नरेंद्र मोदी सरकार ने किया है। भाइयों और बहनों, मैं आज त्रिपुरा में कहना चाहता हूं, हमारे ब्रू और रियांग भाई, इनके परिवार 40,000 लोग नर्क की जिंदगी जी रहे थे। नरेंद्र मोदी सरकार ने सभी ब्रू रियांग को अच्छे गांव बसा कर दिए और उनके जीवन के अंदर उजियारा लाने का काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया। भाइयों और बहनों, ये कम्युनिस्ट यहां आते हैं, कांग्रेस वाले आते हैं। मैं आज त्रिपुरा के कांग्रेस और कम्युनिस्ट नेताओं को पूछने आया हूं। 10 साल आपकी सरकार थी, सोनिया मनमोहन की सरकार थी। आपने त्रिपुरा को क्या दिया? हर 10 साल में आपने 40,183 करोड़ रुपया दिया, सिर्फ 40,000 करोड़। और मोदी जी ने ये 10 साल में 40,000 करोड़ के सामने 98,000 करोड़
रुपया देने का काम मोदी जी ने किया है। इसके साथ साथ 20,000 करोड़ के इंफ्रास्ट्रक्चर, 17,000 करोड़ सड़क के, 2,000 करोड़ रेलवे के और 1,000 करोड़ एयरपोर्ट का किया है। और भाई और बहनों, मोदी गारंटी की बात मैं करना चाहता हूं। कोई भी व्यक्ति हो, गरीब हो, धनवान हो, 70 साल की ऊपर के सभी नागरिकों को 5 लाख तक का सभी स्वास्थ्य का खर्चा अब भारतीय जनता पार्टी उठाएगी। नए 3 करोड़ घर बनाए जाएंगे। गरीबों के घर में नल से जल आया है, ऐसे ही पाइप से गैस पहुंचाने का काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार करेगी। गरीब के घर पर सूर्य बिजली का उपकरण लगाकर उसका बिजली बिल माफ करने का काम करेंगे। 3 करोड़ लखपति दीदियां भी हम बनाएंगे। भाई और बहनों, हम आपका आशीर्वाद मांगने आए हैं। ये लाल भाइयों ने सालों तक जाति और जनजाति को झगड़ा कराया। आपकी 20 की 20 सीटें लेकर विकास के नाम पर बिग जीरो किया है। मैं आपको कहता हूं, मोदी जी पर भरोसा कर कमल के निशान पर वोट दीजिए। आने वाले दिनों में संपूर्ण त्रिपुरा, वेस्ट हो या ईस्ट हो, हम उसको विकसित राज्य बनाने का कमिटमेंट करते हैं मित्रों, कमिटमेंट करते हैं। और ट्राइबल भाइयों को इस सम्मान की बात करते हैं, ट्राइबल संस्कृति की बात करते हैं। घुसपैठ अब तक किसने होने दी? कम्युनिस्टों ने होने दी, कांग्रेस ने होने दी। नरेंद्र मोदी सरकार ने बाढ़ को पूरी करने का काम कर घुसपैठ को रोकने का 90% काम किया है। मोदी जी को तीसरा मौका दीजिए, 100% घुसपैठ वहां से रुक जाएगी। ये मोदी का गारंटी है मित्रों, मोदी का गारंटी। भाइयों बहनों, महाराजा विक्रमदेव का हमारे त्रिपुरा पर बहुत बड़ा उपकार है। आज भारतीय जनता पार्टी ने, आगे आइए जरा, इनके ही परिवार से कृतिदेव सिंह जी को टिकट दिया है। मैं आपको अपील करने आया हूं, कृतिदेव सिंह जी को समर्थन कर नरेंद्र मोदी को समर्थन करिए। कृतिदेव सिंह जी के सामने दबाया हुआ हर बटन सीधा आपका वोट नरेंद्र मोदी को मिलने वाला है, मोदी को प्रधानमंत्री बनाने वाला है। मुझे बताओ, 26 तारीख को कमल के निशान पर बटन दबाएंगे क्या? जरा जोर से बोलिए, दबाएंगे? भाजपा को जिताएंगे? कृतिदेव सिंह जी को जिताएंगे? मोदी जी को तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाएंगे? तो मेरे साथ दोनों हाथ उठाइए, उठाइए दोनों हाथ, विजय के संकल्प की मुट्ठी बीचिए और प्रचंड आवाज से बोलिए, भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की, वंदे वंदे वंदे। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। ধন্যবাদ মাননীয় গৃহমন্ত্রী অমিত ভাই শাহজিকে। আমরা ওনার মূল্যবান বক্তব্য শুনলাম। 2017 সালে উনি এসেছিলেন এবং ত্রিপুরা থেকে সিপিএম এখান থেকে মুক্ত হয়েছিল।
হানসার মায়ারে কোথায় তুমি গো কোথায় লেখা হানসার মায়ারে হায় মোরে মরণ জরা শ্বাস লাই পড়ো হায় মোরে মরণ জরা শ্বাস লাই পড়ো আজ খাবো সবাই বীর বিক্রম মুবারক বীর বিক্রম মুবারক বীর বিক্রম মুবারক বীর বিক্রম মুবারক বীর বিক্রম। যদিও বামেরা তাদের প্রচারে তারা প্রচার করতে শুরু করেছে, তারা জানে যে বামেরা হারবে, তারপরও তারা যাই করছে ইউটিউব সোশ্যাল মিডিয়ার মাধ্যমে তাদের প্রচারটা মানুষের কাছে নিয়ে যাওয়ার চেষ্টা করছে। ময়দানে এসে তাদের প্রচার করার কোনো ক্ষমতা নেই। পূর্বতন মুখ্যমন্ত্রী মানিক সরকার মহোদয়, যার ধর্ম হচ্ছে অ্যাথেইস্ট, নাস্তিক, ভারতীয় জনতা পার্টি, ত্রিপুরা মথা এবং আইপিএফটি এই সম্মিলিত শক্তিকে ভয় পেয়ে ত্রিপুরার পূর্বতন মুখ্যমন্ত্রী ধর্মে বিশ্বাস করতে শুরু করেছেন। আমি বলি, কয়েকদিন আগে উনি বক্তব্য করছিলেন, উনি বলেছেন যে আমি যেদিন স্বর্গে যাব সেই দিন আমার মুখ্যমন্ত্রিত্ব থাকাকালীন আমি কি কি কাজ করেছি ভগবানের কাছে বলতে পারবো। আপনারা বলুন, নাস্তিক লোক যার কাছে স্বর্গ নেই, নরক নেই, ধর্মে বিশ্বাস রাখেন না, সেই ব্যক্তি আজকে আমাদের ভয়ে ওনাকে ভগবানের আশ্রয় নিতে হচ্ছে, এবং তাতেই প্রমাণ হয় আমাদের প্রার্থী লক্ষ লক্ষ ভোটের ব্যবধানে বাম প্রার্থীকে পরাস্ত করবে। এবং মানিকবাবু বলেছেন স্বর্গে যাবেন, মেনেই নিলাম। মোদিজির বয়ে উনি স্বর্গে যাবেন, ভগবানের আশ্রয় নেবেন। আপনি যা যা করে গেছেন 20 বছরে এই ত্রিপুরা রাজ্যের পিছিয়ে পড়া মানুষদের এত বঞ্চনা, এত শোষণ আপনারা করেছেন, স্বয়ং ভগবানও স্বর্গের দরজা বন্ধ করে দিব, মানিক বাবুরে ঢুকতে দিত না। আর এই মানিক বাবু উনি বলেন যে ত্রিপুরা মথার গ্রেটার ত্রিপুরা ল্যান্ড দাবি কোথায়, এই দাবি কোন দিন আসবে। মানিক বাবু একজন কমিউনিস্ট, ওনাকে শিক্ষা দেওয়ার ক্ষমতা আমার নেই। সারা পৃথিবীতে কমিউনিজমের জন্ম হয়েছে কখন? 176 বছর আগে কার্ল মার্কস এবং ফ্রেডরিক এঙ্গেল 1848 এই কমিউনিজমের প্রচার শুরু করেন। এবং আমাদের ভারতবর্ষে 99 বছর হয়ে গেছে কমিউনিস্টদের আন্দোলন, এবং আমাদের এই ত্রিপুরায় 79 বছর ধরে বামেরা বলছে আমরা সাম্যবাদ আনবো। আমি কমিউনিস্টদের জিজ্ঞেস করতে চাই, গ্রেটার ত্রিপুরা ল্যান্ডের কথা বাদ দিয়ে দিন, আপনাদের সাম্যবাদ কবে আসছে সেটার জবাব দিন। আপনারা বলতে পারবেন? সাম্যবাদের নাম দিয়ে দ্বীপ্রাসাদের ভুগাবাদী দিয়ে 35 বছর ক্ষমতায় ছিল, আর আমরা কি পাইছি? বামেদের থেকে কি পাইছি? বামেদের থেকে একটাই পাইছি, ত্রিপুরা আলাদা হয়ে যাও, বাঙালের আলাদা হয়ে যাও। পাহাড়ি বাঙালি ভাই ভাই না, সুযোগ পাইলে যে যেখানে পাই তোমরা সব কাইটা মহিলা লাও, এটাই তো আমরা দেখলাম। যদিও ইলেকশন কমিশন বলবে কাইটা লাও মহিলা লাও, কেন বলছেন উনি? I have all respect for Election Commission of India and its guideline.
কিন্তু এটা তো ইতিহাস। বাংলারা যতবার ক্ষমতায় এসছে তারা 1980 সালের দাঙ্গা আমাদের উপহার দিয়েছে। আবার 97 সালের কথা আমরা ভুলবো না। ত্রিপুরায় উগ্রপন্থা সমস্যার এই কথা আমরা ভুলবো না। এই মঞ্চে দাঁড়িয়ে ত্রিপুরা মথা বিজেপি আইপিএফটি আমরা বলতে পারি, সারা রাজ্যের মানুষকে আমরা বলতে পারি, আমরা যদি ক্ষমতায় বসে থাকি ত্রিপুরায় দাঙ্গা হতে দেব না। বামেদের মতো আমরা দাঙ্গা হতে দেব না। তারা ত্রিপুরাদের কি বলে, আপনারা ত্রিপুরাদের তারা বলে এই বাঙালিরা বাংলাদেশ থেকে আসছে, আর উপজাতিরা ত্রিপুরা ছাড়া আপনাদের অস্তিত্ব সংকটে। তো নিশ্চয়ই ত্রিপুরারা ভয় পাবে। আর বাঙালিদের এসে বলছে বাঙালিদের আমরা চাকরি দিতে পারছি না, ওই সব চাকরি ত্রিপুরারা খায়া ফেলাইতেছে। এডিসি পাইছে, রিজার্ভেশন পাইছে, সব চাকরি ওরা খেয়ে নিয়েছে, আমরা পারবো না। দণ্ড এসসি এসটি দের বলছে জেনারেলদের সমস্ত সুযোগ সুবিধা এসসি এসটি রা খায়া ফেলাইতে, জেনারেল আর পাইতো না। বেকারদের বলে আমরা বেকারদের চাকরি দিতে চাই, কিন্তু আমরা পারি না, কারণ ওই যে কর্মচারীদের বয়সের সীমা 58 থেকে 60 বছর করলাম, মানে প্রত্যেকটা অংশের মানুষে মিথ্যা বলে এরা 35 বছর ত্রিপুরাজ্যের শাসন করছে। আমি কনফিডেন্ট এইটুকু বলতে পারি, পাহাড়ের মানুষ জেগে গেছে, বুঝে গেছে, এই বামেদের আর আসতে দেওয়া হবে না ত্রিপুরায়। আপনারা জেনে নিন এই কথা। এবং 2018 সালে যারা ভোট দিয়ে ভারতীয় জনতা পার্টি এবং আইপিএফটিদের ক্ষমতায় এনেছেন, ওই জনগণ দেবতাদের আমি প্রণাম জানাচ্ছি মঞ্চ থেকে। নতুবা আজকেও বামেদের মুখ্যমন্ত্রী মানিক সরকার মহোদয়ের কেন্দ্রীয় বঞ্চনার কথা শুনতাম। উনার এটা ওই আগে তুফা সিনেমার গান আমরা টেপ রেকর্ডে শুনতাম। এইরকম একটা রেকর্ড কইরা আস্থা বলে ত্রিপুরার সমস্ত মানুষ নিয়ে গিয়ে উনি বক্তৃতা করতেন, কেন্দ্রীয় সরকার আমাদের টাকা দিচ্ছে না, আমরা কিছুই করতে পারছি না। আর ওইদিকে দিল্লিতে মনমোহন সিং, সীতারাম ইয়েচুরি এরা বয়া বয়া চা খায়, আর এখানে ওই সিপিএমরা কংগ্রেস সরকারের বিরুদ্ধে এখানে বক্তৃতা করে। আর 2018 সালে ত্রিপুরার গণতন্ত্র প্রিয় শ্রমিক, বুদ্ধিজীবী, ওয়াংসা, তিপ্রাসা, মুগলি সমস্ত অংশের মানুষ ভোট দিয়ে মানিক বাবু ওই টেপটাকে এমন ভাবে আসার দিতে, এই টেপ রেকর্ড আর বাঁচত না। কেন্দ্রীয় বঞ্চনার গল্প আর হবে না। নতুবা আজকেও কইতো মোদীজির সরকার টাকা দিচ্ছে না, আমরা করতে পারতাছি না। কি না দিছে এদের, দিতে 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 মনমোহন সিংকে হাত পায়ে গেছিলেন গোটা টাকা দিতে দিতে। আর এখানে কমরেডরা শিকাবিনি খাইতো, এই কমরেডরা চারমিনার, ফ্ল্যাট, বোর্ড, আমিও তো জানি না, এদের সিগারেট থেকে আরম্ভ করে যাদের বাইসাইকেল ছিল এরা গাড়ি নিয়ে আসা যাওয়া করতো। আমরা কি ভুইলা দামু? এইটা আমরা কখনোই ভুলবো না। এই কারণে এইবার এর একটা জিনিস সরাইতে সাংঘাতিক, এর হচ্ছে ক্রিমিনাল বুদ্ধি কি কইরা মানুষের মগজে দেওয়া যায়, এটা হচ্ছে তাদের বুদ্ধি। বলছে ত্রিপুরা মথা এত স্ট্রং একটা আঞ্চলিক দল, এই দলটা কেন আপনারা বিজেপিকে ভোট দেবেন? আমি মানিক বাবুকে জিজ্ঞেস করছি, মানিক বাবু আপনার সিপিএম দল কংগ্রেসের সাথে আঘাত করেছে, ত্রিপুরার পিছিয়ে পড়া ত্রিপ্রাসা সহ অন্যান্য অংশের যারা পিছিয়ে পড়া মানুষের সাথে আপনাদের কি চুক্তি আছে? কোনো চুক্তি নাই। কিন্তু ত্রিপুরা মথা, বিজেপি, আইপিএফটি তিন দলীয় আমরা কেন্দ্রীয় সরকারের সাথে দ্বিপাক্ষিক চুক্তি করেছি। এই রাজ্যে এক ভারত শ্রেষ্ঠ ভারতের লক্ষ্যে আমরা সমস্ত অংশের মানুষের উন্নয়ন করব, এই চুক্তিতে আজকে আমরা একসাথে কাজ করব। আর ওনারা বলছেন যে
আনারস, এই আনারস বুইলে গিয়া আপনারা আজকে পদ্ম ফুলে ভোট দেবেন। এই প্রাসাদের যদি কেউ উন্নয়ন করে, পদ্ম ফুলে আমরা কেন ভোট দেব না? আর আমাদের প্রার্থীর বিরুদ্ধে তারা বলছে উনি তো বহিরাগত, বাইরের থেকে আইছেন। আপনারা বলেন তো, এখানে যারা মহিলারা আছেন, কেউ যদি উনার মতো ছত্তিশগড়ে বিয়ে করে যান, ওইখানেই কিন্তু সংসারটা করবেন। আর স্বভাবত আমরা দেখেছি এইখানের মানুষ যখন সেখানে যায় আর দেশে ফিরে না। পাঞ্জাবে বিয়ে করলে পাঞ্জাব থেকে আর ফিরে না। কিন্তু এই মহিলার এত শক্তি, উনার সামনেই বলছি যে উনার মহারাজা হাজবেন্ডকে বুঝিয়ে উনি আবার উনার পৈতৃক ভূমিতে ত্রিপুরায় আমি সর্বংশের মানুষের কাজ করব, এমপি ইলেকশনে আমি লড়তে যাচ্ছি। এত বড় একটা শক্তিশালী মহিলাকে আমরা কেন ভোট দেব না? আমরা অবশ্যই ওনাকে ভোট দিয়ে জয়লাভ করাবো। তাদের মিথ্যা প্রচারের অভাব আর নেই। একের পর এক অভিযোগ তারা বলে, নাকি এইবার আমি অনেক জায়গায় বলি 350 সিট নিয়ে আমরা ক্ষমতায় বইব। বামেদের আমি জিগাইলাম, এক নেতা মোদীর জিগাইলাম, আপনারা ত্রিপুরাতে আপনারা যে 350 সিট নিয়ে আইবেন, ত্রিপুরার পূর্ব ত্রিপুরার পশ্চিম ত্রিপুরার মধ্যে কোন সিটটা আপনারা জিতবেন? বলছে এখানে আমরা জিতবো না। তো কেমনে আইব? কেমনে আইব? কিন্তু আমরা এইটুকু বলতে পারি, মোদীজির যে স্লোগান আপকি বার 400 বার, আর ওই 400 সিটের মধ্যে যে 2টা সিট হবে এটা ত্রিপুরার 2টা সিট, এইটাই দিয়ে গণনা শুরু হবে। ভয় কিসে? কোনো ভয় নেই। উন্নয়ন হবে, মানুষের কাজ হবে, ত্রিপুরা অঞ্চলের সমস্ত অংশের মানুষের কাজ হবে। এই কাজ করার লক্ষ্যে আমাদের প্রার্থী বয়ানী প্রীতি দেবী যে আমার সাথে কথা বলছিলেন ওনার হোটেল রুমে, উনি প্রতিশ্রুতিবদ্ধ, আরে সংকল্প নিয়ে ত্রিপুরায় এসছেন, উনি কাজ করবেন। উনি বলছেন যে আমি অন্যান্য এমপিদের মতো বসে থাকবো না, আমি সবখানেই চেষ্টা করব কি কি কাজ করে মানুষের কর্মসংস্থান করা যায়, আরো বেশি সরকারের কাজকে ত্বরান্বিত করা যায়, সেই কাজ উনি করবেন। উনি এমনিতেই আসেননি এখানে। অনেক ভালো লেগেছে। এক ভারত শ্রেষ্ঠ ভারত এটা হবে। এবং আর বিশেষ বক্তব্য রাখছি না, আমি শিওর ওইখান থেকে ওনারা বেরিয়ে গেছেন। আরো মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়গণ, বিধায়কগণ বক্তব্য করবেন। এই যে একটা সুযোগ, এই সুযোগে আমরা মোদীজিকে এইবার ককবরকে একটা স্লোগান বলবো, যারা ককবরক ভাষাভাষী আমাদের লোক, কিন্তু সিম্বল নাই বুটি দিন থাকে আরো সবর কম খেলে তেমনি হাইতে বুট নাই করব পদ্মকুমার হয় তীব্রামথায় তীব্রি বিজেপি নি সিম্বল থাকলে পদ্মকুমার অ্যাবসলিউট মাস্ট। এটাকে আমাদের ঘরে ঘরে নিয়ে যেতে হবে, প্রচার করতে হবে এবং আমাদের মহারানী প্রীতি দেবীজিকে এবং পশ্চিম ত্রিপুরা আসলে বিপ্লব কুমার দেব মহোদয়কে যেন আমরা লক্ষ লক্ষ ভোটের ব্যবধানে জয়লাভ করিয়ে মোদীজিকে আপকি বার 400 বার, এই 400-র মধ্যে আমরা যেন উপহার দিতে পারি। অমিত ভাষা তোমার জানায় স্বাগতম। মায়েরা উলুদ্দানি দিন। অমিত ভাষা তোমার জানায় স্বাগতম। 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 भारत माता की फिर एक बार आपकी बार आपकी बार आपकी बार অমিত ভাষাকে আমরা এই কুমারঘাটে দ্বিতীয়বার স্বাগত জানাচ্ছি। উনি সামনে বক্তব্য রাখবেন ত্রিপুরা মাতা দলের যিনি ফাউন্ডার রয়েছেন মহারাজা
प्रद्युत किशोर देव माणिक्य महोदय। माननीय गृह मंत्री जी, माननीय मुख्यमंत्री जी, यहां में मंच में सब बैठे हैं, मंत्री, हमारे बीजेपी के अध्यक्ष, हमारे कैंडिडेट वेस्ट त्रिपुरा से पूर्व मुख्यमंत्री जी बिप्लब देव जी। मैं ज्यादा समय नहीं लूंगा। कुमारघाट से आज पहली बार, जिंदगी में पहली बार मैं उसी मंच में खड़ा हूं जहां में हमारे गृह मंत्री जी खड़े हैं, और मैं गृह मंत्री जी को तोहफे में त्रिपुरा से दोनों सीट वर्ल्ड रिकॉर्ड मार्जिन से आपको और मोदी जी को देना चाहता हूं। यहां में मैं ज्यादा नहीं बोलूंगा क्योंकि हम सब देश के होम मिनिस्टर को सुनने आए हैं। सिर्फ दो बात रखना चाहता हूं। मैं त्रिपुरा मोथा का फाउंडर और मैं एक समय चेयरमैन रह चुका हूं। मेरे साथ यहां में विजय कुमार रांखल जी हैं, हमारे एमएलएज हैं, हमारे ब्रू शरणार्थी लीडर्स हैं। मैंने देखा है जब 2018 में मैं पहली बार गृह मंत्री जी से मिला था, हमारे जो ब्रू शरणार्थी थे जिनको कंचनपुर में कम्युनिस्ट की सरकार ने इतने सालों तक वंचित रखा, गरीब रखा, उनके शिक्षा के लिए नहीं सोचा, उनके भविष्य के लिए नहीं सोचा, उनके बच्चे के लिए नहीं सोचा। उस समय मैंने गृह मंत्री जी से एक निवेदन किया था। इतिहास गवाह है कि 2 महीने के अंदर जो 20-25 साल का प्रॉब्लम था, 2 महीने के अंदर गृह मंत्री जी ने हमारे ब्रू को दिया। आज अगर त्रिपुरा में ब्रू एक सम्मान का जिंदगी जी रहा है, अगर आपके बच्चे का एक भविष्य आज है, तो उसमें एक बहुत बड़ा हाथ हमारे गृह मंत्री जी का है। इसमें हमें भूलना नहीं चाहिए, हमें भूलना नहीं चाहिए कि हमारे साथ हमारे खराब समय में कौन रहा। आज से 1 महीने पहले मैंने, हमारे प्रेसिडेंट विजय कुमार रांखल ने, हमारे मंत्री ने, हमारे एमएलए ने, हमने एक हिस्टोरिक त्रिपुरा अकॉर्ड साइन किया है। बहुत लोग, स्पेशली कम्युनिस्ट, इतिहास को नकारते हैं, इतिहास को बदलने की कोशिश करते हैं, लेकिन कुमारघाट में मैं बोलना चाहता हूं और मीडिया के थ्रू बोलना चाहता हूं। आज से 75 साल पहले महारानी कंचन प्रभा देवी ने देश के उस समय के होम मिनिस्टर हमारे सरदार पटेल के संग एक एग्रीमेंट साइन किया था। उसके बाद त्रिपुरा एक हिंदुस्तान का अटूट अंग बना। 75 साल बाद कंचन प्रभा देवी का नाती को वही सम्मान, उस परिवार को वही सम्मान देश का होम मिनिस्टर श्री अमित शाह जी ने दिया है। यह सम्मान मुझे व्यक्तिगत तौर से नहीं दिया गया है, यह हमारे त्रिपुरा के इंडिजिनस लोग, हमारे जनजातीय, हमारे ट्राइबल लोगों को, हमारे हानी बुसा को, हमारे बुकुंगबारा को आज हमारा होम मिनिस्टर ने दिया है। ये शांति से मिला है। आज से पूरे नॉर्थ ईस्ट में आप देखेंगे, जब भी किसी को कुछ प्राप्त हुआ, ये वायलेंस से हुआ, झगड़ के हुआ, बंदूक से हुआ। इस बार ना किसी का घर जला है, ना किसी की मृत्यु हुई है, ना कहीं में आतंकवाद हुआ है। आज शांति से हम त्रिपुरा के जनजाति, इंडिजिनस, हानी बुसा को और स्थानीय लोगों को आगे ले जाना चाहते हैं। कम्युनिस्ट सरकार ने 25 साल तक यहां में राज किया, हमारा इतिहास को बदला, हमारे गरीब त्रिपुरा को कुछ नहीं दिया। आज अगर हमको अपना बच्चा का भविष्य बनाना होता है तो हमें कलकत्ता, दिल्ली, बेंगलोर, हैदराबाद, पूना जाना पड़ता है। मैं चाहता हूं कि अगर हमें
अपना भविष्य को ठीक करना है तो हमें त्रिपुरा के बाहर नहीं देखना है। यह कैसे होगा अगर केंद्र सरकार हमारे साथ नहीं खड़ा होगा। मैं अपने त्रिपुरा को बोलना चाहता हूं, हमने 20 के 20 सीट बहुत बार कम्युनिस्ट को दिया, रिटर्न में क्या मिला? गरीबी, बेरोजगारी, भूख, शिक्षा कहीं नहीं, कहीं में पीने के लिए पानी के लिए हमें 5-5 किलोमीटर चलना पड़ता था। आज समय आया है कि हम अपने दुश्मन को, जिसने हमें वंचित रखा, जिसने हमें नॉर्थ ईस्ट में सबसे गरीब अगर कोई जनजाति है तो वो त्रिपुरा का है। किसने रखा है? वो समझिए, किसने आज हमें इस स्थिति में रखा है और उसका जवाब इस इलेक्शन में आप दीजिए। मैं यहां में अपनी बहन के लिए वोट मांगने नहीं आया हूं, मैं यहां में अपने लोगों को एक अच्छा भविष्य देने के लिए, अपने नेक्स्ट जनरेशन को एक अच्छा कल देने के लिए बात करने के लिए आया हूं। मैं अंत में गृह मंत्री जी को एक छोटे भाई के तरीके से एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूं। गृह मंत्री जी, आपने हमें बहुत दिया है, हम आभारी हैं और हम चाहते हैं कि आप भी आज हमारे लिए और 2 शब्द बोलिए, क्योंकि कम्युनिस्ट ने एक अफवाह फैलाया हुआ है कुछ नहीं मिलेगा, और मैं बोलता हूं सब कुछ मिलेगा, सबको मिलेगा। मैं ये निवेदन करके अपने लोगों को बोलना चाहता हूं, 19 तारीख वेस्ट त्रिपुरा में, 26 तारीख ईस्ट त्रिपुरा में, यहां में एक मैसेज आप भेजिए कि त्रिपुरा अब कम्युनिस्ट के हाथों से निकल चुका है और एक नया कल बनाना चाहता है। यही मैं बोलकर अपने सबको धन्यवाद बोलना चाहता हूं। तीप्रासा दोफा आयुक लोकथोंग, तीप्रासा जाति आयुक लोकथोंग, भारत माता की जय, और त्रिपुरा के सब लोगों को मेरा बेलाई बेलाई नो हमबाई खुलुंग का धन्यवाद। थैंक यू। भारत माता की। मेरे साथ बोलिए, भारत माता की। क्यों भाई, कुमार घाट वालों की आवाज को क्या हो गया है? 400 पार करना है या नहीं करना है? मोदी जी को फिर से प्रधानमंत्री बनाना है या नहीं बनाना है? तो ऐसी आवाज नहीं चलेगी। दोनों हाथ उठाइए, उठाइए दोनों हाथ, विजय के संकल्प का मुट्ठी बींचिए और प्रचंड आवाज से बोलिए, भारत माता की, भारत माता की। मंच पर उपस्थित त्रिपुरा के लोकप्रिय मुख्यमंत्री डॉक्टर माणिक शाह जी, हमारे राजा साहब और मेरे मित्र त्रिपुरा मोथा के अध्यक्ष महोदय, मेरे साथ आए हुए हमारे दोनों प्रत्याशी, पश्चिम त्रिपुरा से विप्लव कुमार देव जी, विप्लव जी खड़े हो जाइए जरा, और पूर्वी त्रिपुरा से महारानी कृति सिंह जी, हमारे प्रदेश अध्यक्ष महोदय श्री टिंकू रॉय, श्री सुधांशु दास, हमारी ट्राइबल मंत्री आगे आओ, चकमा आगे आओ, जोर से ताली बजाओ सेंटाना चकमा के लिए सभी लोग। हमारे त्रिपुरा मोथा के साथी अनिमेश देववर्मा जी, अनिमेश जी खड़े हो जाइए आप, शुक्लचरण नोतिया जी, हमारी नेत्री, भारत सरकार में मंत्री बहन प्रतिमा भौमिक जी, और आज कुमार घाट की इस भूमि पर आए हुए प्यारे भाइयों, बहनों, माताओं और मेरे जिगर के टुकड़े जैसे युवा मित्रों, आप सभी को नमस्कार। मुझे बरोबर याद है 2017 का दिसंबर माह होगा और मैं यहां पर
त्रिपुरा मुक्ति के लिए पहली रैली करने आया था और यहीं से त्रिपुरा को कम्युनिस्टों से मुक्त करने की शुरुआत की थी। और आज इस महान त्रिपुरा की जनता ने इतने सालों के कम्युनिस्ट शासन को समाप्त कर त्रिपुरा में मोदी जी पर भरोसा कर विकास का एक नया रास्ता चुनने का काम किया है। मित्रों, मैं जब यहां आया हूं तब सबसे पहले मां त्रिपुरा सुंदरी को, बाबा गरिया मंदिर को और सभी देवी देवताओं को प्रणाम कर मेरी बात की शुरुआत करना चाहता हूं। मैं यहां आया हूं तब विनम्र शासक और जिनके मन में देश और जनता के अलावे कुछ नहीं था, ऐसे महाराजा वीर विक्रम माणिक्य किशोर जी को भी मनपूर्वक प्रणाम करना चाहता हूं। इतने सालों से कम्युनिस्टों ने महाराजा वीर विक्रम माणिक्य किशोर जी को केवल और केवल बुलाने का काम किया। नरेंद्र मोदी जी ने इनके नाम पर त्रिपुरा के एयरपोर्ट देकर बड़ी मूर्ति प्रस्थापित कर उनको चिर स्मरण करने का काम नरेंद्र मोदी जी ने किया है। और मित्रों, अभी अभी आपने पद्म पुरस्कारों का सूची देखा होगा। सतराम रियांग और बेनी चंद्र जमातिया, हमारे 2 ट्राइबल भाइयों को पद्म पुरस्कार देकर मोदी जी ने ट्राइबलों का सम्मान बढ़ाने का काम किया है। भाइयों और बहनों, नरेंद्र मोदी सरकार ने आदिवासियों के सम्मान के लिए, सुरक्षा के लिए और समावेशी विकास के लिए देश भर में न केवल विकास के काम चलाए हैं, उनको साथ में रखने का भी काम किया है। ये कांग्रेस और कम्युनिस्ट सालों तक शासन करते रहे, एक भी आदिवासी बेटा बेटी को देश का राष्ट्रपति नहीं बनाया। आजादी के 75 साल बाद पहली बार नरेंद्र मोदी जी ने ओडिशा के गरीब आदिवासी की बेटी द्रौपदी जी मुर्मू को महामहिम द्रौपदी मुर्मू बनाकर आदिवासियों का सम्मान करने का काम किया है। सैकड़ों करोड़ों रुपया खर्च कर सैकड़ों करोड़ों रुपया खर्च कर आदिवासी पूर्वज हमारे जो देश के लिए काम करे, उनके म्यूजियम बन रहे हैं। और मैं आज बताना चाहता हूं, हर म्यूजियम में हमारे राजा साहब का प्रतिमा भी है। ये हम सब के लिए गौरव का विषय है। भाइयों और बहनों, जनजातीय मंत्रालय में, ट्राइबल मंत्रालय में पहले 24,000 करोड़ रुपए का बजट था। मेरी बात ध्यान से सुनना, इतने बड़े देश के ट्राइबल आबादी के लिए सिर्फ 24,000 करोड़ था। नरेंद्र मोदी जी ने 1,25,000 करोड़ का बजट ट्राइबल मंत्रालय का किया है। और एकलव्य मॉडल स्कूल 70 साल में सिर्फ 90 बने थे। मोदी जी के 5 साल में 740 एकलव्य स्कूल बढ़ाने का काम हमने किया है। भाइयों और बहनों, त्रिपुरा पहले विप्लव देव जी और अब डॉक्टर माणिक शाह के नेतृत्व में विकास के रास्ते पर आगे बढ़ पड़े। आज सुबह ही राजा साहब भी बैठे थे। टूरिज्म, कनेक्टिविटी, एयर कनेक्टिविटी, स्वास्थ्य, नौकरियां और इंफ्रास्ट्रक्चर, हर क्षेत्र में नरेंद्र मोदी सरकार की प्रायोरिटी हमारा त्रिपुरा है। और मैं आज बताने जा रहा हूं, त्रिपुरा में भी हमारी प्रायोरिटी
हमारा ट्राइबल एरिया भारत सरकार का प्रायोरिटी है। भाई और बहनों, अभी अभी हमने एक एग्रीमेंट किया है भारत सरकार, त्रिपुरा सरकार और राजा साहब के साथ, तिपरा मोथा के साथ। एग्रीमेंट के लिए ढेर सारी चीजें बोली जा रही है, मगर मैं आज आपको बताकर जाता हूं, आपकी सभी समस्याओं का समाधान उस एग्रीमेंट में है। मुझ पर भरोसा करिएगा, एक कम्युनिस्ट जहर घोलने का काम। त्रिपुरा की जाति और जनजाति दोनों के बीच में शांति रहे, दोनों का विकास हो और संघर्ष की जगह विकास के रास्ते पर त्रिपुरा आगे बढ़ पड़े, इसका एग्रीमेंट में पूरा ध्यान रखा गया है। ये राजा साहब है तो राजा, मगर बनने से भी ज्यादा चतुर है भाई। छोटी छोटी चीज पर आपकी सभी हितों का ध्यान उन्होंने रखा है और मोदी जी ने इसको आशीर्वाद देने का काम किया है। भाई और बहनों, मोदी जी ने देश भर में 2,94,00,000 गरीबों के घर बनाए। इसका सबसे बड़ा फायदा एसटी लाभार्थियों को हुआ है। 21% घर एसटी को मिले, 14 करोड़ टॉयलेट बनाए, 70 करोड़ लोगों को 5 किलो चावल प्रति माह प्रति व्यक्ति मुफ्त में दिया जाता है। त्रिपुरा वालों, आपको मिलता है या नहीं मिलता है, जरा बताओ तो। भाई चावल आता है ना? हर एक के घर में गैस का सिलेंडर भेजने वाले हैं और नए 3 करोड़ घर मोदी जी ने वादा किया है, बाद में कोई भी ट्राइबल हमारा घर बगैर का नहीं रहेगा। ये मोदी का गारंटी है भाइयों, मोदी का गारंटी। सबरूम रेलवे स्टेशन को एक्सटेंड किया गया, 23 ट्रेनें अब चल रही है। अगरतला अखौरा रेलवे लाइन को आगे बढ़ाने का काम किया और एक हाईवे ही था कम्युनिस्टों के 30 साल के शासन में, अब त्रिपुरा में 9 हाईवे बनाने का काम नरेंद्र मोदी सरकार ने किया है। विद्या ज्योति स्कूल को सीबीएसई में लिया, बमुतिया में सेंट्रल संस्कृत यूनिवर्सिटी बन रही है, नरसिंहगढ़ में अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम बन रहा है, जिससे आईपीएल और राष्ट्रीय मैच भी यहां आएगी। सब रूम के अंदर 1550 करोड़ के खर्चे से जलेफा में स्पेशल इकोनॉमिक जोन बन रहा है, जहां इंडस्ट्री भी आएगी, रोजगारी भी आएगी और अपने अकेले त्रिपुरा में 87,000 लखपति दीदी है मोदी जी ने, और 3 करोड़ लखपति दीदी बनाने का लक्ष्य रखा है। अकेले त्रिपुरा में 3.5 लाख लखपति दीदी बनेगा और आज 140 करोड़ से एक अनूठा यूनिटी मॉल भी बनाने का काम त्रिपुरा के अंदर हुआ है। भाई और बहनों, कम्युनिस्ट जहां जहां गए वहां क्या छोड़ा? गरीबी, भूखमरी, स्वास्थ्य का अभाव, शिक्षा का अभाव और युवाओं के हाथ में बंदूक थमाने का काम एक कम्युनिस्ट पार्टी ने किया और भारतीय जनता पार्टी के नेता नरेंद्र मोदी जी ने युवाओं के हाथ में लैपटॉप पकड़ाने का काम किया है। पूरे नॉर्थ ईस्ट के अंदर 10 से ज्यादा समझौते कर सभी ट्राइब को 10,000 युवाओं के हाथ में से हथियार छुड़ाकर उनको मेन स्ट्रीम में लाने का काम भारतीय जनता पार्टी और नरेंद्र मोदी सरकार ने किया है। भाइयों और बहनों, मैं आज त्रिपुरा में कहना चाहता हूं,
हमारे ब्रू और रियांग भाई, इनके परिवार 40,000 लोग नर्क की जिंदगी जी रहे थे। नरेंद्र मोदी सरकार ने सभी ब्रू रियांग को अच्छे गांव बसा कर दिए और उनके जीवन के अंदर उजियारा लाने का काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया। भाइयों और बहनों, ये कम्युनिस्ट यहां आते हैं, कांग्रेस वाले आते हैं। मैं आज त्रिपुरा के कांग्रेस और कम्युनिस्ट नेताओं को पूछने आया हूं, 10 साल आपकी सरकार थी, सोनिया मनमोहन की सरकार थी, आपने त्रिपुरा को क्या दिया? हर 10 साल में आपने 40,183 करोड़ रुपया दिया, सिर्फ 40,000 करोड़। और मोदी जी ने ये 10 साल में 40,000 करोड़ के सामने 98,000 करोड़ रुपया देने का काम मोदी जी ने किया है। इसके साथ साथ 20,000 करोड़ के इंफ्रास्ट्रक्चर, 17,000 करोड़ सड़क के, 2,000 करोड़ रेलवे के और 1,000 करोड़ एयरपोर्ट का किया है। और भाई और बहनों, मोदी गारंटी की बात मैं करना चाहता हूं। कोई भी व्यक्ति हो, गरीब हो, धनवान हो, 70 साल की ऊपर के सभी नागरिकों को 5 लाख तक का सभी स्वास्थ्य का खर्चा अब भारतीय जनता पार्टी उठाएगी। नए 3 करोड़ घर बनाए जाएंगे। गरीबों के घर में नल से जल आया है, ऐसे ही पाइप से गैस पहुंचाने का काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार करेगी। गरीब के घर पर सूर्य बिजली का उपकरण लगाकर उसका बिजली बिल माफ करने का काम करेंगे। 3 करोड़ लखपति दीदियां भी हम बनाएंगे। भाइयों और बहनों, हम आपका आशीर्वाद मांगने आए हैं। ये लाल भाइयों ने सालों तक जाति और जनजाति को झगड़ा कराया। आपकी 20 की 20 सीटें लेकर विकास के नाम पर बिग जीरो किया है। मैं आपको कहता हूं, मोदी जी पर भरोसा कर कमल के निशान पर वोट दीजिए। आने वाले दिनों में संपूर्ण त्रिपुरा, वेस्ट हो या ईस्ट हो, हम उसको विकसित राज्य बनाने का कमिटमेंट करते हैं मित्रों, कमिटमेंट करते हैं। और ट्राइबल भाइयों को इस सम्मान की बात करते हैं, ट्राइबल संस्कृति की बात करते हैं। घुसपैठ अब तक किसने होने दी? कम्युनिस्टों ने होने दी, कांग्रेस ने होने दी। नरेंद्र मोदी सरकार ने बाढ़ को पूरी करने का काम कर घुसपैठ को रोकने का 90% काम किया है। मोदी जी को तीसरा मौका दीजिए, 100% घुसपैठ वहां से रुक जाएगी। ये मोदी का गारंटी है मित्रों, मोदी का गारंटी। भाइयों बहनों, महाराजा विक्रमदेव का हमारे त्रिपुरा पर बहुत बड़ा उपकार है। आज भारतीय जनता पार्टी ने, आगे आइए जरा, इनके ही परिवार से कृतिदेव सिंह जी को टिकट दिया है। मैं आपको अपील करने आया हूं, कृतिदेव सिंह जी को समर्थन कर नरेंद्र मोदी को समर्थन करिए। कृतिदेव सिंह जी के सामने दबाया हुआ हर बटन सीधा आपका वोट नरेंद्र मोदी को मिलने वाला है, मोदी को प्रधानमंत्री बनाने वाला है। मुझे बताओ, 26 तारीख को कमल के निशान पर बटन दबाएंगे क्या? जरा जोर से बोले, दबाएंगे? भाजपा को जिताएंगे? कृतिदेव सिंह जी को जिताएंगे? मोदी जी को तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाएंगे? तो मेरे साथ दोनों हाथ उठाइए, उठाइए दोनों हाथ, विजय के संकल्प की मुट्ठी बीचिए और प्रचंड आवाज से बोलिए, भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की।
वंदे वंदे वंदे। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। ধন্যবাদ মাননীয় গৃহমন্ত্রী অমিত ভাই শাহজিকে। আমরা ওনার মূল্যবান বক্তব্য শুনলাম। 2017 সালে উনি এসেছিলেন এবং ত্রিপুরা থেকে সিপিএম এখান থেকে মুক্ত হয়েছিল। वीर विक्रम भूभाग वीर विक्रम भूभाग वीर विक्रम भूभाग वीर विक्रम भूभाग वीर विक्रम। যদিও বামেরা তাদের প্রচারে তারা প্রচার করতে শুরু করেছে, তারা জানে যে বামেরা হারবে, তারপরও তারা যাই করছে ইউটিউব সোশ্যাল মিডিয়ার মাধ্যমে তাদের প্রচারটা মানুষের কাছে নিয়ে যাওয়ার চেষ্টা করছে। ময়দানে এসে তাদের প্রচার করার কোনো ক্ষমতা নেই। পূর্বতন
মুখ্যমন্ত্রী মানিক সরকার মহোদয়, যার ধর্ম হচ্ছে অ্যাথেইস্ট, নাস্তিক, ভারতীয় জনতা পার্টি, ত্রিপুরা মোথা এবং আইপিএফটি এই সম্মিলিত শক্তিকে ভয় পেয়ে ত্রিপুরার পূর্বতন মুখ্যমন্ত্রী ধর্মে বিশ্বাস করতে শুরু করেছেন। আমি বলি, কয়েকদিন আগে উনি বক্তব্য করছিলেন, উনি বলেছেন যে আমি যেদিন স্বর্গে যাব সেই দিন আমার মুখ্যমন্ত্রিত্ব থাকাকালীন আমি কি কি কাজ করেছি ভগবানের কাছে বলতে পারবো। আপনারা বলুন, নাস্তিক লোক, যার কাছে স্বর্গ নেই, নরক নেই, ধর্মে বিশ্বাস রাখেন না, সেই ব্যক্তি আজকে আমাদের ভয়ে ওনাকে ভগবানের আশ্রয় নিতে হচ্ছে, এবং তাতেই প্রমাণ হয় আমাদের প্রার্থী লক্ষ লক্ষ ভোটের ব্যবধানে বাম প্রার্থীকে পরাস্ত করবে। এবং মানিকবাবু বলেছেন স্বর্গে যাবেন, মেনেই নিলাম। মোদিজির বয়ে উনি স্বর্গে যাবেন, ভগবানের আশ্রয় নেবেন। আপনি যা যা করে গেছেন 20 বছরে এই ত্রিপুরা রাজ্যের পিছিয়ে পড়া মানুষদের এত বঞ্চনা, এত শোষণ আপনারা করেছেন, স্বয়ং ভগবানও স্বর্গের দরজা বন্ধ করে দিব, মানিক বাবুরে ঢুকতে দিত না। আর এই মানিক বাবু উনি বলেন যে ত্রিপুরা মোথার গ্রেটার ত্রিপুরা ল্যান্ড দাবি কোথায়, এই দাবি কোন দিন আসবে। মানিক বাবু একজন কমিউনিস্ট, ওনাকে শিক্ষা দেওয়ার ক্ষমতা আমার নেই। সারা পৃথিবীতে কমিউনিজমের জন্ম হয়েছে কখন? 176 বছর আগে কার্ল মার্কস এবং ফ্রেডরিক এঙ্গেল 1848-এ এই কমিউনিজমের প্রচার শুরু করেন, এবং আমাদের ভারতবর্ষে 99 বছর হয়ে গেছে কমিউনিস্টদের আন্দোলন, এবং আমাদের এই ত্রিপুরায় 79 বছর ধরে বামেরা বলছে আমরা সাম্যবাদ আনবো। আমি কমিউনিস্টদের জিজ্ঞেস করতে চাই, গ্রেটার ত্রিপুরা ল্যান্ডের কথা বাদ দিয়ে দিন, আপনাদের সাম্যবাদ কবে আসছে সেটার জবাব দিন। আপনারা বলতে পারবেন? সাম্যবাদের নাম দিয়ে ত্রিপ্রাসাদের ভুকাবাদী দিয়ে 35 বছর ক্ষমতায় ছিল, আর আমরা কি পাইছি? বামেদের থেকে কি পাইছি? বামেদের থেকে একটাই পাইছি, ত্রিপুরা আলাদা হয়ে যাও, বাঙালের আলাদা হয়ে যাও। পাহাড়ি বাঙালি ভাই পাই না, সুযোগ পাইলে যে যেখানে পাই তোমরা সব কাইটাও মাইরাও, এটাই তো আমরা দেখলাম। যদিও ইলেকশন কমিশন বলবে কাইটাও মাইরাও কেন বলছেন উনি? I have all respect for Election Commission of India and its guideline. কিন্তু এটা ইতিহাস, বাংলারা যতবার ক্ষমতায় এসছে তারা 1980 সালের দাঙ্গা আমাদের উপহার দিয়েছে। আবার 97 সালের কথা আমরা ভুলবো না, ত্রিপুরায় উগ্রপন্থা সমস্যার এই কথা আমরা ভুলবো না। এই মঞ্চে দাঁড়িয়ে ত্রিপুরা মোথা বিজেপি আইপিএফটি আমরা বলতে পারি, সারা রাজ্যের মানুষকে আমরা বলতে পারি, আমরা যদি ক্ষমতায় বসে থাকি ত্রিপুরায় দাঙ্গা হতে দেব না, বামেদের মতো আমরা দাঙ্গা হতে দেব না। তারা ত্রিপুরাদের কি বলে? আপনারা ত্রিপুরাদের তারা বলে এই বাঙালিরা বাংলাদেশ থেকে আসছে, আর উপজাতিরা ত্রিপুরা ছাড়া আপনাদের অস্তিত্ব সংকটে। তো নিশ্চয়ই ত্রিপুরারা ভয় পাবে। আর বাঙালিদের এসে বলছে বাঙালিদের আমরা চাকরি দিতে পারছি না, ওই সব চাকরি ত্রিপুরারা খায়া ফেলাইতেছে, এডিসি পাইছে, রিজার্ভেশন পাইছে, সব চাকরি ওরা খেয়ে নিয়েছে, আমরা পারবো না। দণ্ড এসসি এসটিদের বলছে জেনারেলদের সমস্ত সুযোগ সুবিধা এসসি এসটিরা খায়া ফেলাইতে, জেনারেল আর পাইতো না। বেকারদের বলে আমরা বেকারদের চাকরি দিতে চাই কিন্তু আমরা পারি না,
কারণ ওই যে কর্মচারীদের বয়সের সীমা 58 থেকে 60 বছর করলাম, মানে প্রত্যেকটা অংশের মানুষে মিথ্যা বলে এরা 35 বছর ত্রিপুরাজ্যের শাসন করছে। আমি কনফিডেন্ট এইটুকু বলতে পারি, পাহাড়ের মানুষ জেগে গেছে, বুঝে গেছে, এই বামেদের আর আসতে দেওয়া হবে না ত্রিপুরায়। আপনারা জেনে নিন এই কথা। এবং 2018 সালে যারা ভোট দিয়ে ভারতীয় জনতা পার্টি এবং আইপিএফটিদের ক্ষমতায় এনেছেন, ওই জনগণ দেবতাদের আমি প্রণাম জানাচ্ছি মঞ্চ থেকে। নতুবা আজকেও বামেদের মুখ্যমন্ত্রী মানিক সরকার মহোদয়ের কেন্দ্রীয় বঞ্চনার কথা শুনতাম। উনার এটা ওই আগে তুফা সিনেমার গান আমরা টেপ রেকর্ডে শুনতাম। এইরকম একটা রেকর্ড কইরা আস্থা বলে ত্রিপুরার সমস্ত মানুষ নিয়ে গিয়ে উনি বক্তৃতা করতেন, কেন্দ্রীয় সরকার আমাদের টাকা দিচ্ছে না, আমরা কিছুই করতে পারছি না। আর ওইদিকে দিল্লিতে মনমোহন সিং, সীতারাম ইয়েচুরি এরা বয়া বয়া চা খায়, আর এখানে ওই সিপিএমরা কংগ্রেস সরকারের বিরুদ্ধে এখানে বক্তৃতা করে। আর 2018 সালে ত্রিপুরার গণতন্ত্র প্রিয় শ্রমিক, বুদ্ধিজীবী, ওয়াংসা, তিপ্রাসা, মুগলি সমস্ত অংশের মানুষ ভোট দিয়ে মানিক বাবুর ওই টেপটাকে এমন ভাবে আসার দিতে, এই টেপ রেকর্ড আর বাঁচত না। কেন্দ্রীয় বঞ্চনার গল্প আর হবে না। নতুবা আজকেও কইতো মোদীজির সরকার টাকা দিচ্ছে না, আমরা করতে পারতাছি না। কি না দিছে এদের, দিতে 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 মনমোহন সিংকে হাত পায়ে গেছিলেন গোটা টাকা দিতে দিতে। আর এখানে কমরেডরা শিকাবিনি খাইতো, এই কমরেডরা চারমিনার, ফ্ল্যাট, গোল্ড, আমিও তো জানি না, এদের সিগারেট থেকে আরম্ভ করে যাদের বাইসাইকেল ছিল এরা গাড়ি নিয়ে আসা যাওয়া করতো। আমরা কি ভুইলা দামু? এইটা আমরা কখনোই ভুলবো না। এই কারণে এইবার এর একটা জিনিস সরাইতে সাংঘাতিক, এর হচ্ছে ক্রিমিনাল বুদ্ধি কি কইরা মানুষের মগজে দেওয়া যায়, এটা হচ্ছে তাদের বুদ্ধি। বলছে ত্রিপুরা মথা এত স্ট্রং একটা আঞ্চলিক দল, এই দলটা কেন আপনারা বিজেপিকে ভোট দেবেন? আমি মানিক বাবুকে জিজ্ঞেস করছি, মানিক বাবু আপনার সিপিএম দল কংগ্রেসের সাথে আঘাত করেছে, ত্রিপুরার পিছিয়ে পড়া ত্রিপ্রাসা সহ অন্যান্য অংশের যারা পিছিয়ে পড়া মানুষের সাথে আপনাদের কি চুক্তি আছে? কোন চুক্তি নাই। কিন্তু ত্রিপুরা মথা, বিজেপি, আইপিএফটি তিন দলীয় আমরা কেন্দ্রীয় সরকারের সাথে ত্রিপাক্ষিক চুক্তি করেছি। এই রাজ্যে এক ভারত শ্রেষ্ঠ ভারতের লক্ষ্যে আমরা সমস্ত অংশের মানুষের উন্নয়ন করব। এই চুক্তিতে আজকে আমরা একসাথে কাজ করব। আর আপনারা বলছেন যে আনারস, এই আনারস বুইলে গিয়া আপনারা আজকে পদ্ম ফুলে ভোট দেবেন। ত্রিপ্রাসাদের যদি কেউ উন্নয়ন করে, পদ্ম ফুলে আমরা কেন ভোট দেব না? আর আমাদের প্রার্থীর বিরুদ্ধে তারা বলছে উনি তো বহিরাগত, বাইরের থেকে আইছেন। আপনারা বলেন তো, এখানে যারা মহিলারা আছেন, কেউ যদি উনার মতো ছত্তিশগড়ে বিয়ে করে যান, ওইখানেই কিন্তু সংসারটা করবেন। আর স্বভাবত আমরা দেখেছি এইখানের মানুষ যখন সেখানে যায় আর দেশে ফিরে না। পাঞ্জাবে বিয়ে করলে পাঞ্জাব থেকে আর ফিরে না। কিন্তু এই মহিলার এত শক্তি, উনার সামনেই বলছি যে উনার মহারাজা হাজবেন্ডকে বুঝিয়ে উনি আবার উনার পৈতৃক ভূমিতে ত্রিপুরায় আমি সর্ব অংশের মানুষের কাজ করব, এমপি ইলেকশনে আমি লড়তে যাচ্ছি। এত বড় একটা শক্তিশালী মহিলাকে আমরা কেন ভোট দেব না? আমরা অবশ্যই ওনাকে ভোট দিয়ে জয়লাভ করাবো। তাদের মিথ্যা প্রচারের অভাব আর নেই। একের পর এক অভিযোগ তারা বলে, এরা নাকি এইবার, আমি অনেক জায়গায় বলি 350 সিট নিয়ে এরা ক্ষমতায় বইব। বামেদের আমি জিগাইলাম, এক নেতা মোদীর জিগাইলাম,
আপনারা ত্রিপুরাতে আপনারা যে 350 সিট নিয়ে আইবেন, ত্রিপুরার পূর্ব ত্রিপুরার পশ্চিম ত্রিপুরার মধ্যে কোন সিটটা আপনারা জিতবেন? ওইসে এখানে আমরা জিতবো না। তো কেমনে আইব? কেমনে আইব? কিন্তু আমরা এইটুকু বলতে পারি, মোদিজির যে স্লোগান আপকি বার 400 বার, আর ওই 400 সিটের মধ্যে যে 2টা সিট হবে এটা ত্রিপুরার 2টা সিট, এইটাই দিয়ে গণনা শুরু হবে। ভয় কিসে? কোনো ভয় নেই। উন্নয়ন হবে, মানুষের কাজ হবে, ত্রিপুরা অঞ্চলের সমস্ত অংশের মানুষের কাজ হবে। এই কাজ করার লক্ষ্যে আমাদের প্রার্থী ভয়ানী প্রীতি দেবী যে আমার সাথে কথা বলছিলেন ওনার হোটেল রুমে, উনি প্রতিশ্রুতিবদ্ধ, সংকল্প নিয়ে ত্রিপুরায় এসছেন, উনি কাজ করবেন। উনি বলছেন যে আমি অন্যান্য এমপিদের মতো বসে থাকবো না, আমি সবখানেই চেষ্টা করব কি কি কাজ করে মানুষের কর্মসংস্থান করা যায়, আরো বেশি সরকারের কাজকে ত্বরান্বিত করা যায়, সেই কাজ উনি করবেন। উনি এমনিতেই আসেননি এখানে। অনেক ভালো লেগেছে। এক ভারত শ্রেষ্ঠ ভারত এটা হবে। এবং আর বিশেষ বক্তব্য রাখছি না, আমি শিওর ওইখান থেকে ওনারা বেরিয়ে গেছেন। আরো মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়গণ, বিধায়কগণ বক্তব্য করবেন। এই যে একটা সুযোগ, এই সুযোগে আমরা মোদিজিকে এইবার ককবরক একটা স্লোগান বলবো, যারা ককবরক ভাষাভাষী আমাদের লোক, কিন্তু সিম্বল মাথুর নাই বুটি দিন থাকে আরো সবর কম খেলে দিয়ে হাইতে বুট নাই পড়ব পদ্মকুমার হয় ত্রিপুরা মথায় তীর্থি বিজেপি নি সিম্বল থাকলে পদ্মকুমার অ্যাবসলিউট মাস্ট। এটাকে আমাদের ঘরে ঘরে নিয়ে যেতে হবে, প্রচার করতে হবে এবং আমাদের মহারানী প্রীতি দেবীজিকে এবং পশ্চিম ত্রিপুরা আসলে বিপ্লব কুমার দেব মহোদয়কে যেন আমরা লক্ষ লক্ষ ভোটের ব্যবধানে জয়লাভ করিয়ে মোদিজিকে আপকি বার 400 বার, এই 400 মধ্যে আমরা যেন উপহার দিতে পারি। অমিত ভাষা তোমার জানা স্বাগতম, মায়েরা উলুদ্দানি দিন। অমিত ভাষা তোমার জানা স্বাগতম, 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 অমিত ভাষা তোমার জানা স্বাগতম। भारत माता की फिर एक बार, फिर एक बार, आपकी बार, आपकी बार, आपकी बार। অমিত ভাষাকে আমরা এই কুমারঘাটে দ্বিতীয়বার স্বাগত জানাচ্ছি। উনি সামনে বক্তব্য রাখবেন ত্রিপুরা মাতা দলের যিনি ফাউন্ডার রয়েছেন মহারাজা প্রদ্যোৎ কিশোর দেব মাণিক্য মহোদয়। माननीय गृह मंत्री जी, माननीय मुख्यमंत्री जी, यहां में मंच में सब बैठे हैं, मंत्री, हमारे बीजेपी के अध्यक्ष, हमारे कैंडिडेट वेस्ट त्रिपुरा से पूर्व मुख्यमंत्री जी बिप्लब देव जी। मैं ज्यादा समय नहीं लूंगा। कुमारघाट से आज पहली बार, जिंदगी में पहली बार मैं उसी मंच में खड़ा हूं जहां में हमारे गृह मंत्री जी खड़े हैं, और मैं गृह मंत्री जी को तोहफे में त्रिपुरा से दोनों सीट वर्ल्ड रिकॉर्ड मार्जिन से आपको और मोदी जी को देना चाहता हूं। यहां में मैं ज्यादा नहीं बोलूंगा क्योंकि हम सब देश के होम मिनिस्टर को सुनने आए हैं। सिर्फ 2 बात रखना चाहता हूं। मैं त्रिपुरा मोथा का फाउंडर और मैं एक समय चेयरमैन रह चुका हूं। मेरे साथ यहां में विजय कुमार रांखोल जी हैं, हमारे एमएलएज हैं, हमारे ब्रू शरणार्थी लीडर्स हैं। मैंने देखा है
जब 2018 में मैं पहली बार गृह मंत्री जी से मिला था, हमारे जो ब्रू शरणार्थी थे जिनको कंचनपुर में कम्युनिस्ट की सरकार ने इतने सालों तक वंचित रखा, गरीब रखा, उनके शिक्षा के लिए नहीं सोचा, उनके भविष्य के लिए नहीं सोचा, उनके बच्चे के लिए नहीं सोचा। उस समय मैंने गृह मंत्री जी से एक निवेदन किया था। इतिहास गवाह है कि 2 महीने के अंदर जो 20-25 साल का प्रॉब्लम था, 2 महीने के अंदर गृह मंत्री जी ने हमारे ब्रू को दिया। आज अगर त्रिपुरा में ब्रू एक सम्मान का जिंदगी जी रहा है, अगर आपके बच्चे का एक भविष्य आज है, तो उसमें एक बहुत बड़ा हाथ हमारे गृह मंत्री जी का है। इसमें हमें भूलना नहीं चाहिए, हमें भूलना नहीं चाहिए कि हमारे साथ हमारे खराब समय में कौन रहा। आज से 1 महीने पहले मैंने, हमारे प्रेसिडेंट विजय कुमार रांखल ने, हमारे मंत्री ने, हमारे एमएलए ने, हमने एक हिस्टोरिक तिपरासा अकॉर्ड साइन किया है। बहुत लोग, स्पेशली कम्युनिस्ट, इतिहास को नकारते हैं, इतिहास को बदलने की कोशिश करते हैं, लेकिन कुमार घाट में मैं बोलना चाहता हूं और मीडिया के थ्रू बोलना चाहता हूं, आज से 75 साल पहले महारानी कंचन प्रभा देवी ने देश के उस समय के होम मिनिस्टर हमारे सरदार पटेल के संग एक एग्रीमेंट साइन किया था। उसके बाद त्रिपुरा एक हिंदुस्तान का अटूट अंग बना। 75 साल बाद कंचन प्रभा देवी का नाती को वही सम्मान, उस परिवार को वही सम्मान देश का होम मिनिस्टर श्री अमित शाह जी ने दिया है। यह सम्मान मुझे व्यक्तिगत तौर से नहीं दिया गया है, यह हमारे त्रिपुरा के इंडिजिनस लोग, हमारे जनजाति, हमारे ट्राइबल लोगों को, हमारे हानी बुसा को, हमारे बुकुंगबारा को आज हमारा होम मिनिस्टर ने दिया है। ये शांति से मिला है। आज से पूरे नॉर्थ ईस्ट में आप देखेंगे, जब भी किसी को कुछ प्राप्त हुआ, ये वायलेंस से हुआ, झगड़ के हुआ, बंदूक से हुआ। इस बार ना किसी का घर जला है, ना किसी की मृत्यु हुई है, ना कहीं में आतंकवाद हुआ है। आज शांति से हम त्रिपुरा के जनजाति, इंडिजिनस, हानी बुसा को और स्थानीय लोगों को आगे ले जाना चाहते हैं। कम्युनिस्ट सरकार ने 25 साल तक यहां में राज किया, हमारा इतिहास को बदला, हमारे गरीब तिपरासा को कुछ नहीं दिया। आज अगर हमको अपना बच्चा का भविष्य बनाना होता है तो हमें कलकत्ता, दिल्ली, बेंगलोर, हैदराबाद, पूना जाना पड़ता है। मैं चाहता हूं कि अगर हमें अपना भविष्य को ठीक करना है तो हमें त्रिपुरा के बाहर नहीं देखना है। यह कैसे होगा अगर केंद्र सरकार हमारे साथ नहीं खड़ा होगा। मैं अपने तिपरासा को बोलना चाहता हूं, हमने 20 के 20 सीट बहुत बार कम्युनिस्ट को दिया, रिटर्न में क्या मिला? गरीबी, बेरोजगारी, भूख, शिक्षा कहीं नहीं, कहीं में पीने के लिए, पानी के लिए हमें 5-5 किलोमीटर चलना पड़ता था। आज समय आया है, आज समय आया है कि हम अपने दुश्मन को, जिसने हमें वंचित रखा, जिसने हमें नॉर्थ ईस्ट में सबसे गरीब अगर कोई जनजाति है तो वो त्रिपुरा का है, किसने रखा है वो समझिए, किसने आज हमें इस स्थिति में रखा है, और उसका जवाब इस इलेक्शन में आप दीजिए। मैं यहां में अपनी बहन के लिए वोट मांगने नहीं आया हूं, मैं यहां में अपने लोगों को एक अच्छा भविष्य देने के लिए, अपने नेक्स्ट जनरेशन को एक अच्छा कल देने के लिए बात करने के लिए आया हूं। मैं अंत में गृह मंत्री जी को एक छोटे भाई के तरीके से एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूं। गृह मंत्री जी,
आपने हमें बहुत दिया है, हम आभारी हैं और हम चाहते हैं कि आप भी आज हमारे लिए और 2 शब्द बोलिए, क्योंकि कम्युनिस्ट ने एक अफवाह फैलाया हुआ है कुछ नहीं मिलेगा, और मैं बोलता हूं सब कुछ मिलेगा, सबको मिलेगा। मैं ये निवेदन करके अपने लोगों को बोलना चाहता हूं, 19 तारीख वेस्ट त्रिपुरा में, 26 तारीख ईस्ट त्रिपुरा में, यहां में एक मैसेज आप भेजिए कि त्रिपुरा अब कम्युनिस्ट के हाथों से निकल चुका है और एक नया कल बनाना चाहता है। यही मैं बोलकर अपने सबको धन्यवाद बोलना चाहता हूं। तीपरासा दफा आयुक लोकथोंग, तीपरासा जाति आयुक लोकथोंग, भारत माता की जय, और त्रिपुरा के सब लोगों को मेरा बेलाई बेलाई नो हमबाई खुलुंग का धन्यवाद। थैंक यू। भारत माता की। मेरे साथ बोलिए, भारत माता की। क्यों भाई, कुमार घाट वालों की आवाज को क्या हो गया है? 400 पार करना है या नहीं करना है? मोदी जी को फिर से प्रधानमंत्री बनाना है या नहीं बनाना है? तो ऐसी आवाज नहीं चलेगी। दोनों हाथ उठाइए, उठाइए दोनों हाथ, विजय के संकल्प का मुट्ठी भींचिए और प्रचंड आवाज से बोलिए, भारत माता की, भारत माता की। मंच पर उपस्थित त्रिपुरा के लोकप्रिय मुख्यमंत्री डॉक्टर माणिक शाह जी, हमारे राजा साहब और मेरे मित्र त्रिपुरा मोथा के अध्यक्ष महोदय, मेरे साथ आए हुए हमारे दोनों प्रत्याशी, पश्चिम त्रिपुरा से विप्लव कुमार देव जी, विप्लव जी खड़े हो जाइए जरा, और पूर्वी त्रिपुरा से महारानी कृति सिंह जी, हमारे प्रदेश अध्यक्ष महोदय श्री टिंकू रॉय, श्री सुधांशु दास, हमारी ट्राइबल मंत्री आगे आओ, चकमा आगे आओ, जोर से ताली बजाओ सेंटर चकमा के लिए सभी लोग। हमारे त्रिपुरा मोथा के साथी अनिमेश देववर्मा जी, अनिमेश जी खड़े हो जाइए आप, शुक्ल चरण नोतिया जी, हमारी नेत्री भारत सरकार में मंत्री बहन प्रतिमा भौमिक जी, और आज कुमार घाट की इस भूमि पर आए हुए प्यारे भाइयों बहनों माताओं और मेरे जिगर के टुकड़े जैसे युवा मित्रों, आप सभी को नमस्कार। मुझे बरोबर याद है 2017 का दिसंबर माह होगा और मैं यहां पर त्रिपुरा मुक्ति के लिए पहली रैली करने आया था और यहीं से त्रिपुरा को कम्युनिस्टों से मुक्त करने की शुरुआत की थी। और आज इस महान त्रिपुरा की जनता ने इतने सालों के कम्युनिस्ट शासन को समाप्त कर त्रिपुरा में मोदी जी पर भरोसा कर विकास का एक नया रास्ता चुनने का काम किया है। मित्रों, मैं जब यहां आया हूं तब सबसे पहले मां त्रिपुरा सुंदरी को, बाबा गरिया मंदिर को और सभी देवी देवताओं को प्रणाम कर मेरी बात की शुरुआत करना चाहता हूं। मैं यहां आया हूं तब विनम्र शासक और जिनके मन में देश और जनता के अलावे कुछ नहीं था, ऐसे महाराजा वीर विक्रम माणिक्य किशोर जी को भी मनपूर्वक प्रणाम करना चाहता हूं। इतने सालों से कम्युनिस्टों ने महाराजा वीर विक्रम माणिक्य किशोर जी को केवल और केवल बुलाने का काम किया। नरेंद्र मोदी जी ने इनके नाम पर
त्रिपुरा के एयरपोर्ट देकर बड़ी मूर्ति प्रस्थापित कर उनको चिर स्मरण करने का काम नरेंद्र मोदी जी ने किया है। और मित्रों, अभी अभी आपने पद्म पुरस्कारों का सूची देखा होगा। सतराम रियांग और बेनी चंद्र जमातिया, हमारे 2 ट्राइबल भाइयों को पद्म पुरस्कार देकर मोदी जी ने ट्राइबलों का सम्मान बढ़ाने का काम किया है। भाइयों और बहनों, नरेंद्र मोदी सरकार ने आदिवासियों के सम्मान के लिए, सुरक्षा के लिए और समावेशी विकास के लिए देश भर में न केवल विकास के काम चलाए हैं, उनको साथ में रखने का भी काम किया है। एक कांग्रेस और कम्युनिस्ट सालों तक शासन करते रहे, एक भी आदिवासी बेटा बेटी को देश का राष्ट्रपति नहीं बनाया। आजादी के 75 साल बाद पहली बार नरेंद्र मोदी जी ने ओडिशा के गरीब आदिवासी की बेटी द्रौपदी जी मुर्मू को महामहिम द्रौपदी मुर्मू बनाकर आदिवासियों का सम्मान करने का काम किया है। सैकड़ों करोड़ों रुपया खर्च कर आदिवासी पूर्वज हमारे जो देश के लिए काम करे, उनके म्यूजियम बन रहे हैं। और मैं आज बताना चाहता हूं, हर म्यूजियम में हमारे राजा साहब का प्रतिमा भी है। ये हम सब के लिए गौरव का विषय है। भाइयों और बहनों, जनजातीय मंत्रालय में, ट्राइबल मंत्रालय में पहले 24,000 करोड़ रुपए का बजट था। मेरी बात ध्यान से सुनना, इतने बड़े देश के ट्राइबल आबादी के लिए सिर्फ 24,000 करोड़ था। नरेंद्र मोदी जी ने 1,25,000 करोड़ का बजट ट्राइबल मंत्रालय का किया है। और एकलव्य मॉडल स्कूल 70 साल में सिर्फ 90 बने थे। मोदी जी के 5 साल में 740 एकलव्य स्कूल बढ़ाने का काम हमने किया है। भाइयों और बहनों, त्रिपुरा पहले विप्लव देव जी और अब डॉक्टर माणिक शाह के नेतृत्व में विकास के रास्ते पर आगे बढ़ पड़े। आज सुबह ही राजा साहब भी बैठे थे। टूरिज्म, कनेक्टिविटी, एयर कनेक्टिविटी, स्वास्थ्य, नौकरियां और इंफ्रास्ट्रक्चर, हर क्षेत्र में नरेंद्र मोदी सरकार की प्रायोरिटी हमारा त्रिपुरा है। और मैं आज बताने जा रहा हूं, त्रिपुरा में भी हमारी प्रायोरिटी हमारा ट्राइबल एरिया भारत सरकार का प्रायोरिटी है। भाई और बहनों, अभी अभी हमने एक एग्रीमेंट किया है भारत सरकार, त्रिपुरा सरकार और राजा साहब के साथ, तिपरा मोथा के साथ। एग्रीमेंट के लिए ढेर सारी चीजें बोली जा रही है, मगर मैं आज आपको बताकर जाता हूं, आपकी सभी समस्याओं का समाधान उस एग्रीमेंट में है। मुझ पर भरोसा करिएगा, एक कम्युनिस्ट जहर घोलने का काम। त्रिपुरा की जाति और जनजाति दोनों के बीच में शांति रहे, दोनों का विकास हो और संघर्ष की जगह विकास के रास्ते पर त्रिपुरा आगे बढ़ पड़े, इसका एग्रीमेंट में पूरा ध्यान रखा गया है। ये राजा साहब है तो राजा, मगर बनने से भी ज्यादा चतुर है भाई। छोटी छोटी चीज पर आपकी सभी हितों का ध्यान उन्होंने रखा है और मोदी जी ने इसको आशीर्वाद देने का काम किया है। भाई और बहनों, मोदी जी ने देश भर में 2,94,00,000 गरीबों के घर बनाए,
इसका सबसे बड़ा फायदा एसटी लाभार्थियों को हुआ है। 21% घर एसटी को मिले, 14 करोड़ टॉयलेट बनाए, 70 करोड़ लोगों को 5 किलो चावल प्रति माह प्रति व्यक्ति मुफ्त में दिया जाता है। त्रिपुरा वालों, आपको मिलता है या नहीं मिलता है, जरा बताओ तो। भाई चावल आता है ना? हर एक के घर में गैस का सिलेंडर भेजने वाले हैं और नए 3 करोड़ घर मोदी जी ने वादा किया है। बाद में कोई भी ट्राइबल हमारा घर बगैर का नहीं रहेगा। ये मोदी का गारंटी है भाइयों, मोदी का गारंटी। सबरूम रेलवे स्टेशन को एक्सटेंड किया गया। 23 ट्रेनें अब चल रही है। अगरतला अखौरा रेलवे लाइन को आगे बढ़ाने का काम किया और एक हाईवे ही था कम्युनिस्टों के 30 साल के शासन में। अब त्रिपुरा में 9 हाईवे बनाने का काम नरेंद्र मोदी सरकार ने किया है। विद्या ज्योति स्कूल को सीबीएसई में लिया। बमुतिया में सेंट्रल संस्कृत यूनिवर्सिटी बन रही है। नरसिंहगढ़ में अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम बन रहा है, जिससे आईपीएल और राष्ट्रीय मैच भी यहां आएगी। सब रूम के अंदर 1550 करोड़ के खर्चे से जलेफा में स्पेशल इकोनॉमिक जोन बन रहा है, जहां इंडस्ट्री भी आएगी, रोजगारी भी आएगी। और अपने अकेले त्रिपुरा में 87,000 लखपति दीदी है मोदी जी ने, और 3 करोड़ लखपति दीदी बनाने का लक्ष्य रखा है। अकेले त्रिपुरा में 3.5 लाख लखपति दीदी बनेगा। और आज 140 करोड़ से एक अनूठा यूनिटी मॉल भी बनाने का काम त्रिपुरा के अंदर हुआ है। भाई और बहनों, कम्युनिस्ट जहां जहां गए वहां क्या छोड़ा? गरीबी, भूखमरी, स्वास्थ्य का अभाव, शिक्षा का अभाव और युवाओं के हाथ में बंदूक थमाने का काम एक कम्युनिस्ट पार्टी ने किया। और भारतीय जनता पार्टी के नेता नरेंद्र मोदी जी ने युवाओं के हाथ में लैपटॉप पकड़ाने का काम किया है। पूरे नॉर्थ ईस्ट के अंदर 10 से ज्यादा समझौते कर कर सभी ट्राइब को 10,000 युवाओं के हाथ में से हथियार छुड़ाकर उनको मेन स्ट्रीम में लाने का काम भारतीय जनता पार्टी और नरेंद्र मोदी सरकार ने किया है। भाइयों और बहनों, मैं आज त्रिपुरा में कहना चाहता हूं, हमारे ब्रू और रियांग भाई, इनके परिवार 40,000 लोग नर्क की जिंदगी जी रहे थे। नरेंद्र मोदी सरकार ने सभी ब्रू रियांग को अच्छे गांव बसाकर दिए और उनके जीवन के अंदर उजियारा लाने का काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया। भाइयों और बहनों, ये कम्युनिस्ट यहां आते हैं, कांग्रेस वाले आते हैं। मैं आज त्रिपुरा के कांग्रेस और कम्युनिस्ट नेताओं को पूछने आया हूं। 10 साल आपकी सरकार थी, सोनिया मनमोहन की सरकार थी। आपने त्रिपुरा को क्या दिया? हर 10 साल में आपने 40,183 करोड़ रुपया दिया, सिर्फ 40,000 करोड़। और मोदी जी ने ये 10 साल में 40,000 करोड़ के सामने 98,000 करोड़ रुपया देने का काम मोदी जी ने किया है। इसके साथ साथ 20,000 करोड़ के इंफ्रास्ट्रक्चर, 17,000 करोड़ सड़क के, 2,000 करोड़ रेलवे के और 1,000 करोड़ एयरपोर्ट का किया है। और भाई और बहनों, मोदी गारंटी की बात मैं करना चाहता हूं।
कोई भी व्यक्ति हो, गरीब हो, धनवान हो, 70 साल की ऊपर के सभी नागरिकों को 5 लाख तक का सभी स्वास्थ्य का खर्चा अब भारतीय जनता पार्टी उठाएगी। नए 3 करोड़ घर बनाए जाएंगे। गरीबों के घर में नल से जल आया है, ऐसे ही पाइप से गैस पहुंचाने का काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार करेगी। गरीब के घर पर सूर्य बिजली का उपकरण लगाकर उसका बिजली बिल माफ करने का काम करेंगे। 3 करोड़ लखपति दीदियां भी हम बनाएंगे। भाइयों और बहनों, हम आपका आशीर्वाद मांगने आए हैं। ये लाल भाइयों ने सालों तक जाति और जनजाति को झगड़ा कराया। आपकी 20 की 20 सीटें लेकर विकास के नाम पर बिग जीरो किया है। मैं आपको कहता हूं, मोदी जी पर भरोसा कर कमल के निशान पर वोट दीजिए। आने वाले दिनों में संपूर्ण त्रिपुरा, वेस्ट हो या ईस्ट हो, हम उसको विकसित राज्य बनाने का कमिटमेंट करते हैं मित्रों, कमिटमेंट करते हैं। और ट्राइबल भाइयों को इस सम्मान की बात करते हैं, ट्राइबल संस्कृति की बात करते हैं। घुसपैठ अब तक किसने होने दी? कम्युनिस्टों ने होने दी, कांग्रेस ने होने दी। नरेंद्र मोदी सरकार ने बाढ़ को पूरी करने का काम कर घुसपैठ को रोकने का 90% काम किया है। मोदी जी को तीसरा मौका दीजिए, 100% घुसपैठ वहां से रुक जाएगी। ये मोदी का गारंटी है मित्रों, मोदी का गारंटी। भाइयों बहनों, महाराजा विक्रमदेव का हमारे त्रिपुरा पर बहुत बड़ा उपकार है। आज भारतीय जनता पार्टी ने, आगे आइए जरा, इनके ही परिवार से कृतिदेव सिंह जी को टिकट दिया है। मैं आपको अपील करने आया हूं, कृतिदेव सिंह जी को समर्थन कर नरेंद्र मोदी को समर्थन करिए। कृतिदेव सिंह जी के सामने दबाया हुआ हर बटन सीधा आपका वोट नरेंद्र मोदी को मिलने वाला है, मोदी को प्रधानमंत्री बनाने वाला है। मुझे बताओ, 26 तारीख को कमल के निशान पर बटन दबाएंगे क्या? जरा जोर से बोले, दबाएंगे? भाजपा को जिताएंगे? कृतिदेव सिंह जी को जिताएंगे? मोदी जी को तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाएंगे? तो मेरे साथ दोनों हाथ उठाइए, उठाइए दोनों हाथ, विजय के संकल्प की मुट्ठी बीचिए और प्रचंड आवाज से बोलिए, भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की, वंदे वंदे वंदे। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद माननीय गृहमंत्री अमित भाई शाह जी के। আমরা ওনার মূল্যবান বক্তব্য শুনলাম। 2017 সালে উনি এসেছিলেন এবং ত্রিপুরা থেকে সিপিএম এখান থেকে মুক্ত হয়েছিল।
মায়ারে তথায় তমেব তথায় কেলিখা ধানসা মায়ারে হায় মোর মনো জরা সাছরাই পড়ো হায় মোর মনো জরা সাছরাই পড়ো আজ খাবো সঙ্গ বীর বিক্রম ভূভাগ্র বীর বিক্রম বীর বিক্রম ভূভাগ্র বীর বিক্রম বীর বিক্রম ভূভাগ্র বীর বিক্রম বীর বিক্রম ভূভাগ্র বীর বিক্রম। যদিও বামেরা তাদের প্রচারে তারা প্রচার করতে শুরু করেছে, তারা জানে যে বামেরা হারবে, তারপরও তারা যাই করছে ইউটিউব সোশ্যাল মিডিয়ার মাধ্যমে তাদের প্রচারটা মানুষের কাছে নিয়ে যাওয়ার চেষ্টা করছে। ময়দানে এসে তাদের প্রচার করার কোনো ক্ষমতা নেই। পূর্বতন মুখ্যমন্ত্রী মানিক সরকার মহোদয়, যার ধর্ম হচ্ছে অ্যাথেইস্ট, নাস্তিক, ভারতীয় জনতা পার্টি, ত্রিপুরা মথা এবং আইপিএফটি এই সম্মিলিত শক্তিকে ভয় পেয়ে ত্রিপুরার পূর্বতন মুখ্যমন্ত্রী উনি ধর্মে বিশ্বাস করতে শুরু করেছেন। আমি বলি, কয়েকদিন আগে উনি বক্তব্য করছিলেন, উনি বলেছেন যে আমি যেদিন স্বর্গে যাব সেই দিন আমার মুখ্যমন্ত্রিত্ব থাকাকালীন আমি কি কি কাজ করেছি ভগবানের কাছে বলতে পারবো। আপনারা বলুন, নাস্তিক লোক যার কাছে স্বর্গ নেই, নরক নেই, ধর্মে বিশ্বাস রাখেন না, সেই ব্যক্তি আজকে আমাদের ভয়ে ওনাকে ভগবানের আশ্রয় নিতে হচ্ছে এবং তাতেই প্রমাণ হয় আমাদের প্রার্থী লক্ষ লক্ষ ভোটের ব্যবধানে বাম প্রার্থীকে পরাস্ত করবে। এবং মানিকবাবু বলেছেন স্বর্গে যাবেন, মেনেই নিলাম। মোদিজির বয়ে উনি স্বর্গে যাবেন, ভগবানের আশ্রয় নেবেন। আপনি যা যা করে গেছেন 20 বছরে এই ত্রিপুরা রাজ্যের পিছিয়ে পড়া মানুষদের এত বঞ্চনা, এত শোষণ আপনারা করেছেন, স্বয়ং ভগবানও স্বর্গের দরজা বন্ধ করে দিব, মানিক বাবুরে ঢুকতে দিত না। আর এই মানিক বাবু উনি বলেন যে ত্রিপুরা মথার গ্রেটার ত্রিপুরাল্যান্ড দাবি কোথায়, এই দাবি কোন দিন আসবে। মানিক বাবু একজন কমিউনিস্ট, ওনাকে শিক্ষা দেওয়ার ক্ষমতা আমার নেই। সারা পৃথিবীতে কমিউনিজমের জন্ম হয়েছে কখন? 176 বছর আগে কার্ল মার্কস এবং ফ্রেডরিক এঙ্গেল 1848 এই কমিউনিজমের প্রচার শুরু করেন এবং আমাদের ভারতবর্ষে 99 বছর হয়ে গেছে কমিউনিস্টদের আন্দোলন এবং আমাদের এই ত্রিপুরায় 79 বছর ধরে বামেরা বলছে আমরা সাম্যবাদ আনবো। আমি কমিউনিস্টদের জিজ্ঞেস করতে চাই, গ্রেটার ত্রিপুরাল্যান্ডের কথা বাদ দিয়ে দিন, আপনাদের সাম্যবাদ কবে আসছে সেটার জবাব দিন। আপনারা বলতে পারবেন? সাম্যবাদের নাম দিয়ে দ্বীপ্রাসাদের ধোঁকাবাজি দিয়ে 35 বছর ক্ষমতায় ছিল, আর আমরা কি পাইছি? বামেদের থেকে কি পাইছি? বামেদের থেকে একটাই পাইছি, ত্রিপুরা আলাদা হয়ে যাও, বাঙালের আলাদা হয়ে যাও। পাহাড়ি বাঙালি ভাই পাই না, সুযোগ পাইলে যে যেখানে পাই তোমরা সব কাইটা হয়ে দাও। এটাই তো আমরা দেখলাম। যদিও ইলেকশন কমিশন বলবে কাইটা দাও, মাইটা দাও, কেন বলছেন উনি? I have all respect for Election Commission of India and its guideline.
কিন্তু এটা তো ইতিহাস। বাংলারা যতবার ক্ষমতায় এসছে তারা 1980 সালের দাঙ্গা আমাদের উপহার দিয়েছে। আবার 97 সালের কথা আমরা ভুলবো না। ত্রিপুরায় উগ্রপন্থা সমস্যার এই কথা আমরা ভুলবো না। এই মঞ্চে দাঁড়িয়ে ত্রিপুরা মথা বিজেপি আইপিএফটি আমরা বলতে পারি, সারা রাজ্যের মানুষকে আমরা বলতে পারি, আমরা যদি ক্ষমতায় বসে থাকি ত্রিপুরায় দাঙ্গা হতে দেব না। বামেদের মতো আমরা দাঙ্গা হতে দেব না। তারা ত্রিপুরাদের কি বলে, আপনারা ত্রিপুরাদের তারা বলে এই বাঙালিরা বাংলাদেশ থেকে আসছে, আর উপজাতিরা ত্রিপুরা ছাড়া আপনাদের অস্তিত্ব সংকটে। তো নিশ্চয়ই ত্রিপুরারা ভয় পাবে। আর বাঙালিদের এসে বলছে বাঙালিদের আমরা চাকরি দিতে পারছি না, ওই সব চাকরি ত্রিপুরারা খায়া ফেলাইতেছে। এডিসি পাইছে, রিজার্ভেশন পাইছে, সব চাকরি ওরা খেয়ে নিয়েছে, আমরা পারবো না। দণ্ড এসসি এসটি বলছে জেনারেলদের সমস্ত সুযোগ সুবিধা এসসি এসটিরা খায়া ফেলাইতে, জেনারেল আর পাইতো না। বেকারদের বলে আমরা বেকারদের চাকরি দিতে চাই, কিন্তু আমরা পারি না, কারণ ওই যে কর্মচারীদের বয়সের সীমা 58 থেকে 60 বছর করলাম, মানে প্রত্যেকটা অংশের মানুষে মিথ্যা বলে এরা 35 বছর ত্রিপুরাজ্যের শাসন করছে। আমি কনফিডেন্ট এইটুকু বলতে পারি, পাহাড়ের মানুষ জেগে গেছে, বুঝে গেছে, এই বামেদের আর আসতে দেওয়া হবে না ত্রিপুরায়। আপনারা জেনে নিন এই কথা। এবং 2018 সালে যারা ভোট দিয়ে ভারতীয় জনতা পার্টি এবং আইপিএফটিদের ক্ষমতায় এনেছেন, ওই জনগণ দেবতাদের আমি প্রণাম জানাচ্ছি মঞ্চ থেকে। নতুবা আজকেও বামেদের মুখ্যমন্ত্রী মানিক সরকার মহোদয়ের কেন্দ্রীয় বঞ্চনার কথা শুনতাম। ওনার এটা ওই আগে তুফা সিনেমার গান আমরা টেপ রেকর্ডে শুনতাম। এইরকম একটা রেকর্ড কইরা আস্থা বলে ত্রিপুরার সমস্ত মানুষ নিয়ে গিয়ে উনি বক্তৃতা করতেন, কেন্দ্রীয় সরকার আমাদের টাকা দিচ্ছে না, আমরা কিছুই করতে পারছি না। আর ওইদিকে দিল্লিতে মনমোহন সিং, সীতারাম ইয়েচুরি এরা বয়ে বয়ে চা খায়, আর এখানে ওই সিপিএমরা কংগ্রেস সরকারের বিরুদ্ধে এখানে বক্তৃতা করে। আর 2018 সালে ত্রিপুরার গণতন্ত্র প্রিয় শ্রমিক, বুদ্ধিজীবী, ওয়াংসা, ত্রিপ্রাসা, মুগলি সমস্ত অংশের মানুষ ভোট দিয়ে মানিক বাবুর ওই টেপটাকে এমন ভাবে আশার দিতে, এই টেপ রেকর্ড আর বাঁচত না। কেন্দ্রীয় বঞ্চনার গল্প আর হবে না। নতুবা আজকেও কইতো মোদীজির সরকার টাকা দিচ্ছে না, আমরা করতে পারতাছি না। কি না দিছে এদের, দিতে 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 মনমোহন সিংকে হাত পায়ে গেছিলেন গোটা টাকা দিতে দিতে। আর এখানে কমরেডরা শিকাবিনি খাইতো, এই কমরেডরা চারমিনার, ফ্ল্যাক্স, গোল্ড, আমিও তো জানি না, এদের সিগারেট থেকে আরম্ভ করে যাদের বাইসাইকেল ছিল এরা গাড়ি নিয়ে আসা যাওয়া করতো। আমরা কি ভুইলা দামু? এইটা আমরা কখনোই ভুলবো না। এই কারণে এইবার এর একটা জিনিস সরাইতে সাংঘাতিক, এরা হচ্ছে ক্রিমিনাল বুদ্ধি কি কইরা মানুষের মগজে দেওয়া যায়, এটা হচ্ছে তাদের বুদ্ধি। বলছে ত্রিপুরা মথা এত স্ট্রং একটা আঞ্চলিক দল, এই দলটা কেন আপনারা বিজেপিকে ভোট দেবেন? আমি মানিক বাবুকে জিজ্ঞেস করছি, মানিক বাবু আপনার সিপিএম দল কংগ্রেসের সাথে আঘাত করেছে, ত্রিপুরার পিছিয়ে পড়া, ত্রিপ্রাসা সহ অন্যান্য অংশের যারা পিছিয়ে পড়া মানুষের সাথে আপনাদের কি চুক্তি আছে? কোন চুক্তি নাই। কিন্তু ত্রিপুরা মথা, বিজেপি, আইপিএফটি তিন দলীয় আমরা কেন্দ্রীয় সরকারের সাথে দ্বিপাক্ষিক চুক্তি করেছি। এই রাজ্যে এক ভারত শ্রেষ্ঠ ভারতের লক্ষ্যে আমরা সমস্ত অংশের মানুষের উন্নয়ন করব, এই চুক্তিতে আজকে আমরা একসাথে কাজ করব। আর ওনারা বলছেন
যে আনারস, এই আনারস বুইলে গিয়া আপনারা আজকে পদ্ম ফুলে ভোট দেবেন। এই প্রাসাদের যদি কেউ উন্নয়ন করে, পদ্ম ফুলে আমরা কেন ভোট দেব না? আর আমাদের প্রার্থীর বিরুদ্ধে তারা বলছে উনি তো বহিরাগত, বাইরের থেকে আইছেন। আপনারা বলেন তো, এখানে যারা মহিলারা আছেন, কেউ যদি ওনার মতো ছত্তিশগড়ে বিয়ে করে যান, ওইখানেই কিন্তু সংসারটা করবেন। আর স্বভাবত আমরা দেখেছি এইখানের মানুষ যখন সেখানে যায় আর দেশে ফিরে না। পাঞ্জাবে বিয়ে করলে পাঞ্জাব থেকে আর ফিরে না। কিন্তু এই মহিলার এত শক্তি, উনার সামনে বলছি যে উনার মহারাজা হাজবেন্ডকে বুঝিয়ে উনি আবার উনার পৈতৃক ভূমিতে ত্রিপুরায় আমি সর্বংশের মানুষের কাজ করব, এমপি ইলেকশনে আমি লড়তে যাচ্ছি। এত বড় একটা শক্তিশালী মহিলাকে আমরা কেন ভোট দেব না? আমরা অবশ্যই ওনাকে ভোট দিয়ে জয়লাভ করাবো। তাদের মিথ্যা প্রচারের অভাব আর নেই। একের পর এক অভিযোগ তারা বলে, এরা নাকি এইবার, আমি অনেক জায়গায় বলি 350 সিট নিয়ে আমরা ক্ষমতায় বইব। বামেদের আমি জিগাইলাম, এক নেতা মোদীর জিগাইলাম, আপনারা ত্রিপুরাতে আপনারা যে 350 সিট নিয়ে আইবেন, ত্রিপুরার পূর্ব ত্রিপুরার পশ্চিম ত্রিপুরার মধ্যে কোন সিটটা আপনারা জিতবেন? বলছে এখানে আমরা জিতবো না। তো কেমনে আইব? কেমনে আইব? কিন্তু আমরা এইটুকু বলতে পারি, মোদীজির যে স্লোগান আপকি বার 400 বার, আর ওই 400 সিটের মধ্যে যে 2টা সিট হবে এটা ত্রিপুরার 2টা সিট, এইটাই দিয়ে গণনা শুরু হবে। ভয় কিসে? কোনো ভয় নেই। উন্নয়ন হবে, মানুষের কাজ হবে, ত্রিপ্রাসা ওয়ালসের সমস্ত অংশের মানুষের কাজ হবে। এই কাজ করার লক্ষ্যে আমাদের প্রার্থী ভয়ানী প্রীতি দেবী যে আমার সাথে কথা বলছিলেন ওনার হোটেল রুমে, উনি প্রতিশ্রুতিবদ্ধ, তার সংকল্প নিয়ে ত্রিপুরায় এসছেন, উনি কাজ করবেন। উনি বলছেন যে আমি অন্যান্য এমপিদের মতো বসে থাকবো না, আমি সবখানেই চেষ্টা করব কি কি কাজ করে মানুষের কর্মসংস্থান করা যায়, আরো বেশি সরকারের কাজকে ত্বরান্বিত করা যায়, সেই কাজ উনি করবেন। উনি এমনিতেই আসেননি এখানে। অনেক ভালো লেগেছে। এক ভারত শ্রেষ্ঠ ভারত এটা হবে। এবং আর বিশেষ বক্তব্য রাখছি না, আমি শিওর ওইখান থেকে ওনারা বেরিয়ে গেছেন। আরো মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়গণ, বিধায়কগণ বক্তব্য করবেন। এই যে একটা সুযোগ, এই সুযোগে আমরা মোদীজিকে এইবার ককবরকে একটা স্লোগান বলবো, যারা ককবরক ভাষাভাষী আমাদের লোক, কিন্তু সিম্বল মাথুর নাই বুটি দিন থাকে আরো সবর কম খেলে তেমনি হাইতে বুট নাই পড়ব পদ্মকুমার হয় তীব্রামথায় তীব্রি বিজেপি নি সিম্বল থাকলে পদ্মকুমার অ্যাবসলিউট মাস্ট। এটাকে আমাদের ঘরে ঘরে নিয়ে যেতে হবে, প্রচার করতে হবে এবং আমাদের মহারানী প্রীতি দেবীজিকে এবং পশ্চিম ত্রিপুরা আসলে বিপ্লব কুমার দেব মহোদয়কে যেন আমরা লক্ষ লক্ষ ভোটের ব্যবধানে জয়লাভ করিয়ে মোদীজিকে আপকি বার 400 বার এই 400-র মধ্যে আমরা যেন উপহার দিতে পারি। অমিত ভাষা তোমার জানা স্বাগতম, মায়েরা উলুদ্দানি দিন। অমিত ভাষা তোমার জানা স্বাগতম, 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 অমিত ভাষা তোমার জানা স্বাগতম। भारत माता की फिर एक बार आपकी बार आपकी बार आपकी बार অমিত ভাষাকে আমরা এই কুমারঘাটে দ্বিতীয়বার স্বাগত জানাচ্ছি। উনি সামনে বক্তব্য রাখবেন ত্রিপুরা মাতা দলের যিনি ফাউন্ডার রয়েছেন মহারাজা
प्रद्योत किशोर देव माणिक्य महोदय। माननीय गृह मंत्री जी, माननीय मुख्यमंत्री जी, यहां में मंच में सब बैठे हैं मंत्री, हमारे बीजेपी के अध्यक्ष, हमारे कैंडिडेट वेस्ट त्रिपुरा से पूर्व मुख्यमंत्री जी बिप्लब देव जी। मैं ज्यादा समय नहीं लूंगा। कुमारघाट से आज पहली बार, जिंदगी में पहली बार मैं उसी मंच में खड़ा हूं जहां में हमारे गृह मंत्री जी खड़े हैं, और मैं गृह मंत्री जी को तोहफे में त्रिपुरा से दोनों सीट वर्ल्ड रिकॉर्ड मार्जिन से आपको और मोदी जी को देना चाहता हूं। यहां मैं ज्यादा नहीं बोलूंगा क्योंकि हम सब देश के होम मिनिस्टर को सुनने आए हैं। सिर्फ दो बात रखना चाहता हूं। मैं तिपरा मोथा का फाउंडर और मैं एक समय चेयरमैन रह चुका हूं। मेरे साथ यहां में विजय कुमार रांखोल जी हैं, हमारे एमएलएज हैं, हमारे ब्रू शरणार्थी लीडर्स हैं। मैंने देखा है जब 2018 में मैं पहली बार गृह मंत्री जी से मिला था, हमारे जो ब्रू शरणार्थी थे जिनको कंचनपुर में कम्युनिस्ट की सरकार ने इतने सालों तक वंचित रखा, गरीब रखा, उनके शिक्षा के लिए नहीं सोचा, उनके भविष्य के लिए नहीं सोचा, उनके बच्चे के लिए नहीं सोचा। उस समय मैंने गृह मंत्री जी से एक निवेदन किया था। इतिहास गवाह है कि 2 महीने के अंदर जो 20-25 साल का प्रॉब्लम था, 2 महीने के अंदर गृह मंत्री जी ने हमारे ब्रू को दिया। आज अगर त्रिपुरा में ब्रू एक सम्मान का जिंदगी जी रहा है, अगर आपके बच्चे का एक भविष्य आज है, तो उसमें एक बहुत बड़ा हाथ हमारे गृह मंत्री जी का है। इसमें हमें भूलना नहीं चाहिए, हमें भूलना नहीं चाहिए कि हमारे साथ हमारे खराब समय में कौन रहा। आज से 1 महीने पहले मैंने, हमारे प्रेसिडेंट विजय कुमार रांखोल ने, हमारे मंत्री ने, हमारे एमएलए ने, हमने एक हिस्टोरिक तिपरासा अकॉर्ड साइन किया है। बहुत लोग, स्पेशली कम्युनिस्ट, इतिहास को नकारते हैं, इतिहास को बदलने की कोशिश करते हैं, लेकिन कुमारघाट में मैं बोलना चाहता हूं और मीडिया के थ्रू बोलना चाहता हूं। आज से 75 साल पहले महारानी कंचन प्रभा देवी ने देश के उस समय के होम मिनिस्टर हमारे सरदार पटेल के संग एक एग्रीमेंट साइन किया था। उसके बाद त्रिपुरा एक हिंदुस्तान का अटूट अंग बना। 75 साल बाद कंचन प्रभा देवी का नाती को वही सम्मान, उस परिवार को वही सम्मान देश का होम मिनिस्टर श्री अमित शाह जी ने दिया है। यह सम्मान मुझे व्यक्तिगत तौर से नहीं दिया गया है, यह हमारे त्रिपुरा के इंडिजिनस लोग, हमारे जनजातीय, हमारे ट्राइबल लोगों को, हमारे हानी बुसा को, हमारे बुकुंगबारा को आज हमारा होम मिनिस्टर ने दिया है। यह शांति से मिला है। आज से पूरे नॉर्थ ईस्ट में आप देखेंगे, जब भी किसी को कुछ प्राप्त हुआ, ये वायलेंस से हुआ, झगड़ के हुआ, बंदूक से हुआ। इस बार ना किसी का घर जला है, ना किसी की मृत्यु हुई है, ना कहीं में आतंकवाद हुआ है। आज शांति से हम त्रिपुरा के जनजाति, इंडिजिनस, हानी बुसा को और स्थानीय लोगों को आगे ले जाना चाहते हैं। कम्युनिस्ट सरकार ने 25 साल तक यहां में राज किया, हमारा इतिहास को बदला, हमारे गरीब तिपरासा को कुछ नहीं दिया। आज अगर हमको अपना बच्चा का भविष्य बनाना होता है तो हमें कलकत्ता, दिल्ली, बेंगलोर, हैदराबाद, पूना जाना पड़ता है। मैं चाहता हूं
कि अगर हमें अपना भविष्य को ठीक करना है तो हमें त्रिपुरा के बाहर नहीं देखना है। यह कैसे होगा अगर केंद्र सरकार हमारे साथ नहीं खड़ा होगा। मैं अपने त्रिपुरा को बोलना चाहता हूं, हमने 20 के 20 सीट बहुत बार कम्युनिस्ट को दिया, रिटर्न में क्या मिला? गरीबी, बेरोजगारी, भूख, शिक्षा कहीं नहीं, कहीं में पीने के लिए पानी के लिए हमें 5-5 किलोमीटर चलना पड़ता था। आज समय आया है कि हम अपने दुश्मन को, जिसने हमें वंचित रखा, जिसने हमें नॉर्थ ईस्ट में सबसे गरीब अगर कोई जनजाति है तो वो त्रिपुरा का है, किसने रखा है वो समझिए, किसने आज हमें इस स्थिति में रखा है और उसका जवाब इस इलेक्शन में आप दीजिए। मैं यहां में अपनी बहन के लिए वोट मांगने नहीं आया हूं, मैं यहां में अपने लोगों को एक अच्छा भविष्य देने के लिए, अपने नेक्स्ट जनरेशन को एक अच्छा कल देने के लिए बात करने के लिए आया हूं। मैं अंत में गृह मंत्री जी को एक छोटे भाई के तरीके से एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूं। गृह मंत्री जी, आपने हमें बहुत दिया है, हम आभारी हैं और हम चाहते हैं कि आप भी आज हमारे लिए और 2 शब्द बोलिए, क्योंकि कम्युनिस्ट ने एक अफवाह फैलाया हुआ है कुछ नहीं मिलेगा, और मैं बोलता हूं सब कुछ मिलेगा, सबको मिलेगा। मैं ये निवेदन करके अपने लोगों को बोलना चाहता हूं, 19 तारीख वेस्ट त्रिपुरा में, 26 तारीख ईस्ट त्रिपुरा में, यहां में एक मैसेज आप भेजिए कि त्रिपुरा अब कम्युनिस्ट के हाथों से निकल चुका है और एक नया कल बनाना चाहता है। यही मैं बोलकर अपने सबको धन्यवाद बोलना चाहता हूं। तिप्रासा दोफा आयुक लोकथोंग, तिप्रासा जाति आयुक लोकथोंग, भारत माता की जय, और त्रिपुरा के सब लोगों को मेरा बेलाई बेलाई नो हमबाई खुलुंग का धन्यवाद। थैंक यू। भारत माता की। मेरे साथ बोलिए, भारत माता की। क्यों भाई, कुमार घाट वालों की आवाज को क्या हो गया है? 400 पार करना है या नहीं करना है? मोदी जी को फिर से प्रधानमंत्री बनाना है या नहीं बनाना है? तो ऐसी आवाज नहीं चलेगी। दोनों हाथ उठाइए, उठाइए दोनों हाथ, विजय के संकल्प का मुट्ठी भींचिए और प्रचंड आवाज से बोलिए, भारत माता की, भारत माता की। मंच पर उपस्थित त्रिपुरा के लोकप्रिय मुख्यमंत्री डॉक्टर माणिक शाह जी, हमारे राजा साहब और मेरे मित्र त्रिपुरा मोथा के अध्यक्ष महोदय, मेरे साथ आए हुए हमारे दोनों प्रत्याशी, पश्चिम त्रिपुरा से विप्लव कुमार देव जी, विप्लव जी खड़े हो जाइए जरा, और पूर्वी त्रिपुरा से महारानी कृति सिंह जी, हमारे प्रदेश अध्यक्ष महोदय श्री टिंकू रॉय, श्री सुधांशु दास, हमारी ट्राइबल मंत्री आगे आओ, चकमा आगे आओ, जोर से ताली बजाओ सेंटाना चकमा के लिए सभी लोग। हमारे त्रिपुरा मोथा के साथी अनिमेश देववर्मा जी, अनिमेश जी खड़े हो जाइए आप, शुक्लचरण नोतिया जी, हमारी नेत्री, भारत सरकार में मंत्री बहन प्रतिमा भौमिक जी, और आज कुमार घाट की इस भूमि पर आए हुए प्यारे भाइयों, बहनों, माताओं और मेरे जिगर के टुकड़े जैसे युवा मित्रों, आप सभी को नमस्कार। मुझे बरोबर याद है 2017 का दिसंबर माह होगा और मैं यहां पर
त्रिपुरा मुक्ति के लिए पहली रैली करने आया था और यहीं से त्रिपुरा को कम्युनिस्टों से मुक्त करने की शुरुआत की थी। और आज इस महान त्रिपुरा की जनता ने इतने सालों के कम्युनिस्ट शासन को समाप्त कर त्रिपुरा में मोदी जी पर भरोसा कर विकास का एक नया रास्ता चुनने का काम किया है। मित्रों, मैं जब यहां आया हूं तब सबसे पहले मां त्रिपुरा सुंदरी को, बाबा गरिया मंदिर को और सभी देवी देवताओं को प्रणाम कर मेरी बात की शुरुआत करना चाहता हूं। मैं यहां आया हूं तब विनम्र शासक और जिनके मन में देश और जनता के अलावे कुछ नहीं था, ऐसे महाराजा वीर विक्रम माणिक्य किशोर जी को भी मनपूर्वक प्रणाम करना चाहता हूं। इतने सालों से कम्युनिस्टों ने महाराजा वीर विक्रम माणिक्य किशोर जी को केवल और केवल बुलाने का काम किया। नरेंद्र मोदी जी ने इनके नाम पर त्रिपुरा के एयरपोर्ट देकर बड़ी मूर्ति प्रस्थापित कर उनको चिर स्मरण करने का काम नरेंद्र मोदी जी ने किया है। और मित्रों, अभी अभी आपने पद्म पुरस्कारों का सूची देखा होगा। सतराम रियांग और बेनी चंद्र जमातिया, हमारे 2 ट्राइबल भाइयों को पद्म पुरस्कार देकर मोदी जी ने ट्राइबलों का सम्मान बढ़ाने का काम किया है। भाई और बहनों, नरेंद्र मोदी सरकार ने आदिवासियों के सम्मान के लिए, सुरक्षा के लिए और समावेशी विकास के लिए देश भर में न केवल विकास के काम चलाए हैं, उनको साथ में रखने का भी काम किया है। ये कांग्रेस और कम्युनिस्ट सालों तक शासन करते रहे, एक भी आदिवासी बेटा बेटी को देश का राष्ट्रपति नहीं बनाया। आजादी के 75 साल बाद पहली बार नरेंद्र मोदी जी ने ओडिशा के गरीब आदिवासी की बेटी द्रौपदी जी मुर्मू को महामहिम द्रौपदी मुर्मू बनाकर आदिवासियों का सम्मान करने का काम किया है। सैकड़ों करोड़ों रुपया खर्च कर आदिवासी पूर्वज हमारे जो देश के लिए काम करे, उनके म्यूजियम बन रहे हैं। और मैं आज बताना चाहता हूं, हर म्यूजियम में हमारे राजा साहब का प्रतिमा भी है। ये हम सब के लिए गौरव का विषय है। भाई और बहनों, जनजातीय मंत्रालय में, ट्राइबल मंत्रालय में पहले 24,000 करोड़ रुपए का बजट था। मेरी बात ध्यान से सुनना, इतने बड़े देश के ट्राइबल आबादी के लिए सिर्फ 24,000 करोड़ था। नरेंद्र मोदी जी ने 1,25,000 करोड़ का बजट ट्राइबल मंत्रालय का किया है। और एकलव्य मॉडल स्कूल 70 साल में सिर्फ 90 बने थे। मोदी जी के 5 साल में 740 एकलव्य स्कूल बढ़ाने का काम हमने किया है। भाई और बहनों, त्रिपुरा पहले विप्लव देव जी और अब डॉक्टर माणिक शाह के नेतृत्व में विकास के रास्ते पर आगे बढ़ पड़े। आज सुबह ही राजा साहब भी बैठे थे। टूरिज्म, कनेक्टिविटी, एयर कनेक्टिविटी, स्वास्थ्य, नौकरियां और इंफ्रास्ट्रक्चर, हर क्षेत्र में नरेंद्र मोदी सरकार की प्रायोरिटी हमारा त्रिपुरा है। और मैं आज बताने जा रहा हूं, त्रिपुरा में भी हमारी प्रायोरिटी
हमारा ट्राइबल एरिया भारत सरकार का प्रायोरिटी है। भाई और बहनों, अभी अभी हमने एक एग्रीमेंट किया है भारत सरकार, त्रिपुरा सरकार और राजा साहब के साथ, तिपरा मोथा के साथ। एग्रीमेंट के लिए ढेर सारी चीजें बोली जा रही है, मगर मैं आज आपको बताकर जाता हूं, आपकी सभी समस्याओं का समाधान उस एग्रीमेंट में है। मुझ पर भरोसा करिएगा, एक कम्युनिस्ट जहर घोलने का काम। त्रिपुरा की जाति और जनजाति दोनों के बीच में शांति रहे, दोनों का विकास हो और संघर्ष की जगह विकास के रास्ते पर त्रिपुरा आगे बढ़ पड़े, इसका एग्रीमेंट में पूरा ध्यान रखा गया है। ये राजा साहब है तो राजा, मगर बनने से भी ज्यादा चतुर है भाई। छोटी छोटी चीज पर आपकी सभी हितों का ध्यान उन्होंने रखा है और मोदी जी ने इसको आशीर्वाद देने का काम किया है। भाई और बहनों, मोदी जी ने देश भर में 2,94,00,000 गरीबों के घर बनाए। इसका सबसे बड़ा फायदा एसटी लाभार्थियों को हुआ है। 21% घर एसटी को मिले, 14 करोड़ टॉयलेट बनाए, 70 करोड़ लोगों को 5 किलो चावल प्रति माह प्रति व्यक्ति मुफ्त में दिया जाता है। त्रिपुरा वालों, आपको मिलता है या नहीं मिलता है, जरा बताओ तो। भाई चावल आता है ना? हर एक के घर में गैस का सिलेंडर भेजने वाले हैं और नए 3 करोड़ घर मोदी जी ने वादा किया है, बाद में कोई भी ट्राइबल हमारा घर बगैर का नहीं रहेगा। ये मोदी का गारंटी है भाइयों, मोदी का गारंटी। सबरूम रेलवे स्टेशन को एक्सटेंड किया गया, 23 ट्रेनें अब चल रही है। अगरतला अखौरा रेलवे लाइन को आगे बढ़ाने का काम किया और एक हाईवे ही था कम्युनिस्टों के 30 साल के शासन में, अब त्रिपुरा में 9 हाईवे बनाने का काम नरेंद्र मोदी सरकार ने किया है। विद्या ज्योति स्कूल को सीबीएसई में लिया, बमुतिया में सेंट्रल संस्कृत यूनिवर्सिटी बन रही है, नरसिंहगढ़ में अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम बन रहा है, जिससे आईपीएल और राष्ट्रीय मैच भी यहां आएगी। सब रूम के अंदर 1550 करोड़ के खर्चे से जलेफा में स्पेशल इकोनॉमिक जोन बन रहा है, जहां इंडस्ट्री भी आएगी, रोजगारी भी आएगी और अपने अकेले त्रिपुरा में 87,000 लखपति दीदी है मोदी जी ने, और 3 करोड़ लखपति दीदी बनाने का लक्ष्य रखा है। अकेले त्रिपुरा में 3.5 लाख लखपति दीदी बनेगा। और आज 140 करोड़ से एक अनूठा यूनिटी मॉल भी बनाने का काम त्रिपुरा के अंदर हुआ है। भाई और बहनों, कम्युनिस्ट जहां जहां गए वहां क्या छोड़ा? गरीबी, भूखमरी, स्वास्थ्य का अभाव, शिक्षा का अभाव और युवाओं के हाथ में बंदूक थमाने का काम एक कम्युनिस्ट पार्टी ने किया। और भारतीय जनता पार्टी के नेता नरेंद्र मोदी जी ने युवाओं के हाथ में लैपटॉप पकड़ाने का काम किया है। पूरे नॉर्थ ईस्ट के अंदर 10 से ज्यादा समझौते कर सभी ट्राइब को 10,000 युवाओं के हाथ में से हथियार छुड़ाकर उनको मेन स्ट्रीम में लाने का काम भारतीय जनता पार्टी और नरेंद्र मोदी सरकार ने किया है। भाइयों और बहनों, मैं आज
त्रिपुरा में कहना चाहता हूं, हमारे ब्रू और रियांग भाई, इनके परिवार 40,000 लोग नर्क की जिंदगी जी रहे थे। नरेंद्र मोदी सरकार ने सभी ब्रू रियांग को अच्छे गांव बसा कर दिए और उनके जीवन के अंदर उजियारा लाने का काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया। भाई और बहनों, ये कम्युनिस्ट यहां आते हैं, कांग्रेस वाले आते हैं। मैं आज त्रिपुरा के कांग्रेस और कम्युनिस्ट नेताओं को पूछने आया हूं, 10 साल आपकी सरकार थी, सोनिया मनमोहन की सरकार थी, आपने त्रिपुरा को क्या दिया? हर 10 साल में आपने 40,183 करोड़ रुपया दिया, सिर्फ 40,000 करोड़। और मोदी जी ने ये 10 साल में 40,000 करोड़ के सामने 98,000 करोड़ रुपया देने का काम मोदी जी ने किया है। इसके साथ साथ 20,000 करोड़ के इंफ्रास्ट्रक्चर, 17,000 करोड़ सड़क के, 2,000 करोड़ रेलवे के और 1,000 करोड़ एयरपोर्ट का किया है। और भाई और बहनों, मोदी गारंटी की बात मैं करना चाहता हूं। कोई भी व्यक्ति हो, गरीब हो, धनवान हो, 70 साल की ऊपर के सभी नागरिकों को 5 लाख तक का सभी स्वास्थ्य का खर्चा अब भारतीय जनता पार्टी उठाएगी। नए 3 करोड़ घर बनाए जाएंगे। गरीबों के घर में नल से जल आया है, ऐसे ही पाइप से गैस पहुंचाने का काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार करेगी। गरीब के घर पर सूर्य बिजली का उपकरण लगाकर उसका बिजली बिल माफ करने का काम करेंगे। 3 करोड़ लखपति दीदियां भी हम बनाएंगे। भाई और बहनों, हम आपका आशीर्वाद मांगने आए हैं। ये लाल भाइयों ने सालों तक जाति और जनजाति को झगड़ा कराया। आपकी 20 की 20 सीटें लेकर विकास के नाम पर बिग जीरो किया है। मैं आपको कहता हूं, मोदी जी पर भरोसा कर कमल के निशान पर वोट दीजिए। आने वाले दिनों में संपूर्ण त्रिपुरा, वेस्ट हो या ईस्ट हो, हम उसको विकसित राज्य बनाने का कमिटमेंट करते हैं मित्रों, कमिटमेंट करते हैं। और ट्राइबल भाइयों को इस सम्मान की बात करते हैं, ट्राइबल संस्कृति की बात करते हैं। घुसपैठ अब तक किसने होने दी? कम्युनिस्टों ने होने दी, कांग्रेस ने होने दी। नरेंद्र मोदी सरकार ने बाढ़ को पूरी करने का काम कर घुसपैठ को रोकने का 90% काम किया है। मोदी जी को तीसरा मौका दीजिए, 100% घुसपैठ वहां से रुक जाएगी। ये मोदी का गारंटी है मित्रों, मोदी का गारंटी। भाइयों बहनों, महाराजा विक्रमदेव का हमारे त्रिपुरा पर बहुत बड़ा उपकार है। आज भारतीय जनता पार्टी ने, आगे आइए जरा, इनके ही परिवार से कृतिदेव सिंह जी को टिकट दिया है। मैं आपको अपील करने आया हूं, कृतिदेव सिंह जी को समर्थन कर नरेंद्र मोदी को समर्थन करिए। कृतिदेव सिंह जी के सामने दबाया हुआ हर बटन सीधा आपका वोट नरेंद्र मोदी को मिलने वाला है, मोदी को प्रधानमंत्री बनाने वाला है। मुझे बताओ, 26 तारीख को कमल के निशान पर बटन दबाएंगे क्या? जरा जोर से बोलिए, दबाएंगे? भाजपा को जिताएंगे? कृतिदेव सिंह जी को जिताएंगे? मोदी जी को तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाएंगे? तो मेरे साथ दोनों हाथ उठाइए, उठाइए दोनों हाथ, विजय के संकल्प की मुट्ठी बीचिए और प्रचंड आवाज से बोलिए, भारत माता की, भारत माता की।
भारत माता की वंदे वंदे वंदे। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। ধন্যবাদ মাননীয় গৃহমন্ত্রী অমিত ভাই শাহজিকে। আমরা ওনার মূল্যবান বক্তব্য শুনলাম। 2017 সালে উনি এসেছিলেন এবং ত্রিপুরা থেকে সিপিএম এখান থেকে মুক্ত হয়েছিল। वीर विक्रम भूभागा वीर विक्रम भूभागा वीर विक्रम भूभागा वीर विक्रम भूभागा वीर विक्रम। যদিও বামেরা তাদের প্রচারে তারা প্রচার করতে শুরু করেছে, তারা জানে যে বামেরা হারবে, তারপরও তারা যাই করছে ইউটিউব সোশ্যাল মিডিয়ার মাধ্যমে তাদের প্রচারটা মানুষের কাছে
ছিনিয়ে দেওয়ার চেষ্টা করছে। ময়দানে এসে তাদের প্রচার করার কোনো ক্ষমতা নেই। পূর্বতন মুখ্যমন্ত্রী মানিক সরকার মহোদয়, যার ধর্ম হচ্ছে অ্যাথেইস্ট, নাস্তিক, ভারতীয় জনতা পার্টি, তীব্রামথা এবং আইপিএফটি এই সম্মিলিত শক্তিকে ভয় পেয়ে ত্রিপুরার পূর্বতন মুখ্যমন্ত্রী উনি ধর্মে বিশ্বাস করতে শুরু করেছেন। আমি বলি, কয়েকদিন আগে উনি বক্তব্য করছিলেন, উনি বলেছেন যে আমি যেদিন স্বর্গে যাব সেই দিন আমার মুখ্যমন্ত্রিত্ব থাকাকালীন আমি কি কি কাজ করেছি ভগবানের কাছে বলতে পারবো। আপনারা বলুন, নাস্তিক লোক, যার কাছে স্বর্গ নেই, নরক নেই, ধর্মে বিশ্বাস রাখেন না, সেই ব্যক্তি আজকে আমাদের ভয়ে ওনাকে ভগবানের আশ্রয় নিতে হচ্ছে। এবং তাতেই প্রমাণ হয় আমাদের প্রার্থী লক্ষ লক্ষ ভোটের ব্যবধানে বাম প্রার্থীকে পরাস্ত করবে। এবং মানিকবাবু বলেছেন স্বর্গে যাবেন, মেনেই নিলাম। মোদিজির বয়ে উনি স্বর্গে যাবেন, ভগবানের আশ্রয় নেবেন। আপনি যা যা করে গেছেন 20 বছরে এই ত্রিপুরা রাজ্যের পিছিয়ে পড়া মানুষদের এত বঞ্চনা, এত শোষণ আপনারা করেছেন, স্বয়ং ভগবানও স্বর্গের দরজা বন্ধ করে দিব, মানিক বাবুরে ঢুকতে দিত না। আর এই মানিক বাবু উনি বলেন যে তীব্রামথার গ্রেটার তীব্রাল্যান্ড দাবি কোথায়, এই দাবি কোন দিন আসবে। মানিক বাবু একজন কমিউনিস্ট, ওনাকে শিক্ষা দেওয়ার ক্ষমতা আমার নেই। সারা পৃথিবীতে কমিউনিজমের জন্ম হয়েছে কখন? 176 বছর আগে কার্ল মার্কস এবং ফ্রেডরিক এঙ্গেল 1848-এ এই কমিউনিজমের প্রচার শুরু করেন। এবং আমাদের ভারতবর্ষে 99 বছর হয়ে গেছে কমিউনিস্টদের আন্দোলন, এবং আমাদের এই ত্রিপুরায় 79 বছর ধরে বামেরা বলছে আমরা সাম্যবাদ আনবো। আমি কমিউনিস্টদের জিজ্ঞেস করতে চাই, গ্রেটার ত্রিপুরাল্যান্ডের কথা বাদ দিয়ে দিন, আপনাদের সাম্যবাদ কবে আসছে সেটার জবাব দিন। আপনারা বলতে পারবেন? সাম্যবাদের নাম দিয়ে টিপ্রাসাদের ধোঁকাবাদী দিয়ে 35 বছর ক্ষমতায় ছিল। আর আমরা কি পাইছি? বামেদের থেকে কি পাইছি? বামেদের থেকে একটাই পাইছি, ত্রিপুরা আলাদা হয়ে যাও, বাঙালের আলাদা হয়ে যাও। পাহাড়ি বাঙালি ভাই ভাই না, সুযোগ পাইলে যে যেখানে পাই তোমরা সব কাইটাও মেরা লাও। এটাই তো আমরা দেখলাম। যদিও ইলেকশন কমিশন বলবে কাইটাও মেরা লাও, কেন বলছেন উনি? I have all respect for Election Commission of India and its guideline. কিন্তু এটা ইতিহাস, বাংলারা যতবার ক্ষমতায় এসছে তারা 1980 সালের দাঙ্গা আমাদের উপহার দিয়েছে। আবার 97 সালের কথা আমরা ভুলবো না। ত্রিপুরায় উগ্রপন্থা সমস্যার এই কথা আমরা ভুলবো না। এই মঞ্চে দাঁড়িয়ে তীব্রামথা বিজেপি, আইপিএফটি আমরা বলতে পারি, সারা রাজ্যের মানুষকে আমরা বলতে পারি, আমরা যদি ক্ষমতায় বসে থাকি ত্রিপুরায় দাঙ্গা হতে দেব না। বামেদের মতো আমরা দাঙ্গা হতে দেব না। তারা ত্রিপুরাদের কি বলে? আপনারা ত্রিপুরাদের তারা বলে এই বাঙালিরা বাংলাদেশ থেকে আসছে, আর উপজাতিরা ত্রিপুরা ছাড়া আপনাদের অস্তিত্ব সংকটে। তো নিশ্চয়ই ত্রিপুরারা ভয় পাবে। আর বাঙালিদের এসে বলছে বাঙালিদের আমরা চাকরি দিতে পারছি না, ওই সব চাকরি ত্রিপুরারা খায়া ফলাইতেছে। এডিসি পাইছে, রিজার্ভেশন পাইছে, সব চাকরি ওরা খেয়ে নিয়েছে, আমরা পারবো না। দণ্ড এসসি এসটিদের বলছে জেনারেলদের সমস্ত সুযোগ সুবিধা
এসসি এসটিরা খায়া পালাইতে, জেনারেল আর পাইতো না। বেকারদের বলে আমরা বেকারদের চাকরি দিতে চাই, কিন্তু আমরা পারি না, কারণ ওই যে কর্মচারীদের বয়সের সীমা 58 থেকে 60 বছর করলাম, মানে প্রত্যেকটা অংশের মানুষে মিথ্যা বলে এরা 35 বছর ত্রিপুরাজ্যের শাসন করছে। আমি কনফিডেন্ট এইটুকু বলতে পারি, পাহাড়ের মানুষ জেগে গেছে, বুঝে গেছে, এই বামেদের আর আসতে দেওয়া হবে না ত্রিপুরায়। আপনারা জেনে নিন এই কথা। এবং 2018 সালে যারা ভোট দিয়ে ভারতীয় জনতা পার্টি এবং আইপিএফটিদের ক্ষমতায় এনেছেন, ওই জনগণ দেবতাদের আমি প্রণাম জানাচ্ছি মঞ্চ থেকে। নতুবা আজকেও বামেদের মুখ্যমন্ত্রী মানিক সরকার মহোদয়ের কেন্দ্রীয় বঞ্চনার কথা শুনতাম। ওনার এটা ওই আগে উফা সিনেমার গান আমরা টেপ রেকর্ডে শুনতাম। এইরকম একটা রেকর্ড কইরা আস্থা বলে ত্রিপুরার সমস্ত মানুষ নিয়ে গিয়ে উনি বক্তৃতা করতেন, কেন্দ্রীয় সরকার আমাদের টাকা দিচ্ছে না, আমরা কিছুই করতে পারছি না। আর ওইদিকে দিল্লিতে মনমোহন সিং, সীতারাম ইয়েচুরি এরা বয়া বয়া চা খায়, আর এখানে ওই সিপিএমরা কংগ্রেস সরকারের বিরুদ্ধে এখানে বক্তৃতা করে। আর 2018 সালে ত্রিপুরার গণতন্ত্র প্রিয় শ্রমিক, বুদ্ধিজীবী, ওয়াংসা, তিপ্রাসা, মুগলি সমস্ত অংশের মানুষ ভোট দিয়ে মানিক বাবুর ওই টেপটাকে এমন ভাবে আসার দিতে, এই টেপ রেকর্ড আর বাঁচত না। কেন্দ্রীয় বঞ্চনার গল্প আর হবে না। নতুবা আজকেও কইতো মোদীজির সরকার টাকা দিচ্ছে না, আমরা করতে পারতাছি না। কি না দিছে এদের, দিতে 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 মনমোহন সিংকে হাত পায়ে গেছিলেন গোটা টাকা দিতে দিতে। আর এখানে কমরেডরা শিকাবিনি খাইতো, এই কমরেডরা চারমিনার, ফ্ল্যাট, বোর্ড, আমিও তো জানি না, এদের সিগারেট থেকে আরম্ভ করে যাদের বাইসাইকেল ছিল এরা গাড়ি নিয়ে আসা যাওয়া করতো। আমরা কি ভুইলা দামু? এইটা আমরা কখনোই ভুলবো না। এই কারণে এইবার এর একটা জিনিস সরাইতে সাংঘাতিক, এর হচ্ছে ক্রিমিনাল বুদ্ধি কি কইরা মানুষের মগজে দেওয়া যায়, এটা হচ্ছে তাদের বুদ্ধি। বলছে ত্রিপুরা মোথা এত স্ট্রং একটা আঞ্চলিক দল, এই দলটা কেন আপনারা বিজেপিকে ভোট দেবেন? আমি মানিক বাবুকে জিজ্ঞেস করছি, মানিক বাবু আপনার সিপিএম দল কংগ্রেসের সাথে আঘাত করেছে, ত্রিপুরার পিছিয়ে পড়া ত্রিপ্রাসা সহ অন্যান্য অংশের যারা পিছিয়ে পড়া মানুষের সাথে আপনাদের কি চুক্তি আছে? কোনো চুক্তি নাই। কিন্তু ত্রিপুরা মোথা, বিজেপি, আইপিএফটি তিন দলীয় আমরা কেন্দ্রীয় সরকারের সাথে ত্রিপাক্ষিক চুক্তি করেছি। এই রাজ্যে এক ভারত শ্রেষ্ঠ ভারতের লক্ষ্যে আমরা সমস্ত অংশের মানুষের উন্নয়ন করব। এই চুক্তিতে আজকে আমরা একসাথে কাজ করব। আর ওনারা বলছেন যে আনারস, এই আনারস বুইলে গিয়া আপনারা আজকে পদ্ম ফুলে ভোট দেবেন। এই প্রাসাদের যদি কেউ উন্নয়ন করে, পদ্ম ফুলে আমরা কেন ভোট দেব না? আর আমাদের প্রার্থীর বিরুদ্ধে তারা বলছে উনি তো বহিরাগত, বাইরের থেকে আইছেন। আপনারা বলেন তো, এখানে যারা মহিলারা আছেন, কেউ যদি ওনার মতো ছত্তিশগড়ে বিয়ে করে যান, ওইখানেই কিন্তু সংসারটা করবেন। আর সবাই আমরা দেখেছি এইখানের মানুষ যখন সেখানে যায় আর দেশে ফিরে না। পাঞ্জাবে বিয়ে করলে পাঞ্জাব থেকে আর ফিরে না। কিন্তু এই মহিলার এত শক্তি, উনার সামনে বলছি যে উনার মহারাজা হাজবেন্ডকে বুঝিয়ে উনি আবার উনার পৈতৃক ভূমিতে ত্রিপুরায় আমি সর্ব অংশের মানুষের কাজ করব, এমপি ইলেকশনে আমি লড়তে যাচ্ছি। এত বড় একটা শক্তিশালী মহিলাকে আমরা কেন ভোট দেব না? আমরা অবশ্যই উনাকে ভোট দিয়ে জয়লাভ করাবো। তাদের মিথ্যা প্রচারের অভাব আর নেই। একের পর এক অভিযোগ তারা বলে, নাকি এইবার আমি অনেক জায়গায় বলি 3.5
হইব বামেদের আমি জিগাইলাম এক নেতা মোদীর জিগাইলাম আপনারা ত্রিপুরাতে আপনারা যে 350 সিট নিয়ে আইবেন ত্রিপুরার পূর্ব ত্রিপুরার পশ্চিম ত্রিপুরার মধ্যে কোন সিটটা আপনারা জিতবেন ওই সেখানে আমরা জিতবো না তো কেমনে আইব কিন্তু আমরা এইটুকু বলতে পারি মোদীজির যে স্লোগান আপকি বার 400 বার আর ওই 400 সিটের মধ্যে যে 2টা সিট হবে এটা ত্রিপুরার 2টা সিট এইটাই দিয়ে গণনা শুরু হবে ভয় কিসে কোনো ভয় নেই উন্নয়ন হবে মানুষের কাজ হবে ত্রিপুরা অঞ্চলের সমস্ত অংশের মানুষের কাজ হবে এই কাজ করার লক্ষ্যে আমাদের প্রার্থী মহারানী প্রীতি দেবী যে আমার সাথে কথা বলছিলেন ওনার হোটেল রুমে উনি প্রতিশ্রুতিবদ্ধ তার সংকল্প নিয়ে ত্রিপুরায় এসছেন উনি কাজ করবেন উনি বলছেন যে আমি অন্যান্য এমপিদের মতো বসে থাকবো না আমি সবখানেই চেষ্টা করব কি কি কাজ করে মানুষের কর্মসংস্থান করা যায় আরো বেশি সরকারের কাজকে ত্বরান্বিত করা যায় সেই কাজ উনি করবেন উনি এমনিতেই আসেননি এখানে অনেক ভালো লেগেছে এক ভারত শ্রেষ্ঠ ভারত এটা হবে এবং আর বিশেষ বক্তব্য রাখছি না আমি শিওর ওইখান থেকে ওনারা বেরিয়ে গেছেন আরো মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়গণ বিধায়কগণ বক্তব্য করবেন এই যে একটা সুযোগ এই সুযোগে আমরা মোদীজিকে এইবার ককবরকে একটা স্লোগান বলবো যারা ককবরক ভাষাভাষী আমাদের লোক কিন্তু সিম্বল মাথুর নাই বুটি দিন থাকে আরো সবর কংগ্রেলে দেনলি আইতে বুট নাই বড় পদ্মকুমার হয় ত্রিপুরা মথায় টিপটি বিজেপি নি সিম্বল থাকলে পদ্মকুমার অ্যাবসলিউট মাস্ট এটাকে আমাদের ঘরে ঘরে নিয়ে যেতে হবে প্রচার করতে হবে এবং আমাদের মহারানী প্রীতি দেবীজিকে এবং পশ্চিম ত্রিপুরা আসলে বিপ্লব কুমার দেব মহোদয়কে যেন আমরা লক্ষ লক্ষ ভোটের ব্যবধানে জয়লাভ করিয়ে মোদীজিকে আপকি বার 400 বার এই 400-র মধ্যে আমরা যেন উপহার দিতে পারি অমিত ভাষা তোমায় জানাই স্বাগতম মায়েরা উলুদ্দানি দিন অমিত ভাষা তোমায় জানাই স্বাগতম 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 भारत माता की फिर एक बार आपकी बार आपकी बार आपकी बार অমিত ভাষাকে আমরা এই কুমারঘাটে দ্বিতীয়বার স্বাগত জানাচ্ছি উনি সামনে বক্তব্য রাখবেন ত্রিপুরা মাতা দলের যিনি ফাউন্ডার রয়েছেন মহারাজা প্রদ্যোৎ কিশোর দেব মানিক্য মহোদয় माननीय गृह मंत्री जी, माननीय मुख्यमंत्री जी, यहां में मंच में सब बैठे हैं मंत्री, हमारे बीजेपी के अध्यक्ष, हमारे कैंडिडेट वेस्ट त्रिपुरा से पूर्व मुख्यमंत्री जी बिप्लब देव जी। मैं ज्यादा समय नहीं लूंगा। कुमारघाट से आज पहली बार जिंदगी में पहली बार मैं उसी मंच में खड़ा हूं जहां में हमारे गृह मंत्री जी खड़े हैं और मैं गृह मंत्री जी को तोहफे में त्रिपुरा से दोनों सीट वर्ल्ड रिकॉर्ड मार्जिन से आपको और मोदी जी को देना चाहता हूं। यहां मैं ज्यादा नहीं बोलूंगा क्योंकि हम सब देश के होम मिनिस्टर को सुनने आए हैं। सिर्फ 2 बात रखना चाहता हूं। मैं त्रिपुरा मोथा का फाउंडर और मैं एक समय चेयरमैन रह चुका हूं। मेरे साथ यहां में विजय कुमार रांखोल जी हैं,
हमारे एमएलएज हैं, हमारे ब्रू शरणार्थी लीडर्स हैं। मैंने देखा है जब 2018 में मैं पहली बार गृह मंत्री जी से मिला था, हमारे जो ब्रू शरणार्थी थे जिनको कंचनपुर में कम्युनिस्ट की सरकार ने इतने सालों तक वंचित रखा, गरीब रखा, उनके शिक्षा के लिए नहीं सोचा, उनके भविष्य के लिए नहीं सोचा, उनके बच्चे के लिए नहीं सोचा। उस समय मैंने गृह मंत्री जी से एक निवेदन किया था। इतिहास गवाह है कि 2 महीने के अंदर जो 20-25 साल का प्रॉब्लम था, 2 महीने के अंदर गृह मंत्री जी ने हमारे ब्रू को दिया। आज अगर त्रिपुरा में ब्रू एक सम्मान का जिंदगी जी रहा है, अगर आपके बच्चे का एक भविष्य आज है, तो उसमें एक बहुत बड़ा हाथ हमारे गृह मंत्री जी का है। इसमें हमें भूलना नहीं चाहिए, हमें भूलना नहीं चाहिए कि हमारे साथ हमारे खराब समय में कौन रहा। आज से 1 महीने पहले मैंने, हमारे प्रेसिडेंट विजय कुमार रांखल ने, हमारे मंत्री ने, हमारे एमएलए ने, हमने एक हिस्टोरिक तिपरासा अकॉर्ड साइन किया है। बहुत लोग, स्पेशली कम्युनिस्ट, इतिहास को नकारते हैं, इतिहास को बदलने की कोशिश करते हैं, लेकिन कुमार घाट में मैं बोलना चाहता हूं और मीडिया के थ्रू बोलना चाहता हूं, आज से 75 साल पहले महारानी कंचन प्रभा देवी ने देश के उस समय के होम मिनिस्टर हमारे सरदार पटेल के संग एक एग्रीमेंट साइन किया था। उसके बाद त्रिपुरा एक हिंदुस्तान का अटूट अंग बना। 75 साल बाद कंचन प्रभा देवी का नाती को वही सम्मान, उस परिवार को वही सम्मान देश का होम मिनिस्टर श्री अमित शाह जी ने दिया है। यह सम्मान मुझे व्यक्तिगत तौर से नहीं दिया गया है, यह हमारे त्रिपुरा के इंडिजिनस लोग, हमारे जनजाति, हमारे ट्राइबल लोगों को, हमारे हानी बुसा को, हमारे बुकुंगबारा को आज हमारा होम मिनिस्टर ने दिया है। ये शांति से मिला है। आज से पूरे नॉर्थ ईस्ट में आप देखेंगे, जब भी किसी को कुछ प्राप्त हुआ, ये वायलेंस से हुआ, झगड़ के हुआ, बंदूक से हुआ। इस बार ना किसी का घर जला है, ना किसी की मृत्यु हुई है, ना कहीं में आतंकवाद हुआ है। आज शांति से हम त्रिपुरा के जनजाति, इंडिजिनस, हानी बुसा को और स्थानीय लोगों को आगे ले जाना चाहते हैं। कम्युनिस्ट सरकार ने 25 साल तक यहां में राज किया, हमारा इतिहास को बदला, हमारे गरीब तिपरासा को कुछ नहीं दिया। आज अगर हमको अपना बच्चा का भविष्य बनाना होता है तो हमें कलकत्ता, दिल्ली, बेंगलोर, हैदराबाद, पूना जाना पड़ता है। मैं चाहता हूं कि अगर हमें अपना भविष्य को ठीक करना है तो हमें त्रिपुरा के बाहर नहीं देखना है। यह कैसे होगा अगर केंद्र सरकार हमारे साथ नहीं खड़ा होगा। मैं अपने तिपरासा को बोलना चाहता हूं, हमने 20 के 20 सीट बहुत बार कम्युनिस्ट को दिया, रिटर्न में क्या मिला? गरीबी, बेरोजगारी, भूख, शिक्षा कहीं नहीं, कहीं में पीने के लिए, पानी के लिए हमें 5-5 किलोमीटर चलना पड़ता था। आज समय आया है, आज समय आया है कि हम अपने दुश्मन को, जिसने हमें वंचित रखा, जिसने हमें नॉर्थ ईस्ट में सबसे गरीब अगर कोई जनजाति है तो वो त्रिपुरा का है, किसने रखा है वो समझिए, किसने आज हमें इस स्थिति में रखा है, और उसका जवाब इस इलेक्शन में आप दीजिए। मैं यहां में अपनी बहन के लिए वोट मांगने नहीं आया हूं, मैं यहां में अपने लोगों को एक अच्छा भविष्य देने के लिए, अपने नेक्स्ट जनरेशन को एक अच्छा कल देने के लिए बात करने के लिए आया हूं। मैं अंत में
गृह मंत्री जी को एक छोटे भाई के तरीके से एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूं। गृह मंत्री जी, आपने हमें बहुत दिया है, हम आभारी हैं और हम चाहते हैं कि आप भी आज हमारे लिए और 2 शब्द बोलिए, क्योंकि कम्युनिस्ट ने एक अफवाह फैलाया हुआ है कुछ नहीं मिलेगा, और मैं बोलता हूं सब कुछ मिलेगा, सबको मिलेगा। मैं ये निवेदन करके अपने लोगों को बोलना चाहता हूं, 19 तारीख वेस्ट त्रिपुरा में, 26 तारीख ईस्ट त्रिपुरा में, यहां में एक मैसेज आप भेजिए कि त्रिपुरा अब कम्युनिस्ट के हाथों से निकल चुका है और एक नया कल बनाना चाहता है। यही मैं बोलकर अपने सबको धन्यवाद बोलना चाहता हूं। तीपरासा दोफा आयुक लोकथोंग, तीपरासा जाति आयुक लोकथोंग, भारत माता की जय, और त्रिपुरा के सब लोगों को मेरा बेलाई बेलाई नो हमबाई खुलुंग का धन्यवाद। थैंक यू। भारत माता की। मेरे साथ बोलिए, भारत माता की। क्यों भाई, कुमार घाट वालों की आवाज को क्या हो गया है? 400 पार करना है या नहीं करना है? मोदी जी को फिर से प्रधानमंत्री बनाना है या नहीं बनाना है? तो ऐसी आवाज नहीं चलेगी। दोनों हाथ उठाइए, उठाइए दोनों हाथ, विजय के संकल्प का मुट्ठी बींचिए और प्रचंड आवाज से बोलिए, भारत माता की, भारत माता की। मंच पर उपस्थित त्रिपुरा के लोकप्रिय मुख्यमंत्री डॉक्टर माणिक शाह जी, हमारे राजा साहब और मेरे मित्र त्रिपुरा मोथा के अध्यक्ष महोदय, मेरे साथ आए हुए हमारे दोनों प्रत्याशी, पश्चिम त्रिपुरा से विप्लव कुमार देव जी, विप्लव जी खड़े हो जाइए जरा, और पूर्वी त्रिपुरा से महारानी कृति सिंह जी, हमारे प्रदेश अध्यक्ष महोदय श्री टिंकू रॉय, श्री सुधांशु दास, हमारी ट्राइबल मंत्री आगे आओ, चकमा आगे आओ, जोर से ताली बजाओ सेंटाना चकमा के लिए सभी लोग। हमारे त्रिपुरा मोथा के साथी अनिमेश देववर्मा जी, अनिमेश जी खड़े हो जाइए आप, शुक्लचरण नोतिया जी, हमारी नेत्री, भारत सरकार में मंत्री बहन प्रतिमा भौमिक जी, और आज कुमार घाट की इस भूमि पर आए हुए प्यारे भाइयों, बहनों, माताओं और मेरे जिगर के टुकड़े जैसे युवा मित्रों, आप सभी को नमस्कार। मुझे बरोबर याद है 2017 का दिसंबर माह होगा और मैं यहां पर त्रिपुरा मुक्ति के लिए पहली रैली करने आया था और यहीं से त्रिपुरा को कम्युनिस्टों से मुक्त करने की शुरुआत की थी। और आज इस महान त्रिपुरा की जनता ने इतने सालों के कम्युनिस्ट शासन को समाप्त कर त्रिपुरा में मोदी जी पर भरोसा कर विकास का एक नया रास्ता चुनने का काम किया है। मित्रों, मैं जब यहां आया हूं तब सबसे पहले मां त्रिपुरा सुंदरी को, बाबा गरिया मंदिर को और सभी देवी देवताओं को प्रणाम कर मेरी बात की शुरुआत करना चाहता हूं। मैं यहां आया हूं तब विनम्र शासक और जिनके मन में देश और जनता के अलावे कुछ नहीं था, ऐसे महाराजा वीर विक्रम माणिक्य किशोर जी को भी मनपूर्वक प्रणाम करना चाहता हूं। इतने सालों से कम्युनिस्टों ने महाराजा वीर विक्रम माणिक्य किशोर जी को
केवल और केवल बुलाने का काम किया। नरेंद्र मोदी जी ने इनके नाम पर त्रिपुरा के एयरपोर्ट देकर बड़ी मूर्ति प्रस्थापित कर उनको चिर स्मरण करने का काम नरेंद्र मोदी जी ने किया है। और मित्रों, अभी अभी आपने पद्म पुरस्कारों का सूची देखा होगा। सतराम रियांग और बेनी चंद्र जमातिया, हमारे 2 ट्राइबल भाइयों को पद्म पुरस्कार देकर मोदी जी ने ट्राइबलों का सम्मान बढ़ाने का काम किया है। भाइयों और बहनों, नरेंद्र मोदी सरकार ने आदिवासियों के सम्मान के लिए, सुरक्षा के लिए और समावेशी विकास के लिए देश भर में न केवल विकास के काम चलाए हैं, उनको साथ में रखने का भी काम किया है। ये कांग्रेस और कम्युनिस्ट सालों तक शासन करते रहे, एक भी आदिवासी बेटा बेटी को देश का राष्ट्रपति नहीं बनाया। आजादी के 75 साल बाद पहली बार नरेंद्र मोदी जी ने ओडिशा के गरीब आदिवासी की बेटी द्रौपदी जी मुर्मू को महामहिम द्रौपदी मुर्मू बनाकर आदिवासियों का सम्मान करने का काम किया है। सैकड़ों करोड़ों रुपया खर्च कर आदिवासी पूर्वज हमारे जो देश के लिए काम करे, उनके म्यूजियम बन रहे हैं। और मैं आज बताना चाहता हूं, हर म्यूजियम में हमारे राजा साहब का प्रतिमा भी है। ये हम सब के लिए गौरव का विषय है। भाइयों और बहनों, जनजातीय मंत्रालय में, ट्राइबल मंत्रालय में पहले 24,000 करोड़ रुपए का बजट था। मेरी बात ध्यान से सुनना, इतने बड़े देश के ट्राइबल आबादी के लिए सिर्फ 24,000 करोड़ था। नरेंद्र मोदी जी ने 1,25,000 करोड़ का बजट ट्राइबल मंत्रालय का किया है। और एकलव्य मॉडल स्कूल 70 साल में सिर्फ 90 बने थे। मोदी जी के 5 साल में 740 एकलव्य स्कूल बढ़ाने का काम हमने किया है। भाइयों और बहनों, त्रिपुरा पहले विप्लव देव जी और अब डॉक्टर माणिक शाह के नेतृत्व में विकास के रास्ते पर आगे बढ़ पड़े। आज सुबह ही राजा साहब भी बैठे थे। टूरिज्म, कनेक्टिविटी, एयर कनेक्टिविटी, स्वास्थ्य, नौकरियां और इंफ्रास्ट्रक्चर, हर क्षेत्र में नरेंद्र मोदी सरकार की प्रायोरिटी हमारा त्रिपुरा है। और मैं आज बताने जा रहा हूं, त्रिपुरा में भी हमारी प्रायोरिटी हमारा ट्राइबल एरिया भारत सरकार का प्रायोरिटी है। भाइयों और बहनों, अभी अभी हमने एक एग्रीमेंट किया है भारत सरकार, त्रिपुरा सरकार और राजा साहब के साथ, तिपरा मोथा के साथ। एग्रीमेंट के लिए ढेर सारी चीजें बोली जा रही है, मगर मैं आज आपको बताकर जाता हूं, आपकी सभी समस्याओं का समाधान उस एग्रीमेंट में है। मुझ पर भरोसा करिएगा, एक कम्युनिस्ट जहर घोलने का काम। त्रिपुरा की जाति और जनजाति दोनों के बीच में शांति रहे, दोनों का विकास हो और संघर्ष की जगह विकास के रास्ते पर त्रिपुरा आगे बढ़ पड़े, इसका एग्रीमेंट में पूरा ध्यान रखा गया है। ये राजा साहब है तो राजा, मगर बनने से भी ज्यादा चतुर है भाई। छोटी छोटी चीज पर आपकी सभी हितों का ध्यान उन्होंने रखा है और मोदी जी ने इसको आशीर्वाद देने का काम किया है। भाई और बहनों,
मोदी जी ने देश भर में 2,94,00,000 गरीबों के घर बनाए। इसका सबसे बड़ा फायदा एसटी लाभार्थियों को हुआ है। 21% घर एसटी को मिले, 14 करोड़ टॉयलेट बनाए, 70 करोड़ लोगों को 5 किलो चावल प्रति माह प्रति व्यक्ति मुफ्त में दिया जाता है। त्रिपुरा वालों, आपको मिलता है या नहीं मिलता है, जरा बताओ तो। भाई चावल आता है ना? हर एक के घर में गैस का सिलेंडर भेजने वाले हैं और नए 3 करोड़ घर मोदी जी ने वादा किया है। बाद में कोई भी ट्राइबल हमारा घर बगैर का नहीं रहेगा। ये मोदी का गारंटी है भाइयों, मोदी का गारंटी। सबरूम रेलवे स्टेशन को एक्सटेंड किया गया। 23 ट्रेनें अब चल रही है। अगरतला अखौरा रेलवे लाइन को आगे बढ़ाने का काम किया और एक हाईवे ही था कम्युनिस्टों के 30 साल के शासन में। अब त्रिपुरा में 9 हाईवे बनाने का काम नरेंद्र मोदी सरकार ने किया है। विद्या ज्योति स्कूल को सीबीएसई में लिया। बमुतिया में सेंट्रल संस्कृत यूनिवर्सिटी बन रही है। नरसिंहगढ़ में अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम बन रहा है, जिससे आईपीएल और राष्ट्रीय मैच भी यहां आएगी। सब रूम के अंदर 1550 करोड़ के खर्चे से जलेफा में स्पेशल इकोनॉमिक जोन बन रहा है, जहां इंडस्ट्री भी आएगी, रोजगारी भी आएगी और अपने अकेले त्रिपुरा में 87,000 लखपति दीदी है मोदी जी ने, और 3 करोड़ लखपति दीदी बनाने का लक्ष्य रखा है। अकेले त्रिपुरा में 3.5 लाख लखपति दीदी बनेगा। और आज 140 करोड़ से एक अनूठा यूनिटी मॉल भी बनाने का काम त्रिपुरा के अंदर हुआ है। भाई और बहनों, कम्युनिस्ट जहां जहां गए वहां क्या छोड़ा? गरीबी, भूखमरी, स्वास्थ्य का अभाव, शिक्षा का अभाव और युवाओं के हाथ में बंदूक थमाने का काम एक कम्युनिस्ट पार्टी ने किया। और भारतीय जनता पार्टी के नेता नरेंद्र मोदी जी ने युवाओं के हाथ में लैपटॉप पकड़ाने का काम किया है। पूरे नॉर्थ ईस्ट के अंदर 10 से ज्यादा समझौते कर कर सभी ट्राइब को 10,000 युवाओं के हाथ में से हथियार छुड़ाकर उनको मेन स्ट्रीम में लाने का काम भारतीय जनता पार्टी और नरेंद्र मोदी सरकार ने किया है। भाइयों और बहनों, मैं आज त्रिपुरा में कहना चाहता हूं, हमारे ब्रू और रियांग भाई, इनके परिवार 40,000 लोग नर्क की जिंदगी जी रहे थे। नरेंद्र मोदी सरकार ने सभी ब्रू रियांग को अच्छे गांव बसा कर दिए और उनके जीवन के अंदर उजियारा लाने का काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया। भाइयों और बहनों, ये कम्युनिस्ट यहां आते हैं, कांग्रेस वाले आते हैं। मैं आज त्रिपुरा के कांग्रेस और कम्युनिस्ट नेताओं को पूछने आया हूं, 10 साल आपकी सरकार थी, सोनिया मनमोहन की सरकार थी, आपने त्रिपुरा को क्या दिया? हर 10 साल में आपने 40,183 करोड़ रुपया दिया, सिर्फ 40,000 करोड़। और मोदी जी ने ये 10 साल में 40,000 करोड़ के सामने 98,000 करोड़ रुपया देने का काम मोदी जी ने किया है। इसके साथ साथ 20,000 करोड़ के इंफ्रास्ट्रक्चर, 17,000 करोड़ सड़क के, 2,000 करोड़ रेलवे के और 1,000 करोड़
एयरपोर्ट का किया है। और भाई और बहनों, मोदी गारंटी की बात मैं करना चाहता हूं। कोई भी व्यक्ति हो, गरीब हो, धनवान हो, 70 साल की ऊपर के सभी नागरिकों को 5 लाख तक का सभी स्वास्थ्य का खर्चा अब भारतीय जनता पार्टी उठाएगी। नए 3 करोड़ घर बनाए जाएंगे। गरीबों के घर में नल से जल आया है, ऐसे ही पाइप से गैस पहुंचाने का काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार करेगी। गरीब के घर पर सूर्य बिजली का उपकरण लगाकर उसका बिजली बिल माफ करने का काम करेंगे। 3 करोड़ लखपति दीदियां भी हम बनाएंगे। भाई और बहनों, हम आपका आशीर्वाद मांगने आए हैं। ये लाल भाइयों ने सालों तक जाति और जनजाति को झगड़ा कराया। आपकी 20 की 20 सीटें लेकर विकास के नाम पर बिग जीरो किया है। मैं आपको कहता हूं, मोदी जी पर भरोसा कर कमल के निशान पर वोट दीजिए। आने वाले दिनों में संपूर्ण त्रिपुरा, वेस्ट हो या ईस्ट हो, हम उसको विकसित राज्य बनाने का कमिटमेंट करते हैं मित्रों, कमिटमेंट करते हैं। और ट्राइबल भाइयों को इस सम्मान की बात करते हैं, ट्राइबल संस्कृति की बात करते हैं। घुसपैठ अब तक किसने होने दी? कम्युनिस्टों ने होने दी, कांग्रेस ने होने दी। नरेंद्र मोदी सरकार ने बाढ़ को पूरी करने का काम कर घुसपैठ को रोकने का 90% काम किया है। मोदी जी को तीसरा मौका दीजिए, 100% घुसपैठ वहां से रुक जाएगी। ये मोदी का गारंटी है मित्रों, मोदी का गारंटी। भाइयों बहनों, महाराजा विक्रमदेव का हमारे त्रिपुरा पर बहुत बड़ा उपकार है। आज भारतीय जनता पार्टी ने, आगे आइए जरा, इनके ही परिवार से कृतिदेव सिंह जी को टिकट दिया है। मैं आपको अपील करने आया हूं, कृतिदेव सिंह जी को समर्थन कर नरेंद्र मोदी को समर्थन करिए। कृतिदेव सिंह जी के सामने दबाया हुआ हर बटन सीधा आपका वोट नरेंद्र मोदी को मिलने वाला है, मोदी को प्रधानमंत्री बनाने वाला है। मुझे बताओ, 26 तारीख को कमल के निशान पर बटन दबाएंगे क्या? जरा जोर से बोले, दबाएंगे? भाजपा को जिताएंगे? कृतिदेव सिंह जी को जिताएंगे? मोदी जी को तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाएंगे? तो मेरे साथ दोनों हाथ उठाइए, उठाइए दोनों हाथ, विजय के संकल्प की मुट्ठी बीचिए और प्रचंड आवाज से बोलिए, भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की, वंदे वंदे वंदे। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद माननीय गृहमंत्री अमित भाई शाह जी के। আমরা ওনার মূল্যবান বক্তব্য শুনলাম। 2017 সালে উনি এসেছিলেন এবং ত্রিপুরা থেকে সিপিএম এখান থেকে মুক্ত হয়েছিল। Hey,
মুর্শিদি वीर विक्रम भूभागा वीर विक्रम वीर विक्रम भूभागा वीर विक्रम वीर विक्रम भूभागा वीर विक्रम वीर विक्रम भूभागा वीर विक्रम। যদিও বামেরা তাদের প্রচারে তারা প্রচার করতে শুরু করেছে, তারা জানে যে বামেরা হারবে, তারপরও তারা যাই করছে ইউটিউব সোশ্যাল মিডিয়ার মাধ্যমে তাদের প্রচারটা মানুষের কাছে নিয়ে যাওয়ার চেষ্টা করছে। ময়দানে এসে তাদের প্রচার করার কোন ক্ষমতা নেই। পূর্বতন মুখ্যমন্ত্রী মানিক সরকার মহোদয়, যার ধর্ম হচ্ছে নাস্তিক, ভারতীয় জনতা পার্টি, তীব্রামথা এবং আইপিএফটি এই সম্মিলিত শক্তিকে ভয় পেয়ে ত্রিপুরার পূর্বতন মুখ্যমন্ত্রী ধর্মে বিশ্বাস করতে শুরু করেছেন। আমি বলি, কয়েকদিন আগে উনি বক্তব্য করছিলেন, উনি বলেছেন যে আমি যেদিন স্বর্গে যাব সেই দিন আমার মুখ্যমন্ত্রিত্ব থাকাকালীন আমি কি কি কাজ করেছি ভগবানের কাছে বলতে পারবো। আপনারা বলুন, নাস্তিক লোক, যার কাছে স্বর্গ নেই, নরক নেই, ধর্মে বিশ্বাস রাখেন না, সেই ব্যক্তি আজকে আমাদের ভয়ে ওনাকে ভগবানের আশ্রয় নিতে হচ্ছে, এবং তাতেই প্রমাণ হয় আমাদের প্রার্থী লক্ষ লক্ষ ভোটের ব্যবধানে বাম প্রার্থীকে পরাস্ত করবে। এবং মানিকবাবু বলেছেন স্বর্গে যাবেন, মেনেই নিলাম। মোদিজির বয়ে উনি স্বর্গে যাবেন, ভগবানের আশ্রয় নেবেন। আপনি যা যা করে গেছেন 20 বছরে এই ত্রিপুরা রাজ্যের পিছিয়ে পড়া মানুষদের এত বঞ্চনা, এত শোষণ আপনারা করেছেন, স্বয়ং ভগবানও স্বর্গের দরজা বন্ধ করে দিব, মানিক বাবুরে ঢুকতে দিত না। আর এই মানিক বাবু উনি বলেন যে তীব্রামথার গ্রেটার ত্রিপুরাল্যান্ড দাবি কোথায়, এই দাবি কোন দিন আসবে? মানিক বাবু একজন কমিউনিস্ট, ওনাকে শিক্ষা দেওয়ার ক্ষমতা আমার নেই। সারা পৃথিবীতে কমিউনিজমের জন্ম হয়েছে কখন? 176 বছর আগে কার্ল মার্কস এবং ফ্রেডরিক এঙ্গেল 1848-এ এই কমিউনিজমের প্রচার শুরু করেন। এবং আমাদের ভারতবর্ষে 99 বছর হয়ে গেছে কমিউনিস্টদের আন্দোলন, এবং আমাদের এই ত্রিপুরায় 79 বছর ধরে বামেরা বলছে আমরা সাম্যবাদ আনবো। আমি কমিউনিস্টদের জিজ্ঞেস করতে চাই, গ্রেটার ত্রিপুরাল্যান্ডের কথা বাদ দিয়ে দিন, আপনাদের সাম্যবাদ কবে আসছে সেটার জবাব দিন। আপনারা বলতে পারবেন? সাম্যবাদের নাম দিয়ে ত্রিপ্রাসাদের ধোঁকাবাজি দিয়ে 35 বছর ক্ষমতায় ছিল, আর আমরা কি পাইছি? বামেদের থেকে কি পাইছি? বামেদের থেকে পাইছি ত্রিপুরা আলাদা হয়ে যাও, বাঙালের আলাদা হয়ে যাও। পাহাড়ি বাঙালি ঠাই পাই না,
সুযোগ পাইলে যে যেখানে পাই তোমরা সব কাইটা দাও মাইরা দাও, এটাই তো আমরা দেখলাম। যদিও ইলেকশন কমিশন বলবে কাইটা দাও মাইরা দাও, কেন বলছেন উনি? I have all respect for Election Commission of India and its guideline. কিন্তু এটা ইতিহাস, বাংলারা যতবার ক্ষমতায় এসছে তারা 1980 সালের দাঙ্গা আমাদের উপহার দিয়েছে। আবার 97 সালের কথা আমরা ভুলবো না, ত্রিপুরায় উগ্রপন্থা সমস্যা, এই কথা আমরা ভুলবো না। এই মঞ্চে দাঁড়িয়ে ত্রিপুরা মথা বিজেপি আইপিএফ আমরা বলতে পারি, সারা রাজ্যের মানুষকে আমরা বলতে পারি, আমরা যদি ক্ষমতায় বসে থাকি ত্রিপুরায় দাঙ্গা হতে দেব না, বামেদের মতো আমরা দাঙ্গা হতে দেব না। তারা ত্রিপুরাদের কি বলে, আপনারা ত্রিপুরাদের তারা বলে এই বাঙালিরা বাংলাদেশ থেকে আসছে, আর উপজাতিরা ত্রিপুরা ছাড়া আপনাদের অস্তিত্ব সংকটে। তো নিশ্চয়ই ত্রিপুরারা ভয় পাবে। আর বাঙালিদের এসে বলছে বাঙালিদের আমরা চাকরি দিতে পারছি না, ওই সব চাকরি ত্রিপুরারা খায়া ফেলাইতেছে, এডিসি পাইছে, রিজার্ভেশন পাইছে, সব চাকরি ওরা খেয়ে নিয়েছে, আমরা পারবো না। দণ্ড এসসি এসটি বলছে জেনারেলদের সমস্ত সুযোগ সুবিধা এসসি এসটিরা খায়া ফেলাইতে, জেনারেল আর পাইতো না। বেকারদের বলে আমরা বেকারদের চাকরি দিতে চাই, কিন্তু আমরা পারি না, কারণ ওই যে কর্মচারীদের বয়সের সীমা 58 থেকে 60 বছর করলাম, মানে প্রত্যেকটা অংশের মানুষে মিথ্যা বলে এরা 35 বছর ত্রিপুরাজ্যের শাসন করছে। আমি কনফিডেন্ট এইটুকু বলতে পারি, পাহাড়ের মানুষ জেগে গেছে, বুঝে গেছে, এই বামেদের আর আসতে দেওয়া হবে না ত্রিপুরায়, আপনারা জেনে নিন এই কথা। এবং 2018 সালে যারা ভোট দিয়ে ভারতীয় জনতা পার্টি এবং আইপিএফটিদের ক্ষমতায় এনেছেন, ওই জনপদ দেবতাদের আমি প্রণাম জানাচ্ছি মঞ্চ থেকে। নতুবা আজকেও বামেদের মুখ্যমন্ত্রী মানিক সরকার মহোদয়ের কেন্দ্রীয় বঞ্চনার কথা শুনতাম, উনার এটা ওই আগে তুফা সিনেমার গান আমরা টেপ রেকর্ডে শুনতাম। এইরকম একটা রেকর্ড কইরা আস্থা বলে ত্রিপুরার সমস্ত মানুষ নিয়ে গিয়ে উনি বক্তৃতা করতেন, কেন্দ্রীয় সরকার আমাদের টাকা দিচ্ছে না, আমরা কিছুই করতে পারছি না। আর ওইদিকে দিল্লিতে মনমোহন সিং, সীতারাম ইয়েচুরি এরা বয়া চা খায়, আর এখানে ওই সিপিএমরা কংগ্রেস সরকারের বিরুদ্ধে এখানে বক্তৃতা করে। আর 2018 সালে ত্রিপুরার গণতন্ত্র প্রিয় শ্রমিক, বুদ্ধিজীবী, ওয়াংসা, ত্রিপ্রাসা, মুগলি সমস্ত অংশের মানুষ ভোট দিয়ে মানিক বাবুর ওই টেপটাকে এমন ভাবে আশা দিতে, এই টেপ রেকর্ড আর বাঁচত না, কেন্দ্রীয় বঞ্চনার গল্প আর হবে না। নতুবা আজকেও কইতো মোদীজির সরকার টাকা দিচ্ছে না, আমরা করতে পারতাছি না, কি না দিছে এদের, দিতে 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 মনমোহন সিংকে হাত পায়ে গেছিলেন গোটা টাকা দিতে। আর এখানে কমরেডরা শিকাবিনি খাইতো, এই কমরেডরা চারমিনার, ফ্ল্যাট, বোর্ড, আমিও তো জানি না, এদের সিগারেট থেকে আরম্ভ করে যাদের বাইসাইকেল ছিল এরা গাড়ি নিয়ে আসা যাওয়া করতো। আমরা কি ভুইলা দামু? এইটা আমরা কখনোই ভুলবো না। এই কারণে এইবার এরা একটা জিনিস সরাইতেছে, সাংঘাতিক, এরা হচ্ছে ক্রিমিনাল বুদ্ধি, কি কইরা মানুষের মগজে দেওয়া যায়, এটা হচ্ছে তাদের বুদ্ধি। বলছে ত্রিপুরা মধুরা এত স্ট্রং একটা আঞ্চলিক দল, এই দলটা কেন আপনারা বিজেপিকে ভোট দেবেন? আমি মানিক বাবুকে জিজ্ঞেস করছি, মানিক বাবু আপনার সিপিএম দল কংগ্রেসের সাথে আলাপ করেছে, ত্রিপুরার পিছিয়ে পড়া, ত্রিপুরা সহ অন্যান্য অংশের যারা পিছিয়ে পড়া মানুষের সাথে আপনাদের কি চুক্তি আছে? কোনো চুক্তি নাই।
কিন্তু তীব্রামথা বিজেপি আইপিএফটি 3 দলীয় আমরা কেন্দ্রীয় সরকারের সাথে ত্রিপাক্ষিক চুক্তি করেছি। এই রাজ্যে এক ভারত শ্রেষ্ঠ ভারতের লক্ষ্যে আমরা সমস্ত অংশের মানুষের উন্নয়ন করব। এই চুক্তিতে আজকে আমরা একসাথে কাজ করব। আর ওনারা বলছেন যে আনারস, এই আনারস বিলে গিয়া আপনারা আজকে পদ্ম ফুলে ভোট দেবেন। এই প্রাসাদের যদি কেউ উন্নয়ন করে পদ্ম ফুলে আমরা কেন ভোট দেব না? আর আমাদের প্রার্থীর বিরুদ্ধে তারা বলছে উনি তো বহিরাগত, বাইরের থেকে আইছেন। আপনারা বলেন তো, এখানে যারা মহিলারা আছেন কেউ যদি উনার মতো ছত্তিশগড়ে বিয়ে করে যান ওইখানে কিন্তু সংসারটা করবেন। আর স্বভাবত আমরা দেখেছি এইখানের মানুষ যখন সেখানে যায় আর দেশে ফিরে না। পাঞ্জাবে বিয়ে করলে পাঞ্জাব থেকে আর ফিরে না। কিন্তু এই মহিলার এত শক্তি, উনার সামনেই বলছি যে উনার মহারাজা হাজবেন্ডকে বুঝিয়ে উনি আবার উনার পৈতৃক ভূমিতে ত্রিপুরায় আমি সর্ব অংশের মানুষের কাজ করব, এমপি ইলেকশনে আমি লড়তে যাচ্ছি। এত বড় একটা শক্তিশালী মহিলাকে আমরা কেন ভোট দেব না? আমরা অবশ্যই ওনাকে ভোট দিয়ে জয়লাভ করাবো। তাদের মিথ্যা প্রচারের অভাব আর নেই। একের পর এক অভিযোগ তারা বলে এরা নাকি এইবার, আমি অনেক জায়গায় বলি 350 সিট নিয়ে এরা ক্ষমতায় বইব। বামেদের আমি জিগাইলাম, এক নেতা মোদীর জিগাইলাম আপনারা ত্রিপুরাতে আপনারা যে 350 সিট নিয়ে আইবেন, ত্রিপুরার পূর্ব ত্রিপুরার পশ্চিম ত্রিপুরার মধ্যে কোন সিটটা আপনারা জিতবেন? বলছে এখানে আমরা জিতবো না। তো কেমনে আইব? কেমনে আইব? কিন্তু আমরা এইটুকু বলতে পারি, মোদীজির যে স্লোগান আপকি বার 400 বার, আর ওই 400 সিটের মধ্যে যে 2টা সিট হবে এটা ত্রিপুরার 2টা সিট, এইটাই দিয়ে গণনা শুরু হবে। ভয় কিসে? কোনো ভয় নেই। উন্নয়ন হবে, মানুষের কাজ হবে, ত্রিপুরা অঞ্চলের সমস্ত অংশের মানুষের কাজ হবে। এই কাজ করার লক্ষ্যে আমাদের প্রার্থী ভয়ানী প্রীতি দেবী যে আমার সাথে কথা বলছিলেন ওনার হোটেল রুমে, উনি প্রতিশ্রুতিবদ্ধ, তার সংকল্প নিয়ে ত্রিপুরায় এসছেন, উনি কাজ করবেন। উনি বলছেন যে আমি অন্যান্য এমপিদের মতো বসে থাকবো না, আমি সবখানেই চেষ্টা করব কি কি কাজ করে মানুষের কর্মসংস্থান করা যায়, আরো বেশি সরকারের কাজকে ত্বরান্বিত করা যায়, সেই কাজ উনি করবেন। উনি এমনিতেই আসেননি এখানে। অনেক ভালো লেগেছে। এক ভারত শ্রেষ্ঠ ভারত এটা হবে। এবং আর বিশেষ বক্তব্য রাখছি না, আমি শিওর ওইখান থেকে ওনারা বেরিয়ে গেছেন। আরো মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়গণ, বিধায়কগণ বক্তব্য করবেন। এই যে একটা সুযোগ, এই সুযোগে আমরা মোদীজিকে এইবার ককবরক একটা স্লোগান বলবো, যারা ককবরক ভাষাভাষী আমাদের লোক, কিন্তু সিমল মাথুর নাই বুটি দিন থাকে আরো সবর কংগ্রেস এমনি হাইতে বুট নাই বড় পদ্মকুমার হয় তীব্রামথায় তীব্রি বিজেপি নি সিম্বল থাকলে পদ্মকুমার অ্যাবসলিউট মাস্ট। এটাকে আমাদের ঘরে ঘরে নিয়ে যেতে হবে, প্রচার করতে হবে এবং আমাদের মহারানী প্রীতি দেবীজিকে এবং পশ্চিম ত্রিপুরা আসনে বিপ্লব কুমার দেব মহোদয়কে যেন আমরা লক্ষ লক্ষ ভোটের ব্যবধানে জয়লাভ করিয়ে মোদীজিকে আপকি বার 400 বার, এই 400-র মধ্যে আমরা যেন উপহার দিতে পারি। অমিত ভাষা তোমায় জানাই স্বাগতম। মায়েরা উলুধ্বনি দিন। অমিত ভাষা তোমায় জানাই স্বাগতম। 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 भारत माता की
फिर एक बार, फिर एक बार, अब की बार, अब की बार, अब की बार অমিত ভাই শাহকে আমরা এই কুমারঘাটে দ্বিতীয়বার স্বাগত জানাচ্ছি। উনি সামনে বক্তব্য রাখবেন তিপ্রামাতা দলের যিনি ফাউন্ডার রয়েছেন মহারাজা প্রদ্যোৎ কিশোর দেব মানিক্য মহোদয়। माननीय गृह मंत्री जी, माननीय मुख्यमंत्री जी, यहां में मंच में सब बैठे हैं, मंत्री, हमारे बीजेपी के अध्यक्ष, हमारे कैंडिडेट वेस्ट त्रिपुरा से पूर्व मुख्यमंत्री जी बिप्लब देव जी। मैं ज्यादा समय नहीं लूंगा। कुमारघाट से आज पहली बार, जिंदगी में पहली बार मैं उसी मंच में खड़ा हूं जहां में हमारे गृह मंत्री जी खड़े हैं, और मैं गृह मंत्री जी को तोहफे में त्रिपुरा से दोनों सीट वर्ल्ड रिकॉर्ड मार्जिन से आपको और मोदी जी को देना चाहता हूं। यहां में मैं ज्यादा नहीं बोलूंगा क्योंकि हम सब देश के होम मिनिस्टर को सुनने आए हैं। सिर्फ दो बात रखना चाहता हूं। मैं तिपरा मौथा का फाउंडर और मैं एक समय चेयरमैन रह चुका हूं। मेरे साथ यहां में विजय कुमार रांखल जी हैं, हमारे एमएलएज हैं, हमारे ब्रू शरणार्थी लीडर्स हैं। मैंने देखा है जब 2018 में मैं पहली बार गृह मंत्री जी से मिला था, हमारे जो ब्रू शरणार्थी थे जिनको कंचनपुर में कम्युनिस्ट की सरकार ने इतने सालों तक वंचित रखा, गरीब रखा, उनके शिक्षा के लिए नहीं सोचा, उनके भविष्य के लिए नहीं सोचा, उनके बच्चे के लिए नहीं सोचा। उस समय मैंने गृह मंत्री जी से एक निवेदन किया था। इतिहास गवाह है कि 2 महीने के अंदर जो 20-25 साल का प्रॉब्लम था, 2 महीने के अंदर गृह मंत्री जी ने हमारे ब्रू को दिया। आज अगर त्रिपुरा में ब्रू एक सम्मान का जिंदगी जी रहा है, अगर आपके बच्चे का एक भविष्य आज है, तो उसमें एक बहुत बड़ा हाथ हमारे गृह मंत्री जी का है। इसमें हमें भूलना नहीं चाहिए, हमें भूलना नहीं चाहिए कि हमारे साथ हमारे खराब समय में कौन रहा। आज से 1 महीने पहले मैंने, हमारे प्रेसिडेंट विजय कुमार रांखल ने, हमारे मंत्री ने, हमारे एमएलए ने, हमने एक हिस्टोरिक तिपरासा अकॉर्ड साइन किया है। बहुत लोग, स्पेशली कम्युनिस्ट, इतिहास को नकारते हैं, इतिहास को बदलने की कोशिश करते हैं, लेकिन कुमारघाट में मैं बोलना चाहता हूं और मीडिया के थ्रू बोलना चाहता हूं। आज से 75 साल पहले महारानी कंचन प्रभा देवी ने देश के उस समय के होम मिनिस्टर हमारे सरदार पटेल के संग एक एग्रीमेंट साइन किया था। उसके बाद त्रिपुरा एक हिंदुस्तान का अटूट अंग बना। 75 साल बाद कंचन प्रभा देवी का नाती को वही सम्मान, उस परिवार को वही सम्मान देश का होम मिनिस्टर श्री अमित शाह जी ने दिया है। यह सम्मान मुझे व्यक्तिगत तौर से नहीं दिया गया है, यह हमारे त्रिपुरा के इंडिजिनियस लोग, हमारे जनजातीय, हमारे ट्राइबल लोगों को, हमारे हानी बुसा को, हमारे बुकुंगबारा को आज हमारा होम मिनिस्टर ने दिया है। ये शांति से मिला है। आज से पूरे नॉर्थ ईस्ट में आप देखेंगे जब भी किसी को कुछ प्राप्त हुआ, ये वायलेंस से हुआ, झगड़ के हुआ, बंदूक से हुआ। इस बार ना किसी का घर जला है, ना किसी की मृत्यु हुई है, ना कहीं में आतंकवाद हुआ है। आज शांति से हम त्रिपुरा के जनजाति, इंडिजिनस, हानी बुसा को और स्थानीय लोगों को आगे ले जाना चाहते हैं। कम्युनिस्ट सरकार ने
25 साल तक यहां में राज किया, हमारा इतिहास को बदला, हमारे गरीब तिपरासा को कुछ नहीं दिया। आज अगर हमको अपना बच्चा का भविष्य बनाना होता है तो हमें कलकत्ता, दिल्ली, बेंगलोर, हैदराबाद, पूना जाना पड़ता है। मैं चाहता हूं कि अगर हमें अपना भविष्य को ठीक करना है तो हमें त्रिपुरा के बाहर नहीं देखना है। यह कैसे होगा अगर केंद्र सरकार हमारे साथ नहीं खड़ा होगा। मैं अपने तिपरासा को बोलना चाहता हूं, हमने 20 के 20 सीट बहुत बार कम्युनिस्ट को दिया, रिटर्न में क्या मिला? गरीबी, बेरोजगारी, भूख, शिक्षा कहीं नहीं, कहीं में पीने के लिए, पानी के लिए हमें 5-5 किलोमीटर चलना पड़ता था। आज समय आया है कि हम अपने दुश्मन को, जिसने हमें वंचित रखा, जिसने हमें नॉर्थ ईस्ट में सबसे गरीब अगर कोई जनजाति है तो वो त्रिपुरा का है, किसने रखा है? वो समझिए, किसने आज हमें इस स्थिति में रखा है और उसका जवाब इस इलेक्शन में आप दीजिए। मैं यहां में अपनी बहन के लिए वोट मांगने नहीं आया हूं, मैं यहां में अपने लोगों को एक अच्छा भविष्य देने के लिए, अपने नेक्स्ट जनरेशन को एक अच्छा कल देने के लिए बात करने के लिए आया हूं। मैं अंत में गृह मंत्री जी को एक छोटे भाई के तरीके से एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूं। गृह मंत्री जी, आपने हमें बहुत दिया है, हम आभारी हैं और हम चाहते हैं कि आप भी आज हमारे लिए और 2 शब्द बोलिए, क्योंकि कम्युनिस्ट ने एक अफवाह फैलाया हुआ है कुछ नहीं मिलेगा, और मैं बोलता हूं सब कुछ मिलेगा, सबको मिलेगा। मैं ये निवेदन करके अपने लोगों को बोलना चाहता हूं, 19 तारीख वेस्ट त्रिपुरा में, 26 तारीख ईस्ट त्रिपुरा में, यहां में एक मैसेज आप भेजिए कि त्रिपुरा अब कम्युनिस्ट के हाथों से निकल चुका है और एक नया कल बनाना चाहता है। यही मैं बोलकर अपने सबको धन्यवाद बोलना चाहता हूं। तिपरासा दोफा आयुक लोकथोंग, तिपरासा जाति आयुक लोकथोंग, भारत माता की जय, और त्रिपुरा के सब लोगों को मेरा बेलाई बेलाई नो हमबाई खुलुंग का धन्यवाद। थैंक यू। भारत माता की। मेरे साथ बोलिए, भारत माता की। क्यों भाई, कुमार घाट वालों की आवाज को क्या हो गया है? 400 पार करना है या नहीं करना है? मोदी जी को फिर से प्रधानमंत्री बनाना है या नहीं बनाना है? तो ऐसी आवाज नहीं चलेगी। दोनों हाथ उठाइए, उठाइए दोनों हाथ, विजय के संकल्प का मुट्ठी भींचिए और प्रचंड आवाज से बोलिए, भारत माता की, भारत माता की। मंच पर उपस्थित त्रिपुरा के लोकप्रिय मुख्यमंत्री डॉक्टर माणिक शाह जी, हमारे राजा साहब और मेरे मित्र त्रिपुरा मोर्चा के अध्यक्ष महोदय, मेरे साथ आए हुए हमारे दोनों प्रत्याशी, पश्चिम त्रिपुरा से विप्लव कुमार देव जी, विप्लव जी खड़े हो जाइए जरा, और पूर्वी त्रिपुरा से महारानी कृति सिंह जी, हमारे प्रदेश अध्यक्ष महोदय श्री टिंकू रॉय, श्री सुधांशु दास, हमारी ट्राइबल मंत्री आगे आओ, चकमा आगे आओ, जोर से ताली बजाओ सेंटाना चकमा के लिए सभी लोग। हमारे त्रिपुरा मोथा के साथी अनिमेश देववर्मा जी, अनिमेश जी खड़े हो जाइए आप, शुक्लचरण नोतिया जी, हमारी नेत्री, भारत सरकार में मंत्री बहन प्रतिमा भौमिक जी, और आज
कुमार घाट की इस भूमि पर आए हुए प्यारे भाइयों, बहनों, माताओं और मेरे जिगर के टुकड़े जैसे युवा मित्रों, आप सभी को नमस्कार। मुझे बरोबर याद है 2017 का दिसंबर माह होगा और मैं यहां पर त्रिपुरा मुक्ति के लिए पहली रैली करने आया था और यहीं से त्रिपुरा को कम्युनिस्टों से मुक्त करने की शुरुआत की थी। और आज इस महान त्रिपुरा की जनता ने इतने सालों के कम्युनिस्ट शासन को समाप्त कर त्रिपुरा में मोदी जी पर भरोसा कर विकास का एक नया रास्ता चुनने का काम किया है। मित्रों, मैं जब यहां आया हूं तब सबसे पहले मां त्रिपुरा सुंदरी को, बाबा गरिया मंदिर को और सभी देवी देवताओं को प्रणाम कर मेरी बात की शुरुआत करना चाहता हूं। मैं यहां आया हूं तब विनम्र शासक और जिनके मन में देश और जनता के अलावे कुछ नहीं था, ऐसे महाराजा वीर विक्रम माणिक्य किशोर जी को भी मनपूर्वक प्रणाम करना चाहता हूं। इतने सालों से कम्युनिस्टों ने महाराजा वीर विक्रम माणिक्य किशोर जी को केवल और केवल बुलाने का काम किया। नरेंद्र मोदी जी ने इनके नाम पर त्रिपुरा के एयरपोर्ट देकर बड़ी मूर्ति प्रस्थापित कर उनको चिर स्मरण करने का काम नरेंद्र मोदी जी ने किया है। और मित्रों, अभी अभी आपने पद्म पुरस्कारों का सूची देखा होगा। सतराम रियांग और बेनी चंद्र जमातिया, हमारे 2 ट्राइबल भाइयों को पद्म पुरस्कार देकर मोदी जी ने ट्राइबलों का सम्मान बढ़ाने का काम किया है। भाइयों और बहनों, नरेंद्र मोदी सरकार ने आदिवासियों के सम्मान के लिए, सुरक्षा के लिए और समावेशी विकास के लिए देश भर में न केवल विकास के काम चलाए हैं, उनको साथ में रखने का भी काम किया है। एक कांग्रेस और कम्युनिस्ट सालों तक शासन करते रहे, एक भी आदिवासी बेटा बेटी को देश का राष्ट्रपति नहीं बनाया। आजादी के 75 साल बाद पहली बार नरेंद्र मोदी जी ने ओडिशा के गरीब आदिवासी की बेटी द्रौपदी जी मुर्मू को महामहिम द्रौपदी मुर्मू बनाकर आदिवासियों का सम्मान करने का काम किया है। सैकड़ों करोड़ों रुपया खर्च कर सैकड़ों करोड़ों रुपया खर्च कर आदिवासी पूर्वज हमारे जो देश के लिए काम करे, उनके म्यूजियम बन रहे हैं। और मैं आज बताना चाहता हूं, हर म्यूजियम में हमारे राजा साहब का प्रतिमा भी है। ये हम सब के लिए गौरव का विषय है। भाइयों और बहनों, जनजातीय मंत्रालय में, ट्राइबल मंत्रालय में पहले 24,000 करोड़ रुपए का बजट था। मेरी बात ध्यान से सुनना, इतने बड़े देश के ट्राइबल आबादी के लिए सिर्फ 24,000 करोड़ था। नरेंद्र मोदी जी ने 1,25,000 करोड़ का बजट ट्राइबल मंत्रालय का किया है। और एकलव्य मॉडल स्कूल 70 साल में सिर्फ 90 बने थे। मोदी जी के 5 साल में 740 एकलव्य स्कूल बढ़ाने का काम हमने किया है। भाइयों और बहनों, त्रिपुरा पहले विप्लव देव जी और अब डॉक्टर माणिक शाह के नेतृत्व में विकास के रास्ते पर आगे बढ़ पड़े। आज सुबह ही राजा साहब भी बैठे थे
टूरिज्म, कनेक्टिविटी, एयर कनेक्टिविटी, स्वास्थ्य, नौकरियां और इंफ्रास्ट्रक्चर, हर क्षेत्र में नरेंद्र मोदी सरकार की प्रायोरिटी हमारा त्रिपुरा है। और मैं आज बताने जा रहा हूं, त्रिपुरा में भी हमारी प्रायोरिटी हमारा ट्राइबल एरिया भारत सरकार का प्रायोरिटी है। भाई और बहनों, अभी अभी हमने एक एग्रीमेंट किया है भारत सरकार, त्रिपुरा सरकार और राजा साहब के साथ, तिपरा मोथा के साथ। एग्रीमेंट के लिए ढेर सारी चीजें बोली जा रही है, मगर मैं आज आपको बताकर जाता हूं, आपकी सभी समस्याओं का समाधान उस एग्रीमेंट में है। मुझ पर भरोसा करिएगा, एक कम्युनिस्ट जहर घोलने का काम। त्रिपुरा की जाति और जनजाति दोनों के बीच में शांति रहे, दोनों का विकास हो और संघर्ष की जगह विकास के रास्ते पर त्रिपुरा आगे बढ़ पड़े, इसका एग्रीमेंट में पूरा ध्यान रखा गया है। ये राजा साहब है तो राजा, मगर बनने से भी ज्यादा चतुर है भाई। छोटी छोटी चीज पर आपकी सभी हितों का ध्यान उन्होंने रखा है और मोदी जी ने इसको आशीर्वाद देने का काम किया है। भाई और बहनों, मोदी जी ने देश भर में 2,94,00,000 गरीबों के घर बनाए। इसका सबसे बड़ा फायदा एसटी लाभार्थियों को हुआ है। 21% घर एसटी को मिले, 14 करोड़ टॉयलेट बनाए, 70 करोड़ लोगों को 5 किलो चावल प्रति माह प्रति व्यक्ति मुफ्त में दिया जाता है। त्रिपुरा वालों, आपको मिलता है या नहीं मिलता है, जरा बताओ तो। भाई चावल आता है ना? हर एक के घर में गैस का सिलेंडर भेजने वाले हैं और नए 3 करोड़ घर मोदी जी ने वादा किया है, बाद में कोई भी ट्राइबल हमारा घर बगैर का नहीं रहेगा। ये मोदी का गारंटी है भाइयों, मोदी का गारंटी। सबरूम रेलवे स्टेशन को एक्सटेंड किया गया, 23 ट्रेनें अब चल रही है। अगरतला अखौरा रेलवे लाइन को आगे बढ़ाने का काम किया और एक हाईवे ही था कम्युनिस्टों के 30 साल के शासन में, अब त्रिपुरा में 9 हाईवे बनाने का काम नरेंद्र मोदी सरकार ने किया है। विद्या ज्योति स्कूल को सीबीएसई में लिया, बमुतिया में सेंट्रल संस्कृत यूनिवर्सिटी बन रही है, नरसिंहगढ़ में अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम बन रहा है, जिससे आईपीएल और राष्ट्रीय मैच भी यहां आएगी। सब रूम के अंदर 1550 करोड़ के खर्चे से जलेफा में स्पेशल इकोनॉमिक जोन बन रहा है, जहां इंडस्ट्री भी आएगी, रोजगारी भी आएगी और अपने अकेले त्रिपुरा में 87,000 लखपति दीदी है मोदी जी ने, और 3 करोड़ लखपति दीदी बनाने का लक्ष्य रखा है। अकेले त्रिपुरा में 3.5 लाख लखपति दीदी बनेगा। और आज 140 करोड़ से एक अनूठा यूनिटी मॉल भी बनाने का काम त्रिपुरा के अंदर हुआ है। भाई और बहनों, कम्युनिस्ट जहां जहां गए वहां क्या छोड़ा? गरीबी, भूखमरी, स्वास्थ्य का अभाव, शिक्षा का अभाव और युवाओं के हाथ में बंदूक थमाने का काम एक कम्युनिस्ट पार्टी ने किया। और भारतीय जनता पार्टी के नेता नरेंद्र मोदी जी ने युवाओं के हाथ में लैपटॉप पकड़ाने का काम किया है। पूरे नॉर्थ ईस्ट के अंदर
10 से ज्यादा समझौते कर कर सभी ट्राइब को 10,000 युवाओं के हाथ में से हथियार छुड़ाकर उनको मेन स्ट्रीम में लाने का काम भारतीय जनता पार्टी और नरेंद्र मोदी सरकार ने किया है। भाइयों और बहनों, मैं आज त्रिपुरा में कहना चाहता हूं, हमारे ब्रू और रियांग भाई, इनके परिवार 40,000 लोग नर्क की जिंदगी जी रहे थे। नरेंद्र मोदी सरकार ने सभी ब्रू रियांग को अच्छे गांव बसा कर दिए और उनके जीवन के अंदर उजियारा लाने का काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया। भाइयों और बहनों, ये कम्युनिस्ट यहां आते हैं, कांग्रेस वाले आते हैं। मैं आज त्रिपुरा के कांग्रेस और कम्युनिस्ट नेताओं को पूछने आया हूं, 10 साल आपकी सरकार थी, सोनिया मनमोहन की सरकार थी, आपने त्रिपुरा को क्या दिया? हर 10 साल में आपने 40,183 करोड़ रुपया दिया, सिर्फ 40,000 करोड़। और मोदी जी ने ये 10 साल में 40,000 करोड़ के सामने 98,000 करोड़ रुपया देने का काम मोदी जी ने किया है। इसके साथ साथ 20,000 करोड़ के इंफ्रास्ट्रक्चर, 17,000 करोड़ सड़क के, 2,000 करोड़ रेलवे के और 1,000 करोड़ एयरपोर्ट का किया है। और भाई और बहनों, मोदी गारंटी की